Hello everyone. Today we are going to have a complete discussion on international relation question asked in 2022 mains paper. Myself Vivek K. And before starting the discussion, I want to say that in our channel we are doing a running continuously discussion on polity, history, geography, environment, all other topics. If you are interested, you can check out those. Now let's get started with IR. Okay, before starting with IR, just have a few sentences on what we are going to expect from this lecture. See, before, when in 2017 or say so 2016, when I was preparing for my first mains, that time the whole construct of answer writing that was limited to test series, and anything beyond test series what we are getting was anything gyan which is given by the teachers in the classroom. Beyond that, the dynamics of test answer writing was not that much evolved. This was 2017. Now when we are preparing for somebody who is preparing for 2023 mains, it's been 6 years. Now today if a student go to the market to look at what is happening in test series industry, you can see so much of diversity. Like people have come with art of answer writing, people have come with statement like science of answer writing. Tomorrow maybe somebody else will come with a statement of philosophy of answer writing or psychology of answer writing. I don't know where this is going out. And even in answer also, if you like, we all know 3 parts of the answer. People are coming with different 6 ways of introducing an answer, 8 ways of writing body, 6 ways of writing a way forward, different frameworks people are selling. In answer writing approach also, like there are programs with 1 question per day, 5 questions per day, 20 questions per day. There are programs like 3-day workshop, you will study everything on answer writing in 3 days. There are programs like 2-week programs, from throughout the year programs are also there. So the whole thing which I wanted to emphasize is, if any student, especially those students who are little bit dependent on the free content which is available in YouTube or any other Telegram or any other free content, this student, if he is going to approach answer writing, there is a big chance that he may get lost, he may get confused seeing all these things and what to do. So this thing I need to clarify very clearly, that what we are going to do in the questions in IR, you can see in other subjects also, what we are going to do is any question, let it be any question. First thing first, the most important thing in answer writing is content. If your content is not prepared, if your content is not ready, you cannot write a very good answer. Whatever format, whatever diagrams, whatever you bring into the page, without right content, it is not going to work. So never compromise on content. That's the first thing I want to say. Secondly, whatever question you got, it is going to be written with an introduction, a body and a conclusion. Now keep things as simple as possible. In introduction, if you are going to speak about some new concept or some new technology or something new organization in IR for say, so one of the easiest way is to answer what it is. How you answer what it is? You will simply define what you are going to speak about. Another approach you can is, you can come up with a why, answer why statement. How will you answer why statement? Suppose a statement is given for say, for example, take a statement is given, Indian higher education is dysfunctional. Just for example I am taking. If such a statement is given, in introduction you can come up with something where you can show that why this statement is given, or why you can think of something which will substantiate the statement given in the question. How you will do this? You can do by citing some data, you can cite some examples, you can cite some events which has happened in recent past. By different ways you can substantiate the statement. There is another approach you can start the answer. One more approach I want to clarify is, in some question UPSC comes with statement like this, in your opinion, or how far do you agree. In some question even you can start with, open the answer with clearly stating your stance.
In introduction itself, state this is the stance which you are going to take and then build up your answer. So this is the whole construct on introduction. Now see what is going to do on conclusion before coming to the body. In conclusion, the best easy approach is you connect it with some vision, some futuristic forward looking vision which India is upholding. For example, if you are writing an economy answer, you can always connect it with the 5 trillion economy vision which India is upholding. If you are writing a governance answer, you can always connect it with different SDGs. If you are writing a suppose IR answer, you can always connect it with India's changing policy, India's ambitions of being a global superpower, or India's increasing pragmatism in foreign policy and diplomacy. You can connect with something which India is looking for, some kind of vision in conclusion. Now introduction ho gaya, conclusion ho gaya. Now come what to do with the body. Here also there are one clear message which you need to keep in mind, that is you are only going to write what is being asked. Anything if you write beyond what is asked to show your knowledge, to show your extra reading, anything, that is not going to be rewarded. And that is not just rewarded, don't think it from reward perspective. In real exam condition, what you get is 7 minutes for a 10 marker or 10 to 11 minutes for a 15 marker. Now in this time, if you are going to invest writing something which is not going to make any sense, that is not going even giving you 1-2 marks, then you are messing up with very limited time you already have. So in body, what our funda is, we will only write what is exactly what is asked in the question. And to answer this correctly, you should have a broad understanding on what you are going to approach when the question is described, when the question is explained, when the question is analyzed, when the question is critically analyzed, when the question is examined, when the question is how far do you agree. These are different ways you can go through the PYQs and make a list, different approaches, different types of question UPSC is asking. So you should have a fair clarity on what are you going to do if these different kind of keywords are coming. And if you have this clarity, if you have this content, and you are sticking to only what is being asked in the question, that is enough. Leave all other thoughts in answer writing. This is the only funda you need to keep in mind and revise it practice it as many times as you can. Clear? I hope I made sense of what you are going to expect from this lecture on IR. So let's start our discussion with IR topics, that is agenda for the day. So this is the first question. Let's go through the question once. India is an age-old friend of Sri Lanka. Discuss India's role in the recent crisis in Sri Lanka in the light of the preceding statement. So what are you going to write? Let's brainstorm for a minute. How are you going to approach this question? What all you are going to focus on? See, इसमें एक statement दिया है, that is India is an age-old friend of Sri Lanka. Okay, good. What is focus? Age-old. It is not given prehistoric times. It is not given in modern times. So somewhere in your answer, you should substantiate this. You should show that India is an age-old friend of Sri Lanka at some level of your answer. Okay. Second, the keyword given is discuss. Now you have to discuss what role India is going to play in India-Sri Lanka crisis. So that's what you're going to do. So how we can structure the answer? As I already told in intro, what you're going to do? One of the best thing you can do is, we have a statement and we have a question. You can write a broad intro by mixing the statement and the question. By mixing the statement and the question means, as an age-old friend of Sri Lanka, what is India's role? You can state directly what is India's role in a few words, in 2 lines. By mixing the what is asked as well as what is the statement. Now, body.
as I told, somewhere you have to substantiate the statement. So what we are going to do is, we divide the body into 3 parts. First part, we will give very few examples on what is India's age-old relationship with Sri Lanka. Here you are going to write something on any historical events which you are coming into your mind, or any recent events which happened, cite some examples and show that India is an age-old friend of Sri Lanka. In second part, today Sri Lanka is undergoing a crisis. This is also, the crisis is also not being directly asked in the question. Question is not about what is going on in Sri Lanka. But still, if you are going to write on this in the later part of the answer, it is always good, write a few lines, 2 lines is enough, on what is exactly going on in Sri Lanka. That will show you have the depth of knowledge, you are not bluffing around, you have the clear understanding of what you are going to write next. And in the third part, we really focus on what is India's role in this crisis, which we all about told. Then we end up with a conclusion, which we will see on the go. So one more thing I need to emphasize here is, it is a 10-marker question. So at best you have 2 pages, you will only get 2 pages. This is a core part. ऐसा होना चाहिए, intro 2 lines, then the first and second part, everything should come here. It should not take whole first page and some part of the second page. ऐसे नहीं होना चाहिए. Most of the, here you should start the role of India, then it should go till here, then 2-line conclusion. The core of your answer, the major part of your answer should be regarding India's role, because that is what is exactly asked in the question. I hope things are clear on how to attempt this question. Let's move ahead. So this is a sample introduction. It's not like you have to write this only. You can start something like this. India has been at forefront in extending the helping hand at the time of Sri Lankan crisis, which is in line with age-old intellectual, cultural, religious and linguistic relationships. So you are showing that India is at the forefront, that is, you are stating very clearly India helped Sri Lanka, and India has a different dimensions. India has a relationship with Sri Lanka. So you are addressing both part of the question in the introduction itself. See, what we can do next. In body, as I told you, next part we are going to substantiate the statement in a very brief way. What you can do here is, you can give a heading, India as an age-old friend of Sri Lanka, and think on different dimensions. Like in cultural dimension, you obviously can think. It's not something which you prepare separately. In cultural dimension, what is India's relationship with Sri Lanka? In Ramayana, Hanuman jumped to Sri Lanka, you know the story of the Ravana. So it's Sri Lanka-India relation, civilizational relationship start from age-old, maybe centuries or millenniums back. Secondly, Buddhism, you can think of Buddhism start spreading into Sri Lanka from very early times, 4th century BC also. If you can relate or write who is behind this, who took the Buddhism to Sri Lanka, you can cite his name. And Chola conquest in 10th century AD. Chola conquest was just architectural, cultural, Tamil, lot of spreading happened during this time. So in cultural, you can think like this, and 25% of Sri Lankan population is Tamil population, which you might already see in news regularly. So this is one aspect of thinking. Second, in post-independence, how is political relationship with Sri Lanka? You can think on 1987, what happened is, there was Sri Lankan Tamil War was happening, or civil war in Sri Lanka. What India did is, India sent the military to help Sri Lankan government. And Mr. Rajiv Gandhi engagement during the time, and we have 13th Amendment India proposed to has a political solution to Sri Lanka. The point I am trying to make is, you don't need to write everything of these, you don't need to keep too much of your mind into it. You should learn the art of thinking in different sections. You think from historical aspect, you think from post-independent, how political engagement is going on, you think from economic aspects. In economy, you can cite India Sri Lanka signed FTA in 2000,
or if you can remember the data on how much trade is happening between India and Sri Lanka, suppose 3.6 billion with India and Sri Lanka. Here, what I suggest is with all the major countries, you should by heart this data. In exam, it both come aega, and it adds value to whatever point you are trying to make. So if you can cite trade data, if you can cite FTA, if you can remember 1 or 2 organizations where India and Sri Lanka is a part of, you can give an example. Secondly, in developmental engagement also, India is at the forefront. You can cite that whatever engagement India is doing in Sri Lanka, it is demand-driven, people-centric, not something which is looking to exploit the resource of Sri Lanka. You can cite that. Indian housing project, something. India started an ambulance project in Sri Lanka. India is extending, forefront in extending line of credits in different aspects. So the point is, you have to learn the art of thinking in different sections and citing 1-2 examples. That will substantiate what the point you are going to make. Now the next part of the question, that is, we already addressed the India is an age-old front of Sri Lanka part. Now what we are going to do, we are going to the crisis. So crisis also, what you want to do is, you want to write a few statements on what crisis Sri Lanka is going through. Very briefly, I will explain what Sri Lanka is going through. If we look at what happened in Sri Lanka, it is not just an economic problem. The whole crisis in Sri Lanka is a politico-economic crisis. Politico-economic crisis. Why it is called politico-economic crisis? Because if you can recall, or if you might have seen in the newspapers, Mr. Rajapaksa, when he came to power in 2019, what he did was, he filled his cabinet with his brothers, with his cousins, with his family members. It was criticized that Sri Lanka is not having a democracy but a brotherocracy. So this guy, when Rajapaksa was the Prime Minister of Sri Lanka, he filled the cabinet with his members. Now what is consequence of this? Consequence of this is whole decision making when under ad hoc. What does it mean? It means whatever the decision the cabinet is making, it is not going to have a bureaucratic control. It is not having a rational arrangement. It is not having a planning, short-term planning, long-term planning. The decision is becoming ad hoc and populist. Populist decision making, whatever people are demanding, the decision is taking based on that rather than overall planning. Now, what he did in 2019, he opted for massive tax cuts. Tax cuts mean taxes are reduced for corporates, everyone. It was a very populist move. People were very happy about it. Now, what is the consequence of it? It is done without planning. It is not done with proper planning and understanding, and scientific approach is not followed. The consequence is that revenue, the government revenue started falling all of a sudden. Now when revenue is falling, then again government start thinking how can solve the solution. The government is not having money to make its imports, make its petroleum, make its fertilizer. All these imports, it has to come from outside into Sri Lanka, and government was running out of money. Then what to do next? Then in 2021, all of a sudden Sri Lanka went into an all organic country. It is very good idea, environmental friendly, organic farming, excellent. But the problem is it has to be done with a lot of planning, lot of background stuff has to go inside it. But Sri Lanka gone into organic without planning, just to fill the popular demands. Now what is the consequence of this? Consequence of this is agriculture economy crashed. And when agriculture economy is crashing, food crisis is started happening. You should also see a parallel thing is happening. In 2019, if you can remember, the Easter Day bombings happened in Sri Lanka. A church was blasted, and it was one of the most major terrorist attack in South Asia in recent past. Take apart Afghanistan and Pakistan. So Easter bombing in 2019, what is the consequence of this? Tourism crashed. The Western tourists who were coming from Europe or America, they started looking at Sri Lanka with some kind of a black ankle or
They are not optimistic about coming to Sri Lanka. Now what happened is, Sri Lankan economy is highly dependent on tourism. And once tourism is started crashing, it stopped getting forex reserves from foreign tourists. Now to make things worse, in 2020, COVID came. COVID is not going to have a short-term impact. It is having multiple waves. In 2021, we can see again COVID coming. So its impact on tourism industry is long-lasting, maybe 2 years or 3 years. And what is impact of it? Already a food crisis is going on, already government is getting weaker, and tourism already crashed, and other troubles due to COVID, lockdown, all these things are happening. So the outcome of all this happening was severe balance of payment crisis. By 2022, Sri Lanka was having no money to repay the loan which it has taken from different bodies from outside the country. It has no money to repay the bond. It has no money to make the essential imports like petrol imports, like food imports, like fertilizer import, whatever essential, most essential, medicine import, most essential thing import Sri Lanka cannot do. Now, this is what happened in Sri Lanka, and the problem outcome is basically an balance of payment crisis. This itna aapko hona chahiye, and there is no need for writing all this story in the answer. What you have to show in the answer is, this is what is happening, what is drying up of forex reserve, running out of food, fuel, medicine, essential goods, soaring prices, inflation was at its best, Sri Lankan currency was crashing against dollar, political unrest was happening, people were coming out in street in demanding Rajapakse's resignation. So this was what is whole picture of what happened in Sri Lanka and what is outcome of that. Now we will come to the next part of our answer, that is, what is the role India is going to play in this? Yeah, so that is crux of the answer. What role India play in this Sri Lankan crisis? We already understood what crisis is going on in Sri Lanka. Now what role India played? You should have a clarity on how to think, what are lines to think in this regard. So we will start our answer is, whenever a political engagement with India and any other country, say India, Japan, say India, Australia, we have certain set of principles. Our foreign policy has evolved over the years, it's having its own backing, it's having its own value system, and it's having its own strategies. So what are the strategies, value system which look forward when India is engaging with Sri Lanka? As you already know, Sri Lanka is comparatively a small country, a small neighbor of India. India is comparatively big in economy, polity, population, land, everything. So if a small neighbor is going through trouble, how India will engage with it? What are the major principles India will uphold in engaging with smaller neighbors? This is the first thing you have to think. Not with Sri Lanka, any other country if India is engaged. So first thing which should come to your mind is neighborhood first policy. India has been an active developmental partner to all the small countries within its neighborhood, maybe except Pakistan, all other countries. So India in Sri Lanka, if a crisis is happening, India should uphold its role as developmental partner of the country. So that is the first thing. Secondly, we will talk about Gujarat Doctrine. What is Gujarat Doctrine? Some of you might remember it. It's not something, to understand Gujarat Doctrine correctly, you need to recall something on 2015 Nepal earthquake. If some of you, I really hope some of you might have remembering this earthquake 2015. What happened? So very massive earthquake and Nepal was crashed. And India was the first responder to this crisis. India was very prompt. Within hours of this earthquake, India sent a big flight with all the humanitarian aid, with support, all the support system. India sent the aid to the Nepal first, before any other country coming to know about the crisis or starting to intervene in it. Very good, excellent thing India did. But what happened? Within few weeks, the whole good thing India did counterfeit. Whatever good image we have created in Nepal, counterfeit. Why? Because the media started involving in it.
because the politicians in Nepal started taking sides. One set of politicians started to criticize India, one set of politicians started to say good about China, and it became a whole bad thing, and all the goodwill India created backfired itself. So when there was so much learnings we had a new government in 2015. So there is so much learning India learned from this experience. We can see India actually implemented in handling case of Sri Lanka. Whatever India helped, Gujarat doctrine says there should not be any non-reciprocity. Like whenever this small country have any needs, just give them that. But don't expect that they need to sign something else. This is something which is starkly opposite to how China engages with its small partners. When China come up with a plan to help the countries or make a statement on it or bail out some countries if it is going through a crisis, China come up with a set of other plans. We will help you only if you sign these. But India's policy is what Gujarat doctrine say, if a country is needing help, a small country in the Indian neighborhood, help first. Do not expect something in return. That is the policy we uphold. So in Sri Lanka, different to Nepal, how India managed is, whatever India did, India doesn't went to the media and said that we have done this, we have done that. India kept a very strong diplomatic maturity in handling the whole scenario in Sri Lanka. Secondly, all our engagement with Sri Lanka, India has kept clearly that whatever happening in Sri Lanka is internal affair of Sri Lanka. Political issues, whatever issues, it is internal affair of Sri Lanka. And what India can do, India can help as a partner. Beyond that, India cannot take sides. Whatever help India given to Sri Lanka, India is giving to Sri Lankan people, not to the Rajapaksa government or not to the party of Mr. Rajapaksa. India was not taking sides. India was very clear on it. We are not directly interfering in Sri Lanka. Whatever help we are offering to the people of Sri Lanka, and we are not taking any political stake in it. This is something which we learned from 2015 experience, and it's being readily used in the case of Sri Lanka. So these are two major principles which you can think of when India started engaging with Sri Lanka, especially in the time of a crisis. So I will say principles. That is the first line of thought you should keep in mind. Now comes the crisis management. Now we have told Sri Lanka is undergoing a crisis. What crisis it is? It is a food crisis. It is a medicine crisis. It is an agricultural crisis. It is a revenue crisis. So how India is going to engage in this scenario? You can think on this line. India was the first responder. India was sending aid and relief. India was sending food. Around 1 billion worth of food, medicine, fertilizer, everything India sent to Sri Lanka. And India, you can think on that lines. If you can cite some data, it will add depth to it. 1 billion India gifted. Then India prompted Tamil Nadu government to take upon its own to help Sri Lanka. Tamil Nadu government was sending rice, sending milk powder, so many other things, food items and medicines, generic medicines, India's. So that is how, when the big crisis happened, that is how India first responded. Now once the emergency situation is passed, the core crux of the crisis is a BOP crisis. It is an economic BOP crisis. Now how India can help Sri Lanka in this regard? If you remember, India already gone through a BOP crisis in 1991. We had a situation where India was not having enough money to repay its loan, service its loans, and we somehow managed the crisis very efficiently. So India already has a lot of experience, and this can come in handy in giving an advice to Sri Lanka. And you can see that India is in forefront in dealing with IMF to come up and help out Sri Lanka. India was ready for mediating the agreement which IMF is coming. The problem with IMF you can see is IMF come out and bail the country or help the country during the crisis, but it comes with a lot of structural changes. Lot of structural changes, lot of economic changes that has to be reforms that has to be undertaken for the help to be really implemented.
So in this regard, India already is a country who undergone these structural changes. So India's experience of handling of 1991 BOP crisis, this is something which is we have seen India using it to advantage in handling situation in Sri Lanka. Second, Sri Lanka has taken so much debt from India also. So India was prompt in saying that we are okay to defer the debt which our Sri Lanka has taken from India for 1 year or 1.5 years. Good. Second, we extended a credit swap agreement with Sri Lanka, say something worth 400 million and a line of credit of 500 million. So both these are rupee dominated. What does it mean? Sri Lanka can use this money to import or buy products from India, and it doesn't need to worry about Sri Lankan rupee versus dollar. That dynamics is going on. Rupee is crashing Sri Lankan rupee, but India is offering an alternate channel which is denominated in Indian rupee. So with this extension, it can, at least for time being, it can address its needs, essential goods needs. Credit swap agreement, this should come in your answer when you are writing. Credit swap agreement, if you can cite data, it is excellent for 400 million US dollars or line of credit of 500 million US dollars. Now, what is the strategic aspects India? Now we have seen that principles, these are which is upheld. In economic aspect, these are which is upheld. Now what is strategic aspect India seeing the crisis? What is India's strategic role in what is happening in Sri Lanka? If you can recollect, for last decade, Sri Lanka is having close relations with China. So many ports, hub and data, all these things are coming up, and Sri Lanka is liberal in giving the agreement, going into agreement with China, we have seen. Now, for some reason, for some really strange reason, China hasn't came to help out Sri Lanka. China hasn't came to bail out Sri Lanka. We have seen what is China's behavior when Pakistan crisis happening. China is at the forefront to help the country. When Iran was facing issues with lot of sanctions and all, China come up and signed a 24-year-long agreement with Iran for long-term investments. So whenever a country, or especially a smaller country, is facing troubles, financial troubles especially, China is usually coming up with its self-plan and its self-engagements. But in case of Sri Lanka, China kept total restriction. Why? You can ponder upon, that is not our topic of discussion, but India's strategic engagement, India is upheld the multi-vector diplomatic policy. What does it mean? What India is saying is, Sri Lanka is going through a crisis. Now if China come out with a bailout plan and China is taking over all the debt of Sri Lanka, China won't do it with free. China will also come with a do's and don'ts. Now China is prescribing its do's and don'ts to China. That is going to be against the interest of India. That is going to hurt India anyway. Same case, if USA is coming to bail out, it is not coming, I am just hypothetically saying, if USA is coming to bail out Sri Lanka, it will also have its do's and don'ts. So what India really wants is, India doesn't want any one single country to come up and solve the Sri Lankan crisis. India wants a multi-vector engagement. India wants everyone to come up and do something. Let Japan come do some investments, let Australia come and do some trade. USA, if they can strategically do something, then let them do. China also, if China want to increase its investment, let them do. Let India also engage. Let everyone engage and create something good for the Sri Lanka. So that was the strategic policy India upheld in Sri Lanka. Thirdly, India was engaging with so many lateral groupings which India is a part of, which India and Sri Lanka is a part of. SAARC, some of these agreement, line of credit agreement, India offered through SAARC. So what I am saying is, SAARC is, India is bringing up different organizations like BRICS, like BIMSTEC, like SAARC. Every organization, let them play their part in what is happening in Sri Lanka. This is also in line with India's multi-vector engagement policy which we have seen in Sri Lanka. So this is another line of thought you can think of, strategic aspects. And lastly, if it is a crisis is happening, India's role is not just limited to managing the crisis. Post-crisis, what should be the scenario? In this case also, India is offering some plans. What plans India are offering?
India promised to make an investment of 3 to 4 billion US dollars in Sri Lanka after the crisis. And how India is upholding it? India is upholding it through many of its private engagements. Who are the private group? You can cite Adani Group, Colombo port engagements, something like that you can cite. India is leveraging on its strength of private sector to rebuild whatever the crisis or economic issues Sri Lanka has gone through. So that paints the whole picture. We have 6 different big headings. Even if you give 2 points within all, 2 substantiating dimensions within each heading, the demand of what is asked is going to be answered in completion. But when you are going to study it, these aspects you should keep in mind. Whichever engagement or whichever role India is having with a country, you have to think what are the principles of engagement, what are the core aspects, national interest, economic interest, other interest. Then after that you can start thinking on strategic lines, what is the aspect. Then if a crisis is happening, definitely there should be something post-crisis engagements also. So this way you can address the role of India in Sri Lankan crisis in a comprehensive manner. Let's go ahead. In conclusion, you can cite something, as I already told, cite some related to some vision India is upholding. What vision India is upholding? India is going to an active diplomacy. India is trying to do a very active diplomacy in the recent past, and this is what India did in Sri Lanka is an extension of that. Second, what India's ambitions of a global superpower. You can cite with what India is looking, this is India is aspiring for itself, and in Sri Lanka what you are seeing is a step towards this. Somewhat forward looking, futuristic concluding remarks you can give and finish your answer. Clear? So let's move to the next question. Yeah, take a few seconds and read the question. Yeah, I hope you've gone through the question. So what this question is saying, do you think BIMSTEC is a parallel organization like SAARC? What are the similarities and dissimilarities between the two? How forming of this new organization is going to realize India's policy objectives? 3 questions we have. First, we have 3 different questions, and keep in mind that this is a 10 marker, so that you only have 2 pages to write. 2 pages में 3 answer लिखना है. It's always going to be a challenging, not from the perspective of content, you will have enough content, but you have to address each part, you have to give respect to each different question. It should not happen that one part is dominating and other 2 questions are having very little space. ये नहीं होना है. So this you have to keep in mind very clearly. Secondly, yeah, a little bit of background background information I want to give you in addressing this question. What is SAARC? SAARC is a regional organization in South Asia with economic integration, political engagement, all these aims. It has countries like Afghanistan, Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, all these countries, Maldives. All these countries are a part of SAARC, of course India also. So, what is wrong with SAARC? Why this context of this question is, SAARC is a dysfunctional organization. Why SAARC is a dysfunctional organization? Some of you at least, I think, some of you might have read about this SAARC, its history, all this. When was SAARC formed? SAARC was formed in 1985, and it was actually proposed by Bangladesh, not India, Bangladesh. And when SAARC was proposed by Bangladesh, India was not open to the idea. India was thinking that it is an American grouping of small countries against Indian interest. So India was not very positive to formation of the SAARC. But you can see that once it is formed, India realized it's not something which is totally against its interests, and India played along, and India have been active in engaging with SAARC.
But the point which I want to make is, even in its formation years, the difference of opinion between the two member countries are very prompt. And this difference of opinion throughout the history of SAARC has led to a state of dysfunctional approach of the organization. And what's the most critical problem is obstructionist attitude of Pakistan. If in answer you are saying this, you can cite something like, even a motor vehicle agreement, Pakistan is not ready to even sign a motor vehicle agreement between the SAARC countries. Another example, SAARC biggest achievements which is said is signing of SAFTA, that is South Asia Free Trade Agreement. Even the agreement was signed way back in early 2000s. The implementation is still lagging. It's nowhere near satisfactory. If you can recall, South Asia inter-regional trade is just 5%. This is one of the least economically integrated regions in the whole world. So you can see so much things wrong about SAARC. SAARC is not really raised to its expectations. And the worst thing, the trigger. When the trigger came? In 2016. What happened in 2016? Just before the SAARC summit was going to be happen, the Uri attack happened. You might have already know it. Now once Uri attack happened, India cancelled the summit. Nobody attended the summit. Summit didn't happen, and it was being cancelled over the years again and again. So the problem is, at this point, India started looking for another organization where it can realize its at least economic objectives sufficiently. It started losing hope on SAARC. So it is in 2000, if you can remember, that time BRICS summit was happening, and India invited BIMSTEC into the summit, and SAARC members were not invited. From here on, BIMSTEC is getting importance. Importance of BIMSTEC is increasing. Throughout the years, something is happening. In recent year, why this question really came, that is because BIMSTEC recently adopted a charter. Official charter of BIMSTEC is adopted in March-April this year. So that's the current situation. So this is the whole picture on what is happening between SAARC and BIMSTEC. Let's come back to the question. Yeah. So how would you approach this question? You just don't read this thing. How would you approach this question? I already told, we have 3 questions, and you have to write it in 2 pages. So it is always better, do not go for anything that is beyond asked. First question, if you can read, do you think BIMSTEC is a parallel organization to SAARC? What you have to do is, you have to make your stance very clear in the introduction itself. There is no space, there is no time for writing what is SAARC, what is BIMSTEC, and do all this story. You have to hit the bullseye in the very first line itself. So what introduction we are going to follow here is, we are going to clear our stance in the introduction itself. That with SAARC, we already have a background knowledge. With SAARC being a dysfunctional grouping, India started trying to energize and develop BIMSTEC as almost a parallel organization as SAARC. So this became my introduction. This became my introduction. Now in body, I will give explanation to this, why I think that BIMSTEC is a parallel organization to SAARC. This became the first part of my body. What is it? It has common members. As I already told, 5 out of 7 members of SAARC is members of BIMSTEC also. Who are those? Except Pakistan and Afghanistan, all of the members are part of this BIMSTEC also. Maldives is also not part of BIMSTEC. Okay. Secondly, vision. We are having very common vision, political economic engagements. You can cite some example like BBIN. Some examples you can cite, you can give it here. Thirdly, we have so much of similarity in agenda, in working, whatever sectoral aspect we are engaging, SAARC and BIMSTEC. We have so much of commonality in trade, in connectivity, integration, development, security. All these aspects, both these organizations are doing very parallel works.
So from different aspects, there is high level of similarity between what SAARC stand for and BIMSTEC stand for. So it can be said that SAARC BIMSTEC is a parallel organization to SAARC. So that's what the first part of the answer, or we address the first part of the first question in this. Let's move ahead. Second part, as I already told, this question we don't have time for write anything other than what is directly being asked. So next part of the question, what are the similarities and dissimilarities between the two? So we make a table. You can write it differently also, no issues. But the point is, similarities, you clearly have to state 3, 4, 5 points on similarities, and you should have some points on dissimilarities. So what are the similarities? Let's have a go through on these points. What are the similarities? Both these countries are having regional identities. Both these countries are based on cross-national nationalism, cross-border nationalism. These are the fundamentals of both these organizations. Second, I already told there are overlapping areas of cooperation. You should cite some examples here. Example, SAARC University you can cite, some educational engagement of BIMSTEC you can cite, SAARC satellite was launched, in pandemic how SAARC and BIMSTEC came together, all these some example you should cite here. Thirdly, both these countries have shared history, almost all these countries have colonial past. Now problems facing are also very similar, like climate change is coming, climate change is going to hurt all these countries, especially these are low income countries. So the vulnerability is very high and we are all facing the same issues. Thirdly, a negative comment, both the organization is having very poor inter-regional trade or inter-regional integration. You can cite some data, I already told the 5% data. So this is how the similarities is addressed. Now look at what are the similarities. Here also you should keep a conceptual part to it, not just go into whole factual thing. If you look at SAARC is a South Asia regional organization, while BIMSTEC is having two other members who are the Myanmar and Thailand. Myanmar and Thailand are Southeast Asia countries. So it is having an inter-regional organization. It is not just a regional in South Asia, it is having an inter-regional organization, BIMSTEC. Secondly, I told SAARC was formed in 1985. India was having a worries of American Union against Indian interests. So there was something of Cold War crux in formation of SAARC. While if we talk about BIMSTEC, it is formed in 1997. That means it is a post-Cold War product. Secondly, SAARC, the major issue it is facing, it is mistrust and suspicion among the members. Pakistan-India issues that is going to block the SAARC and BIMSTEC throughout its history. We have seen that. So mistrust and suspicion, that is a bigger problem in SAARC. While in case of BIMSTEC, it is more friendly relations. All these countries share similar threat perception, like cross-border terrorism, money laundering, climate change. All these threats are very similar to India, Sri Lanka, Bangladesh, all these countries. So threat perception is very similar on BIMSTEC countries, while it is having stark differences when including Pakistan and Afghanistan into the grouping. So you can cite that. Secondly, in SAARC, the power distribution is highly asymmetric. If you look at it, India is a very, very big country. All other are small countries. Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maldives, all are very, very small countries. So asymmetric power distribution is very stark in SAARC. While in the case of BIMSTEC, there is Thailand. Due to the presence of Thailand, Thailand is a big country with a huge population. So the power distribution, at least to some extent, is having some balance of power. Some countries are more there. So there is better balance of power in BIMSTEC. Lastly, in SAARC, another big problem SAARC is facing, it is having a unanimous decision-making system. Once your organization is having this kind of a system, anything to happen, every country has to agree with it. Now, what all are the areas where India, Pakistan agree? It's very limited. So SAARC how can SAARC proceed with this kind of a system? While in BIMSTEC is modeled more on the lines of ASEAN. It is a sector-driven organization. What does it mean? Sector-driven means
in BIMSTEC, the whole its engagement is divided into 7 sectors and given to 7 countries. For example, India is responsible for security aspects, energy aspects. India is, one more is there, I forget it. India is responsible for these sectors. Bangladesh is made responsible for some other sectors. So India can envision its plans to how to engage with it. There is no need for unanimous decision making in case of BIMSTEC. So the whole structure is, you given 3, 4, 5, 6 point maximum on similarities, you given 4, 5 points on dissimilarities. So that will suffice our second part of the question. Now let's move ahead. Now the last part of the question is, how are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? What is the new organization here? It is talking about BIMSTEC. Don't get confused and go behind SARC here. It is talking only about BIMSTEC. It was formed in 1997, you already seen that. So how to address this question? How India's foreign policy objectives? So here also, we will keep our line of thought very similar to what we have done in case of Sri Lanka, Sri Lankan question. Here, what are the principles? What are the Indian major policies which is regarding the countries in BIMSTEC? Most of the countries are neighboring countries, so India has a neighborhood first approach. Secondly, in BIMSTEC, 2 countries are Southeast Asian countries, Myanmar and Thailand. So India has a very activist policy regarding those countries. So what we are seeing in BIMSTEC is an integration of neighborhood first and activist policy. So you should write it. And it is both these, if we combine it, is have a domestic development vision, that is development of Northeast, as well as development of other countries also. So that is the first point. Line of thought is coming from, again, we are thinking on principles or major strategies or major agenda which India is upholding. Second, we go to the economic objectives. What India is looking for, India is looking for building connectivity projects. Economic connectivity, you can take it as a single point also. India is looking at building connectivity throughout the region. For example, you can cite Kalam multimodal project, IMT trilateral highway. What it is? India, Myanmar, Thailand trilateral highway. India is trying to extend the highway to all the Southeast Asian countries, ASEAN countries. So what India is looking at, India is looking at the connectivity very seriously. Other countries, smaller countries can look India as a potential market for their products, like Nepal, for Bhutan, for Bangladesh textiles, you can see. Then blue economy, it's a BIMSTEC, it is a Bay of Bengal grouping. So there should be some elements of blue economy. It's the most productive fisheries in the world. We have also started the excavation of resources from the sea. So these all elements should come into your answer. And a BIMSTEC FTA is already in talks. It's still not implemented, but it is in talks. So first we think on lines of principles, then came economic aspect, then came security aspect. What are security engagements of SARC? India is a net security provider, India's vision, and these all countries are facing threat of terrorism. And SARC is very much in line with expanding India's humanitarian assistance during any crisis. We are still in Sri Lankan crisis, not just economic crisis, even any crisis, natural crisis. India is very prompt in extending the help. SARC can be as a platform for extending those helps. Now, in strategic aspect, if you think, SARC is very important for countering China, because if you look at the South Asia or Southeast Asia, except India and Bhutan, almost all countries are a part of China's Belt and Road Initiative. What is the consequence of this? At least there is a chance for India to be negated from all these debates, all the regional attempts. So BIMSTEC can at least offer an alternative to the countries, like we are also coming up with some sort of projects. I'm not saying India is going to counter China's BRI with this BIMSTEC, but it gives an alternative to at least some of the countries to look for. Second, India's maritime vision, Project Mausam in the Indian Ocean region. All these you can connect with BIMSTEC and make 2-3 points. In renewable energy, addressing climate change. Renewable energy, you can cite India already has ISA, Indian International Solar Alliance. So BIMSTEC can be an organization which can give an observer status in it. BIMSTEC can take up common projects within the regional projects in renewable energy.
So different aspects you can connect and you can fairly address the demand of this question. Clear? Let's move ahead. Yeah, in conclusion, I already told what you're going to do. You are going to connect with some of the vision. So what is the advice you give for a BIMSTEC? If BIMSTEC really has to be successful, it has to be come out of the cloud of SARC. It has to be come out of an alternative to SARC, and it should build its own systems, its own narratives, its own commitments, so that it can come up with. Then only BIMSTEC can be a successful. So your conclusion can be something on that regard. Okay, that is what is written. You can go through it if you want to. Clear? Let's move to the next question. Take a minute and read the question. Yeah. So this is question is, how will I2U2, India, Israel, UAE and USA grouping transform India's position in global politics? So how would you attempt this question? Before coming to the answering the question, let's have a broad picture on what is I2U2 actually is. What I2U2 is, what it stands for. Now to understand I2U2, simply is an economic grouping between these countries. Good part is the countries are also given in the question, so you are not going to give so much of your brain in this regard. But strategically understand the importance of I2U2 is very important if you want to give a very quality argument in this answer. So let's understand, this grouping is proposed by UAE. Now why UAE has come up with this kind of a grouping? There are two aspects to it. Every country we are looking at from two aspects. One is economy, one is strategic. What is UAE's economic interest in coming up with such a grouping? This is seen as an extension of Abraham Accord. What is Abraham Accord? It was signed in 2020, and after signing Abraham Accord between UAE, USA and Israel, other countries, Morocco, Bahrain, all these countries are joining in it. So the accord, the Arab world, at least some countries in the Arab world led by UAE, started recognizing Israel politically. That was a political agreement. Now this I2U2 can be seen as an extension of what happened in Abraham Accord. This was political agreement. Now we have an economic deal to expand its interaction with Israel. Why UAE want to interact with Israel? Because Israel is leader in technology, leader in many aspects, in agriculture, in post-processing. So UAE want to explore what Israel has. Secondly, what it is India. India is the biggest area for investment for Israel. Israel Wealth Fund, UAE Wealth Fund is already making huge investment in India. So India has two aspects to it. India is one of the biggest wealth for market as well as investment destination. So these are some economic aspects which UAE is looking for in I2U2. Now if you come to strategic, three dimensions you have to look at. One is Shia-Sunni issue which is going on in the Middle East for decades or centuries. What is it? Shia is Muslim world led by Iran. Sunni is Muslim world led by Saudi Arabia. UAE comes here. So this is a triangular fight. There is Israel, and these three people never like each other, and there is fight throughout the history you can see. So here there is a nuclear aspect to it also. What is nuclear aspect to it? Iran is developing nuclear bombs. Now once Iran is developing nuclear bombs, Israel already has its nuclear programs. Now if suppose in future if Iran really build its bombs, then the Sunni world will be at a weaker position strategically. So UAE want to look into it. Second, what is the strategic aspect to it? I already told Abraham Accord. Thirdly, one more dimension is, this is economic also, oil. Most of the Middle Eastern countries in Middle East, they are highly dependent on oil. Their revenue, huge amount of revenue is coming from oil. As we all know, the oil cannot sustain for centuries.
Within few decades, things are going solar, things are going wind, renewable energy is picking up, electric vehicles are coming up. Oil is gradually getting replaced, at least not now. Now oil is doing very excellent, but in future oil is definitely going to decline, oil market. So how Middle East will sustain, how all the countries here will sustain without oil? And UAE being having Dubai as the financial capital of the Middle East, UAE is in a position to take lead on post-oil world. In a post-oil world, if UAE has to have a significance, or Middle East, any country in the Middle East has to have a significance, it should look to diversify its economy. And what I2U2 offers to UAE is an approach, is an opportunity to diversify its economy much beyond the oil. It's already very much diverse economy for UAE, but still that is what I2U2 actually offers to UAE. Clear? Now, let's see what other country. Who are the other country? Israel. Israel is looking at it. I already told what Israel want is, Israel doesn't want Iran to take lead of the Muslim world. Israel is okay with side with the other side, with Saudi Arabia or with UAE. So Israel, one way strategically, would want to go against Iran. Economically, if you speak, Israel is leader of technology world. Israel drone technology, Israel defense technology, Israel's many technologies are quite very famous. But as you can see, how much is Israel? It's a very, very small country. And if it totally depends on itself, where is the market to sell all these technologies? It has a very vibrant startup ecosystem. But whatever the startups are, there need to be some market to sell the products. And if it is selling only in Israel, it is not going to scale up. So economically, what Israel is looking at I2U2 is, it is an optimum opportunity to scale up Israel's technology, Israel's startups. Through UAE, it can get access to all the Middle East. Through India is itself a very big market. Okay, so that's what Israel is looking at in this grouping. Thirdly, take the case of India. India has different interest. What India is looking at? India is a very complementary economy compared to all the other countries. India has lot of land. India has agriculture. Agriculture is capable of exporting to Middle East. We have seen wheat exports in the recent past. We have seen rice exports. Indian agriculture is capable of exporting to the demands of the Middle East. Now, Indian agriculture needs lot of investment. And this investment can come from this grouping, from Israel also. From Israel, we are looking at technology. Investment, we are looking at UAE or even USA also. So this is what India is looking at economically. Now, one more aspect to hold this is, see, if you can look at this map a little bit closely, India UAE is having direct contact, no issues. Now, if in future or in some kind of agreement with Saudi Arabia come into picture, India can extend its contact from Saudi Arabia to Jordan to Israel. Now, if we reach Israel, this is Mediterranean Sea, and we can get access to Europe. If you remember, India is already in talks with India. India already signed India-UAE FTA. India-Israel FTA's talks are going on. So, officially or unofficially, if India can extend its FTA agreement to the Europe, then that's going to be a game changer. So far, India is looking at the Central Asian path. But the Central Asian path, as you know, India lost touch with Iran after the sanctions came up. Afghanistan, all the Taliban takeover collapse, all the goodwill India was creating there. So this area is having so much political and other issues. But if we look at
this said, if we can extend an FTA system from all the way to India till the Europe, that is going to be, from connectivity perspective, a blessing for India. So that is something which other aspect of economic aspect India is looking at. And strategically, as you can think what India is looking at, countering China. What is issue with countering China? Like, what is issue with China is, China, it's not in Middle East, everywhere China is making aggressive engagements. As you can see, I already told somewhere, China signed a 25-year-old investment deal with Iran. China has very close ties with Israel, and in almost all countries China is making its BRI. So what India with I2U2, that is with support of UAE, Israel, USA, big countries, what India offers is an alternative to BRI. Okay. So these are different aspects India is looking at. And one more thing, of course, if Middle East is involved, energy security also. We need petroleum for a foreseeable future. So if the Middle East, if this agreement can be expanded in future, it will add to India's energy security aspect also. So these are the whole thing what India is looking for. Now one more country is left, that is USA. What USA is looking for in I2U2, USA's aspect, if you see, USA is totally in I2U2 because of strategic reasons. If you can connect it with what happened in Afghanistan, Afghanistan withdrawal, post-Afghan withdrawal, USA is losing its contacts in the Central Asian or Middle East region. Now somehow it want to ensure its presence. Now Trump is gone, now Biden came, Biden want to like renegotiate its dealings with the continental Asia. So this can be a stepping stone. And in all this regard, we should also connect with, we have Quad here. Grouping of India, I mean Indo-Pacific, grouping of India, USA, Japan and Australia. And this is called as Western Quad. So what USA or India is trying to, they are trying to champion the minilaterals and trying to champion an arc of countries in the regional neighborhoods to make their interest claims. Not like NATO. NATO means it come under protectorate of USA. The country US will be protecting. That kind of system is gone. Now US is looking for allies to enforce its vision, not enforce, to collaborate with in implementing its vision. And in this picture, these minilaterals are coming up. You can see about Quad in Indo-Pacific, Western Quad, all these groupings fit into this vision. US is going away from protectorate regime to a more of a allies regime. And that's why India is very important for US engagements throughout the region. Okay, and strategically USA want to counter Iran. USA doesn't want Iran to develop a nuclear bomb. If a nuclear bomb Iran develops, then obviously the bomb, other countries in the region will feel scared and they also want to develop the bomb. This can lead to a very risky situation of nuclear proliferation throughout the Middle East. So USA doesn't want this to happen. So USA is in the grouping only due to the strategic interest, while all the other countries are having deep economic interest in being a part of I2U2. So if you have this much of content, this much of breadth and depth, you have understanding regarding I2U2, I think major part you already covered. Now the challenge is only writing it in paper and filling the sections and with demands of the question. This understanding, this clarity you should have, not just regarding this topic, any topic. So let's move ahead. So how you write introduction to this question? It's very easy. It's a I2U2. You are speaking about a grouping. So don't give too much of brain into what introduction is. Just explain what is I2U2. That will suffice. What is I2U2? It is also called West Asian Quad. It is a minilateral grouping which discuss mutual interest to strengthen economic partnership, trade, investment, etc. Now if you can recall some diagrams which shows that these are different areas of engagements: water, energy, transportation, space, health, food security. You can make a very simple diagram, or you can just list down which are major engagements which is going to happen in I2U2. So that's the introduction part. Now
Let's move ahead. Next part of, we are not going to write anything else. We are just hitting the demand of the question. What we're going to write is, we are going to only see how will I2U2 help transform India's position in global geopolitics. That is only what we are going to do. We will give the heading, how I2U2 will transform India's position in global politics. Then we try to generate points in a very structured manner, like we already told in both the other question. We are generating points in a structured manner, like in principles we are thinking, in economic lines we are thinking, national interest, strategic. These are dimensions which we are thinking. Here also what you can do is, it's about India, so trying to think about something which Indian diplomacy or Indian core interest is a part of. Second, you can think with bilateral, how this geopolitics or I2U2 impacts the bilateral engagements India is having with different countries. You can include those countries with this part of this grouping, that is USA, Israel, UAE and all. You can also include those countries which are not a part of this grouping. So bilateral, what we'll see how bilateral engagement is going to change, or bilateral engagement is going to impact the geopolitics, global politics. Second, you can think on regional, how Middle East is involved, so how Middle East is going to impact, or how India's policy with the Middle East is going to change. Then you can think on sub-regional. Like I told, there is an option of going an FTA from India all the way to Europe. So how Europe comes into picture, how any other part of the world is being involved, how that comes into picture. Those all part you can discuss, and any other aspects which we cannot come up with in this our diagonal thinking structure. If you cannot come up with here, you can think other aspects as strategic aspects, how geoeconomics is going to take a part, how common challenges, addressing common challenges, how the grouping helps India's vision or changes India's position in global politics. So all these are different line of thought which you should keep in mind while answering this, generating answer for this question. Now the next part, as I already told, we already have a what to think. Now just generate points and substantiate your answer. Suppose Indian engagements. So far Indian diplomacy, if you are at least with regard to non-regional countries. For example, what Syria was going through a severe crisis for years back, it's still going on. So Indian engagement, if you see, it is very passive. India may pass a comment on humanitarian aspect of what is happening, but rather than that, India is not at all involving in what is happening. If India is till recent past, not now, till recent past, India was keeping an equal distance between Israel and Palestine. If somebody from India is visiting Israel, that guy will also go to Palestine just to balance the relationship. But this era, India is coming out of this era. India is now following an active diplomacy. India is transforming itself from a passive to active diplomacy, and I2U2 can be a beginning of that. Quad in Eastern Pacific or Indo-Pacific, you can see Quad engagements. You can relate with this. Quad engagement is giving India strength to how to engage within West Asia. All these linkages you can think of. Second, in bilateral, how this is going to see, India is having a Indo-Pacific policy that is very much in line with USA. India is major defense partner. India is having close ties with USA in Indo-Pacific. At the same time, in continental policy, in continental Asia policy, India doesn't have much of any neighbors or friends or allies in this region. So this is something which India need to counter. Maybe that is what the basis of whole India's close tie-up, continuing tie-up with Russia, because Russia is India's only ally in the continental Asian region. So how this is going to be changed with I2U2? You can write India is trying to make more inroads into the continental Asia part. India can enhance its trade region, not just with Middle East, but beyond that also. Then how Israel, UAE, see, India is the only country that can engage with very, very diverse partners. India can engage with Iran. India can at the same time engage with Saudi Arabia,
India has no issues in engaging with Israel. So diplomatically, if you are speaking, India can engage with Russia as well as USA. Diplomatically, if you are speaking, India is the only country in the world with a position of having an openness to engage with all partners. So this can really, if this I2U2, India can somehow negotiate a decent relation between Iran also, or if somehow India-Iran trade tie-ups or other tie-ups, if that can be picked up, then that's going to be a real game changer throughout the geopolitics of Middle East. So yeah, India's engagement, India is now in a position, till now India was highlighting the position of dehyphenated policy. Whatever happening, we will keep a distance. Now India is moving ahead from that to a very active engagement. India can bring in Iran maybe tomorrow. India can bring in relationship with Central Asian republics and connect it with I2U2. We have Ashgabat agreement in Central Asia. So you can think on that lines, connecting Central Asian engagement with I2U2. All these are probable possibilities in the future, and all these can really help India's position in global geopolitics. Strategic, I already told, countering China, you can put that points. Unilateral engagements from Quad to Western Quad, something IPEF is coming up. So many regional engagements are coming up. So India can champion this. Secondly, geoeconomics, energy security, I already told. Investments, tech sharing, push for BTIA, all these dimensions we already discussed. So you can think on these lines, and it's very easy to generate 2-3 points on all these headings. Common challenges, International Solar Alliance, you can bring in CRDI, you can bring in One Sun, One Grid initiative, you can bring in CDM like mechanisms to implement in other countries, smaller countries at least. So all these dimensions, India's engagement with the world is going to be enhanced, or India's engagement with going to be more active. India is going to play a proactive role in whatever is happening in different parts of the country. So in that fashion, you can write a conclusion that I2U2 is somehow transforming India's approach to foreign policy into a very forward-looking, very active, proactive, and pragmatic approach to Indian foreign policy. In that remarks, you can conclude the answer. Okay. By this, I hope I address the demands of the question. The key things to keep in mind is, don't write too much on I2U2. Don't write anything which is not relevant here. Just write how India, I2U2, transform India. Maybe the body will having only one heading. It's okay. You have only to write that only. You don't need to make artificially 2-3 headings and do all the jugaad. It will work with this also. One heading is enough. It is addressing the demand of the question. Go with one heading itself. Okay. Fair enough. Let's go to the next. Next question. Take a few seconds and read the question. Yeah. So this question we have, clean energy is the order of the day. We have a statement and there is something else is asked. Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international, space is not there, various international fora in the context of geopolitics. Okay. So how are you going to approach this question? So in intro, I'll explain the content or context of this question within the answer because it's very straightforward question. And the keyword here is describe. So you are not supposed to do any analysis. You are only supposed to show exactly what is India's changing position with regard to climate change. So how are you going to intro? You have a statement given, clean energy is the order of the day. So you can give an introduction. The best way is give some substantiate. Answer the aspect of why this statement, give some examples, give something which will substantiate this statement. That way you can address the intro part. In this question also, you can have only one body because we are only supposed to describe India's changing policy. And here you can have divisions. India's first policy was like this,
next India became like this, next India became like this, and now India is like this. That division you can give. Beyond that, the answer doesn't demand any other section or even doesn't demand any other analysis. So don't do that. In conclusion, we will come up with some vision, we connect with something and conclude the answer. So very simple structure, very easy to understand question. But this question difficulty is you need some clarity of concepts to really answer this question. If you answer this question purely from what is current happening or what is India's current stance on climate change or clean energy, that is not going to fully substantiate this question. So you need some clarity, we will explain it within the answer. You need some clarity on how India's climate policy evolved over the decades and what it is today. This evolution clarity you need to answer this question. Okay, let's move ahead. Yeah, so in introduction, what we are trying to do, we are trying to answer why. Yeah, we are trying to answer why. Climate change is rush to clean energy, redefine present day politics, and is why climate change, all these talks are or climate change is order of the day, because it is the biggest existential threat before humanity. Climate change is the biggest existential threat, that's why this is order of the day, that's why it is in talks everywhere. You can give one example showing why climate change is a big threat. QChamp, even a strategic organization with like Quad is having some basic part of the grouping for climate change. Any other organization is you took, it will have some talks or some agenda or some working paper going on regarding climate change. So you can cite some examples, some organization example, and due to that's what we are going to do. We answered why this is on talks and we given an example. That will suffice in introduction. Let's move ahead. Now we are trying to see what is India's climate policy throughout the years. Okay, so first phase, it is in 1990s. In 90s, what was happening, if you can recall, it is in 1992, first Earth Summit happened, UNFCCC was formed. Now UNFCCC was formed, of course India is a part of it. Now what is the UNFCCC next major thing they come up with is Kyoto Protocol. Now once UNFCCC come up with the Kyoto Protocol, what was it? What was the protocol? It was simply giving specific targets for developed countries. Countries should achieve these targets. If they are not able to achieve this, they will be penalized. So that was the protocol, and different targets depending on historical emission, depending on emission intensity, depending on GDP per capita, all these, taking all these elements into consideration, targets were given to different countries. And where does India come here? As you can see, India is here. Non-Annex B countries without binding targets. India was not given any targets. So this was what happened in Kyoto Protocol. But why we are answering why India was taking this stance. Why India was taking a stance that India was stonewalling commitments. India was not ready to have any commitment, not ready to take any commitments. Why? Because at that time, this is time of 90s. That time Indian climate policy was highly based on climate ethics. What India was saying, see, the whole problem of greenhouse gas emissions, this is not created by India. Even today, the historical emissions, India just emit 4% of all the extra greenhouse gas that is present in the atmosphere. The whole gas or the problem is created by developed countries. Their excessive emissions starting from 1850 created the problem. So it is not India's responsibility to solve the problem. It is the responsibility of the developed world to solve the problem. India is not going to take any binding commitments. India is not ready for that. That was India's stance during 1990s. And its best example is Kyoto Protocol. Climate ethics, you can say historical responsibility. This led to North-South divide. What is North-South divide? North is developed countries, South is the developing countries or underdeveloped countries, and India was seen as a leader of this group. So this was the whole dynamics happening in 1990s. You can definitely write 3-4 points in this section, I guess. Let's move ahead what happened later.
In 2010s, if you see, by the time things were changing, like in 90s there was very limited awareness on the intensity of climate change, but by the end of 2000s everyone got to know that climate change is a very big problem than we earlier thought, and it's really started to happen. Something more needs to be done. Okay, then it is that time. And one more thing I want to add to hold this talk is, during 90s India's major policy interest was energy security. India was not really looking at energy, clean energy or white energy, blue energy. India's policy focus was highly focused on energy security. We are a growing economy. Post 1991, our economy and energy demand is exponentially going up. So energy security was the key focus of India's whole happenings in 1990s. Now come to the other slide. In 2000s, late 2000s, what happened? This time the awareness started building up. One is awareness. Second, climate vulnerability is becoming a major problem. Thirdly, one more thing is happening. What is it? CDM, Kyoto Protocol. This is a clean development mechanism under Kyoto Protocols. Under this mechanism, developed countries like USA or European countries, these countries are coming and investing in developing countries like India or China or African countries. Why they are doing it? To meet their commitment requirements. If they suppose an industry, cement industry in Germany and cement industry in India, if in order to meet the requirements for Kyoto Protocol, Germany want to check, suppose, some amount of greenhouse gas emissions, you have to check in German industry by investing in German industry. So German industry will be already very advanced state of technology they may be using, and to get a considerable efficiency gains and check the greenhouse gas by investing there, you will have to really huge amount you have to invest. Maybe suppose $4,000 you have to invest to get a incremental change in greenhouse gas emissions. But if you make the similar investment in India, Indian cement industry may not be using that much advanced technology. So even if you just give the German technology to India and give the funding to implement the same to India, India can implement it and India can create considerable greenhouse gas emissions reductions with using the same amount of money. So the whole picture is, and this reduction will be credited not in India's account but in Germany's account, and their Kyoto Protocol agreement or their demands will be met up. So CDM becomes a very efficient method for developed countries to meet their requirement by investing in developing countries, and it becomes a tool for developing countries also to facilitate tech transfer, to facilitate more investment in clean energy, all these things. So at one side the awareness is going on, another side the vulnerability is increasing, and third side the benefits of clean energy or climate mitigation is increasing. So due to all this, the position of India started changing. India is now looking towards accepting common responsibility. Before accepting common responsibility, India started domestic reforms also. One example you can cite is in 2008. India started the National Action Plan for Climate Change. It has different mission for solar, wind, energy efficiency, sustainable development, and all these things. So in 2008 we started this, and by 2009 Copenhagen summit, India said that India is willing to accept the certain targets set by developed countries or UNFCCC or any organization, but India also very much focused that there should be equitable burden sharing paradigm. ऐसे नहीं होगा all burden will be put on India or developing countries. If there is an equitable burden sharing mechanism where major part of the burden is with the developed world, then India is also ready to be a part of the climate mitigation initiatives. So India's stance become more internationalization, as you can see. But even though India's stance is
showing so much trends of internationalization, India is insisting on responsibility of the developed world. India is not taking a hand out of it. You can see this another reflection. 2009 Copenhagen summit I told. In 2010 what happened? Insistence, India and developing countries insistent, let the developed world to come with a plan of 100 billion US dollars. 100 billion US dollars per year transfer will be made by developed countries to the developing countries every year from 2020. This was promised in 2010, even though it doesn't materialize, but India's position you can get clearly from all these developments. So when you are writing answer, you should write the changing stance of India, why the stance is changing. You should cite some or give some examples like Copenhagen summit I told, 100 billion example, some example to substantiate the argument which you are making that Indian stance is changing. Okay, let's move ahead. Now by mid 2010s, what is the major thing that happened during this time? That is Paris Agreement, of course, Paris Climate Agreement, and in this climate agreement, India accepted CBDR. What is this? Common but differentiated responsibilities. So what it says is, India will come up with its own targets. ऐसे नहीं होगा UNFCCC or some other organization will set targets for India. India will voluntarily set its own ambitious targets, and this target we will work all, we will focus all our agenda or work with these targets, and India was accepted it in 2015. So again you can see a changing stance. First India was just accepting the responsibility, now India come to a position of accepting a target also. Even though it is not binding, it is a voluntary target, India accepted the targets. So if you are writing an answer, you can cite some of the example like 33% by 2030, these were India's INDC targets. So India also started taking some of the targets by mid 2010s. Now moving ahead, by 2022, what is happening? Here you can see, picture is not coming, I am sorry for that. What you can see here is, by 2020, India's approach is becoming more proactive with regard to this climate change or clean energy. How the proactivism we can see? India is already, see this image, black one, India is already third in renewable energy. India is already leading solar energy, wind energy, different aspects. India has already created huge amount of growth. Now this gives India strength. Now we have this much of expertise, we can expand it to other regions also. So this development of India into a leader in renewable energy, that is the base for India becoming more proactive approach in environment. You can say formation of International Solar Alliance. That means India is asking, forming an organization or playing a leading role in formation of an organization and asking all other countries from all parts of the world to come and join this organization. ISA, you can cite. Another project is One Solar, One Sun, One World, One Grid initiative. So that Indian electricity grid, India is trying to integrate with Southeast Asia, with West Asia, with all this integrated grid concept was upheld in this. So the change you can see, earlier India was even not ready to address its responsibility for climate change. Now India is leading the developments regarding the area. India is setting itself ambitious targets, as you can see. India is another organization you can cite is CRDI. Yeah, CRDI, another organization you can cite, and that is also India played an instrumental role in formation of this organization. And Glasgow, this is India's Glasgow declarations. India has come up with ambitious targets, 500 gigawatt by 2030, 50% of India's energy requirements from renewable energies. So what is happening is, throughout, if you look at the broad picture, from a position of non-active or non-responsibility, India is now leader of the renewable world. So this transition is what is asked in the question. Describe India's changing policy towards
climate change. So if you address this correctly, 4 headings you have to think. Reason, you will not find any difficulty in citing CRDI or ISA or Glasgow Summit, but you have to think from a broader historical aspect and you can connect it. One more 4 factors you can add is non-UNFCCC, since it is in various international fora is being asked. So non-UNFCCC, how is India's attitude towards these attempts? Something like Montreal Protocol, something like Kigali Agreement. All these agreement here also, India's approach is not changing that much. India is only ready to take the responsibility if developed world is doing much more. Developed world is ready to do much more, then India is ready to accept the responsibility. So this also you can cite, that will give a completion to the whatever is asked in the question. So that's it. One more, these are the 4 phases. I already talked about this. These 4 phases, inside these 3-4 points you can easily generate if you have the clarity of the content, and examples you have to substantiate it and write a very decent answer. In conclusion, we will write something, we will try to relate it with some vision. Here what we are doing is why India's climate change policy is evolving. That reason we are going to say, and in future climate change is going to play a very dynamic role in Indian foreign policy. That is what is being written here. So you can go through it, and yeah. So that's it for today. I hope you have gone through, I have done justice to all the question. I hope you have learned how to approach the question. I hope you got a very brief understanding on all the concept that is being discussed here. You should go through the other topics also. If you are interested, you can go through history classes by Rajesh sir, polity classes by MS sir. Rajesh sir is taking geography, environment, all those. So you can go through the other classes also. Hope you enjoyed the session. Thank you very much. All the best everyone. Hello everyone. Today we are going to have a discussion on 3 questions from GS2 governance part of the paper. Myself Vivek A. Let's get started. So before going into the question, let's have a look on what you have to look for in this discussion. So we are going to have a discussion on governance. If you look at the PYQs or questions which are coming in from governance part, one thing you can see is in governance there is every time a cross linkage between different questions. In 2022, if you look, there is a question from donor agencies, how these lead to weakening of community participation. Donor agency is a different concept, community participation is a different concept. Likewise, you can see in every year, like sometimes they ask e-governance. How e-governance will lead to local self-governments, empowerment of local self-governments, or it may lead to women empowerment, something like that. What you should know here is, questions may not be as direct, as straightforward as what you have prepared and going for the exam. Question can have different connecting linkages with different aspects of governance syllabus, as well as social justice, as well as polity, and sometimes with economy and other aspects of the question. Like in this year you will see a question on Gati Shakti. So you should have a broad approach how you are going to generate points. If a question came on different aspects of different linkaged question came, how you are going to generate points. This you should have a clarity, and that is something which should be your key takeaway from the whole discussion what we are having. Clear? Let's move ahead. So this is the first question we are going to discuss. The Gati Shakti Yojana needs meticulous coordination between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity. Discuss. So what are you going to write? Gati Shakti program or the scheme is always in news. It's being launched in last October or so. So it's not something which you haven't heard. Most of students will be well aware of it, and it's not a difficult question also. It's very straightforward question. So in introduction, one of the best approach here is you can start with defining what is Gati Shakti scheme. That will suffice your introduction part.
Second, in body, what you are going to write is, what is asked? Meticulous coordination between government and private sector to achieve the goal of connectivity. So, discuss is the keyword. So, what you have to do here is, you don't need to critically analyze the scheme, you don't need to go into that positive negative mindset. Here what it demands is, you need to show how meticulous coordination between government and private sector. This will lead to how connectivity, how this coordination will lead to better implementation of connectivity projects or realizing the goal of connectivity. So, this you have to show in your answer, in your body. Clear? Conclusion, you can always conclude with some way forward or with some vision, connecting it some with future vision India is upholding or India is trying to achieve through this scheme. Likewise, you can give a conclusion. So, this is a basic structure you need to follow in this question. Let us move ahead. So, introduction, as I told, we have PM Gati Shakti is a digital platform to bring different ministries. When it was started, there were 16 ministries, now the count is 30 and it is increasing. Now, if it is an infra project, it will, who will be the stakeholders? Major ministries. Railways will be there, roadways will be there, waterways will be there, this will be major ministries. And why they are coming together? For integrated planning and coordinated implementation of projects. So, you don't need to memorize the whole segment of it. What you need, why this, who are coming together, different ministries to implement coordinated implementation of the planning and implementation of projects. This thing you need to know. Now, here I have shown different dimensions of Gati Shakti scheme. You can see different ministries are there. There is a national master plan for implementation. There is a target of 25,000 kilometer roads to be constructed by 2023. And government has come with a unified logistics interface platform. This platform will provide data. Like so much, all the data regarding infrastructure projects will be collected by the government and single platform will provide the data. And there is system for sharing it with private sector also. So, different aspects is shown here, like private train project was there. So, one mistake which you need to avoid here is, the question is not telling you to list down different provisions in Gati Shakti scheme. The question is regarding another aspect. So, you should not, it's a 10-marker question. So, of the 2 pages you have, you should not do the mistake of writing on Gati Shakti in the one full page. You can start with Gati Shakti, 2-3 lines it will take. That is all needed from Gati Shakti aspect. Now, you can use all these points in defining, in explaining how different government sector and private sector should come together in all these aspects, so that better goal should be achieved. That you can use, but this should not be explained as such. That mistake you should be taking note of and you should avoid. Now, the major part of the question, how meticulous coordination between government and private sector will lead to better implementation of the projects. So, here how you can generate points, so that you will comprehensively cover all dimensions. One approach I suggest is, go for the life cycle. We are talking about infra projects. So, how an infra projects planning or development will start? First step will be identification. Identification means what project should be implemented, like is there a demand for an airport, or is there a demand for a railways or roadways, whatever it is. Identifying what project is needed. Once a project is identified, there should be some level of planning, designing, like different variables you should set, like there should be the size of the project, the different dimensions, like in future expansion, what it is, the prospects. So, these aspects should be taken note of. Now, after the planning, there come financing. How the project can be financed, like government will be the sole financier, or government and private sector will combinedly fund the project, or private sector itself will take up the project. These aspects should be dealt here. Now, after financing, we have clearance. If any projects, like if suppose an airport is to be constructed, there should be environmental clearance to be get, and other so many clearances, departmental clearances. So, that aspects. After that, land acquisition.
Now once land acquisition, we already know there are so many issues going on for years. So if you can cite one or examples how coordinated attempts will solve some of the issues, it will suffice. Now once land is acquired, there will be construction phase or implementation phase. Now once construction implementation phase of the project, after that maintenance will be there. And there will be end of life. So this is the whole life cycle of a infrastructure projects. Now if you think in this aspect, like how government sector and private sector coming together will lead to better identification of projects. How coming together of government and private sector lead to better designs, better planning. How better financing options, how we can explore those. And how clearances, in all these aspects, if you can think and generate 1 to 2 or 3 points in each head, then that will suffice. It will give you more than 10 points. In a 10-marker question, this is more than enough. So the takeaway is the approach which we are following to generate different points regarding this. Let's move ahead. So as I already told, in project identification, you can always cite promotion of Swiss challenge method. What is Swiss challenge method? It is private sector can itself come up with and government and say this project should be implemented. Private sector can come up with projects. Now usually what happens, government will decide whether the project should be constructed or not. Then government will start the tendering process and all other process. In Swiss challenge method, private sector can propose and come up with a projects. So what government should do? Government should promote the Swiss challenge method. What private sector, what should be their role? They should stay away from all the collusive aspects. Like it is not taking off in Indian infrastructure regime, Swiss challenge method, due to collusive aspects and corruption between the private sector. So private sector should avoid this, while government should adopt different methods like institutional methods to better implementation of Swiss challenge method. So in project identification, we got 1 point. Now in project planning and design, as I already told, government as a part of Gati Shakti has implemented a ULIP, that is an integrated portal which will give all data. Now if government is giving all data, private sector can do lot with this data. Private sector can develop different apps, develop different insights, develop what kind of projects will be optimum, different AI models, different models can be used to propose or project what will be future aspects in 25 years and what kind of projects we should do the investment. All these research and analytical part can be taken up by private sector, while the data government is providing through the ULIP portal under the Gati Shakti scheme. So this can lead to better projects implementation. Now project financing. Like if you can cite, remember, National Infrastructure Project pipeline was launched by the government on just before this Gati Shakti came into implementation. Here government is implementing something like 1 lakh crore rupees infrastructure investment will be done. In this, private sector itself constitute 22% of the investment. So private sector itself is a big stakeholder, like direct financing is going on. Now in private sector may not be able to take up all the projects. Something like some projects in Northeast where suppose a airport is to be developed in Sikkim, then private sector may not be so much enthusiastic to invest there. So government can come up with guarantees, government can provide guarantees, government can expand the viability gap funding proposals. So these are different aspects in financing how government and private sector can come together and lead to better connectivity projects. Now in clearances what we can do, we already have a single window system. So Gati Shakti platform can be integrated with a single window system, and this will lead to faster clearances. It will take less time. This already we have an integrated database. So all this can be integrated into Gati Shakti scheme, and judicial issues can be tackled. Like whenever a infrastructure project is like in talks, there will be some judicial, somebody will fight the case in Supreme Court saying this project is destroying the environment, the project is
destroying the livelihood of tribals or livelihood of people living there. So these cases, if you already know the case of judiciary, more than 3.5 crore cases are pending in judiciary. So it will be taking maybe 5 years. So the whole process will be delayed for that much of time. So to avoid this, government can come up with some sort of special courts or some sort of tribunals. All this can be established. Now addressing land acquisition, how can this be done by integrating government as well as private sector? Land acquisition, aspect of land acquisition is done by a private company, it leads to so much clashes. So it is better government do all the land acquisition. Government will do all the land acquisition, while private sector can, what they can do, they can co-invest in the rehabilitation projects. So this is something innovation, like co-invest in rehabilitation projects by the same company. This one lead to better land prospects in land acquisition. Now project construction, project implementation, think on example lines, like we already have a private train project. The project hasn't take off, like government come with a proposal, government call the tender, but very low interest from private sector. So this should be somehow tackled, like government should come up with something, offer more flexibility, offer more freedom for the private sector to run the trains, to handle the track signals and future aspects of it. So government could add little bit of flexibility in private train aspect that you can cite. In other Shekhar committee, this committee have cited that government need to, what government need to do, government need to integrate private sector in critical infrastructure along border areas. So private sector has lot of technologies like L&T and other private sector have huge amount of technology. So this technological aspects can be used for strategic interest like building crucial infrastructure projects. This can be employed. So in operation and maintenance, like in private structure or infrastructure projects, what we will see is usually it is a 25-year or 30-year. So what happens in, there will be unforeseen issues. For example, we have this, suppose a road is constructed, toll is to be collected, and then COVID came. Then when COVID came, all the toll collection will go for a toss. So in that case, if government look for strict implementation of the whatever the contract it is, that will lead to private sector will find it very difficult. So government should at least provide some flexibility in contracts, at least in long-term contracts for unforeseen issues. Now the whole Gati Shakti aspect we are talking about infrastructure projects in India, while this is equally applicable for infrastructure projects outside India also. Like you can industrial corridor with Bangladesh or India, Myanmar, Thailand, trilateral highway, all these aspects, cross-regional aspects also, the Gati Shakti has a future and government can promote private sector through Gati Shakti in implementation of strategic projects across the region, not just in India. So if you think, I already given you a framework to think, there is very easy to generate points and the points which are generated will comprehensively answer all dimensions regarding the infrastructure and goal of connectivity. So this is what you need to do in the answer and this will address the key demands of the question. Let's move ahead. In conclusion, we can come with some vision which India is trying to achieve, something like 20 trillion by 2040 on back of this infrastructure development. Second, you can change that so far Gati Shakti is a platform of interministries. Now if Gati Shakti truly want to be a game changer, it should expand into including all stakeholders like private sector, international issues I have already told, and all processes should be brought under Gati Shakti. Then only it can be a real game changer and true vision of these connectivity projects can be realized through Gati Shakti. So this is how you can conclude the answer. So overall, I have explained what should be your approach to this question and what are different dimensions. In points, you can always add on with new current affairs coming, new events happening, you can always add on points. But the approach should be, if you think on a life cycle approach of an infrastructure project, it becomes very easy to generate points and it will comprehensively add all the dimensions regarding the aspects of infrastructure projects. So that's it. Let's move to the next question. Reforming the government delivery system through the direct benefit transfer scheme is a progressive step, but it has limitations to comment. So if you go to answer this question, this is
some question which you will feel really happy about, because DBT it's something very everyone studies, we are always in news, and every material you go through it will have DBT schemes, its positive, negatives. So, and the question is also asking, the framework is also very easy. Like you give an introduction, the question is demanding two things: how DBT scheme is a progressive step. Comment is the keyword. So, we will try to elaborate on what is the statement given. So, how DBT is a progressive step. Now, what are its limitations? You can include a way forward if you have space. So, the question topic is also simple, what is asked is also very simple. It is a very easy, straightforward question. In this kind of question, what you have to focus is, you have only 2 pages. You write about positives of DBT and it filled your this much, and you have little space for writing limitations. Even though if you have so much points, you should have a sense how much you are going to write, how much you are going to implement, and how the 2 pages you are going to divide on different headings. This thing you should have a clarity on. Rest, it's a very straightforward. Let's see what you're going to do. In introduction, you can either start with defining what is DBT. Here also you don't need to memorize everything on DBT. You can generate a definition in during the exam itself. DBT, what it does, it directly transfers the subsidies or other transfers into the account of beneficiaries. So that is what DBT does. Now you can cite one example, PM Kisan scheme, where the 6,000 rupees is transferred to the farmer account directly by the government. So you can cite one example. So this will suffice your introduction. Another approach to introduction is, you can cite some data. If you can remember any data regarding DBT, it's a very good approach to start with data. Like in 2021-22, 6.3 lakh crore transfer were rupees 6.3 lakh crore transfers was done through DBTs, and 717 crore transactions were carried out. If you have any data, you can always start the answer with data also. Both are very equally good options. Let's move ahead. Next thing in body, first thing what we are going to address is how DBT is a progressive step. How DBT is a progressive step. How you can generate points in this question. Last question, we look at the life cycle of infrastructure projects. What we can do here is, what are the stakeholders involved? See, if DBT, however the DBT is coming, it is coming from the government. So there is government, there is a beneficiary, of course, whose accounts the transfers are being made, and there is a market. Why market is coming here? Because government earlier was giving kind. Kind means different goods were giving directly into the beneficiary, and now the government is giving money. So there is some market linkages. So these are different stakeholders you can find in these questions, and you can think on these regards. How DBT is a progressive step for government. Example, it can lead to better identification of beneficiaries. It can lead to preventing leakages. It can lead to smooth integration across different ministries. And how it is beneficiary, it's a progressive step for beneficiary. Like COVID came, we have seen so much of transfers happening. Like it will lead to accountability. You can, if money hasn't came, you can always go and check. It will give to more freedom to the beneficiary to how to use, how to prioritize his demands. So different aspects you can think from the beneficiary aspect. How from market aspect also, if you can think of 2-3 points, you already get more than 9-10 points. So that will suffice. That is how one way of approaching these questions. Cool. Let's move ahead. So that is what is done here. You have from government side, if you think it will lead to better identification. If you can cite some data, like how it lead to better identification, because we have Aadhaar framework, we have Aadhaar linked bank accounts, then we link it with PAN card. So all this will give government a better picture on who is the real beneficiary and who is not. This can be very purposeful tool. Second, preventing of frauds. It can lead to like fake account, fake beneficiaries can be avoided, as already told. Now it can also lead to leakages, checking leakages.
If you can remember the Pahal scheme. What is Pahal scheme? The LPG subsidy scheme. In this scheme, around rupees 60k crore were saved by the government in 4 years of implementing the scheme. So this you can cite a very good example. Now smooth coordination among ministries and departments. Like earlier a fund, if has a fund to reach beneficiary, central government fund, suppose it has to come through state government, then district administration, then local bodies, then beneficiary. Now you can just give it directly to the beneficiary. So a lot of middle hassles, steps are eliminated. So government process become very easy. Now it also reduces burden on government to directly provide goods and services. Like you can cite example, Food Corporation of India. How much of food wastage is happening? 30% of food grains are getting wasted, or some data you can cite on wasting food regarding the food security as Food Corporation aspect. You can cite it here. Now this is all from government aspects. Now you can think from beneficiary aspects, like it promote accountability, like there will be social audit, there will be other audits where government and the beneficiary will be directly a part of. Other aspects, earlier when suppose a Manrega worker didn't get paid in time. Earlier when he approaches the institution, there will be always like passing the ball attitude. Something like it is due to fund didn't came from here, and the Manrega worker mostly he don't have tools like RTA, he don't have the knowledge or access capacity to file RTA. So he will be always out of the system. Now when DBT is here, he can actually know if fund hasn't came, this is the issue, here is it is being blocked, this is the issue. He can really have an opportunity to make the political people accountable to whatever is happening. So you can cite that. Ease of service delivery, I already told, there is no middleman involved. The funds are directly being transferred into the no contractor, no any other person are involved. Relief transfer, this you can always cite. In COVID times, some data is there, like around 98 crore beneficiaries, the DBT transfers have been done. So this is a very great achievement. You can cite, if you remember the data, you cite that. Otherwise, you can always remember that PM Garib Kalyan Yojana. So PM Garib Kalyan Yojana was implemented through DBT. So this you can always cite. So another is from market perspective, if you think, shifting to income support over subsidies. Something, what is benefit of shifting to income supports? Like if you remember, Indian government have some sugar subsidy program. This program in 2019 or 20 was being contested in the WTO by Brazil, Australia and other countries, and India lost the case. So subsidies always have some issues. Subsidies always creates a market distortion, not only the international market, within Indian market also. Why there is so much corruption with PDS? Because government is providing rice for 1 rupee, 2 rupee. So if the PDS guys can like black market it, it can easily sell it for 30 rupees, 40 rupees. So there is huge market distorting elements if government is providing subsidies or directly providing goods and services. That can be eliminated by providing income, direct income. That is what we have seen in PM Kisan scheme. So this example you can also cite. So the whole picture, if you think on different stakeholders dimensions, it's become very easy to generate points, and 2-3 examples in each direction you can easily generate. So that will substantiate our first part of the answer, that is how DBT is a progressive step. Now coming on to the second part of the question, what are the limitations of the DBT scheme? So how you are going to address this part? We can follow the same approach. With government, these are the issues of DBT scheme. With a beneficiary, these are the issues with DBT scheme. Now with a market, these are the issues. You can follow the same approach. So in identification, what is the issue government is facing? It's always good, Aadhaar with bank account, with PAN linkage, it's having a very foolproof system. But it's still not fully implemented. There are still loopholes in identification of beneficiaries. Most of the DBT scheme use socio-economic caste census 2011. It is always 11 years old. So the caste, we don't have enough data, and even the caste census is having its own limitations. It is not fully a statutory census data. So having data errors are there. So inclusion and exclusion errors
are totally not avoided with the implementation of DBT. Second, now DBT need bank accounts, DBT needs digital systems. So if you don't have these, there is still the people who are left out of this, then your DBT system is having severe limitations. You can cite that when the Aadhaar linked PDS intake was implemented, the people who were left out were the most vulnerable people, those who are tribals, those who are from remote rural areas, these people were left out. Most vulnerable people were worst affected. You can cite that. Now policy distortion, how it leads to policy distortion, you can see PM Kisan scheme. In this scheme, the landed farmers are getting the money, but there are so many farmers in India who don't own land in their name. They will be farming in some other's land. So all these people are left out. So since we need a foolproof system for identification of beneficiaries, we made the DBT, we made all this. But at the same time, a different section of the people who really need help, who really need assistance are being left out of the policy. So this is a issue you can cite in your answer. Now DBT is also leading to politicization. Despite it having so much of benefits, it's not that it will not be used for politicization. So some election is coming, government is coming with a scheme with having name of Prime Minister XYZ scheme or Chief Minister XYZ scheme. Now the idea of coming behind this kind of names and this kind of schemes is that political mileage, to get the political mileage out of it. So politicization of DBT schemes are also happening. Now misuse of transfers, this is one of the major issues. Like for say, if suppose X, so misuse of transfers. So what it says is, like suppose X money is transferred into account of the beneficiary. We already know, even though the transfer is done to the woman account, we already know our society is highly patriarchal. Highly patriarchal means the bank accounts will be mostly operated by the members of the family. Now if men is operating the family account, operating the bank account, there is always a chance the money will be given for food intake, for nutrition, etc. But there is always a risk of money being used for liquor, gambling, smoking, etc. All these things comes into picture. So there is no guarantee the XYZ transfer will be used for intended benefits. So this is also a limitations of DBT. You can think on similar lines and generate 4, 5, 6 points, and that will suffice the demands of the question. So this is a 10 marker, you have only 2 pages. If you have space, you can go for a way forward 2-3 points, or you can make your conclusion itself a way forward like within a 1 paragraph and like that also. So since we are learning it, just see what are few options for improving the DBT system. So in Economic Survey 2015-16, it has said that it analyzed how the paradigm of DBT, and it come up with the outcome that DBT is of course very good, but it cannot be implemented everywhere. There BAPU is also necessary. What is BAPU? Biometric Authenticated Physical Uptake, BAPU. So at some cases there is still need for physically delivering the services. All the government services cannot be delivered through DBT. So that is the finding of Economic Survey 2015-16. You can cite that. Second, we have recently came up with a new system of e-rupee. What e-rupee does? It will give e-voucher. Instead of giving money into the account of beneficiary, it will give e-vouchers. And what this e-vouchers will do? E-vouchers can be used only for buying XYZ things. Like if a e-voucher is generated for buying food grains, this can be only used for buying food grains. So by this way we can avoid the misuse of transfers. That problem can be addressed by e-rupee. So this is still not fully implemented in large scale. So you can cite like implementing this in a larger scale or better institutionalization of e-rupee can lead to better implementation of DBT schemes. Now there is a international case study you can always cite, Brazil's Bolsa Familia program. This program, all the money transfers, most of the money transfers are done to the
female bank accounts. So you can cite that how it implemented, it can, to some extent it can check patriarchy. So conclusion, you can come up with, even though this DBT is a very progressive step, there is need for more reforms, more changes, and more spirit of innovation should be upheld so that this whole system becomes more better and beneficiaries will be benefited. At the same time, government will also. So similarly, you can cite a diplomatic stance and conclude the answer. So hope I addressed all part of the question and you got the approach. Like in this question, in first question, we have followed a life cycle approach. We see in the infrastructure aspect, how different parts of life and connect it with the demands of the question. In this question, we followed a stakeholder approach. We see what are the stakeholders involved in this case, and we try to generate points depending on the perspective of each stakeholders. Clear? So let's move ahead to the next question. This is a final question for the day. So let's go through the question 1. Do you agree with the view that increasing dependence on donor agencies for development reduces the importance of community participation in the development process? Justify your answer. So you can see this is, on first read it seems a little bit of tough question. How you are going to address it? This is one of the interlinkage question, which interlinkage came from aspects which you are not well aware of. So that's being a challenge in this question. So how are you going to address this? Here we have a donor agencies. See what all is including in this. Donor agency is there, then we have community participation, and then we have development process. So donor agency, community participation, development process. These are different keywords from the question which you can take out. Now you should have a basic clarity on what is this donor agencies. Who are they? It includes World Bank, it includes Asian Development Bank, it includes wealth funds, it includes JICA of JSE of Japan. So these kind of organizations which will give funds in developing countries, especially like India or African countries or other developing countries, for developmental projects, they will give the funding. So these kind of agencies are called developmental donor agencies. So this basic understanding you should have. Now community participation, you should also know that community participation means it includes civil society, it includes government system, it includes NGOs, it includes pressure group, SHGs, all those things which you have read in the syllabus, all comes under community participation. So this understanding also you should have. One more conceptual clarity if I see, suppose you can think World Bank is a developmental agency. Now if World Bank is implementing a project, how will World Bank implement a project? One option is World Bank may directly implement the project in India. Another option is through the government, World Bank, and like you have seen that some scheme 50% of the funding will be coming from government, 50% done by the government. So through the government also World Bank are implementing the projects. Another option is through NGOs. These donor agencies can give fund to NGOs and they will implement the projects. So there are different ways how the developmental projects are being implemented. So if you can think on different dimensions, and if you want to generate points, if on each of these dimensions, what are the issues, what are the positives you can think of, it becomes very easy to generate points. Even though it's on first look, it looks like a very difficult question, but some kind of brainstorming if you can do on different keywords given in the question, you can still decently attempt this question. Clear? So intro, body, conclusion, what you're going to write? In intro, you can start with defining who are the donor agencies. You can cite some examples. In body, you can include the keyword here is justify your answer. Do you agree is being asked. So do you agree means you can write two aspects to it. First aspect is how donor agencies will reduce community participation. On that you can generate points, the first part of the body.
In the second part, you can say how donor agencies are not always bad. They also promote community participation in some aspects, 1, 2, 3, 4, 5. You can write points, and in conclusion, you can clearly state this is your opinion, and this should be done, or this should be the futuristic option available. So something like that, you can cover up the whole demands of the question. So let's move ahead. So this is introduction, you can see here. Donor agencies delivers, and it's also not, you don't need to by heart all the projects. If you have a basic thinking process, you can easily build up these definitions within the exam hall itself. Donor agencies, what they done? They delivers aid or execute development projects in aid recipient countries, which can be India or any other countries. An example, you can see World Bank is funding the DRIP project. What is DRIP project? It is a dam rehabilitation, dam strengthening, dam data collection, all these aspects. This project is being funded by the World Bank. You cite an example, you give a very straightforward, simple definition on it. This will give suffice what you want to write in the introduction. Let's move ahead. So here we have donor agencies, how importance of donor agencies in community participation. Like how donor agencies are reducing community participation. So how are you going to address how are you going to generate points here? Here you can, one approach is you can follow the stakeholder approach we used in the previous question. Like we have the donor agencies, you have the community, you have development project, and this will be maybe implemented through NGOs also. So you can easily derive 2-3 points how the approach of the donor agency will lead to reducing community participation. How, if NGOs are involved, you are already may have a lot of points on issues of NGOs. So 1-2 issues you can cite, and how it lead to weaker community participation. Now if developmental projects, how government system may be weakened, how accountability system may not be available, on different dimensions you can think of and generate points. Here also a stakeholder approach is very effective in this question also. So let's see how we have done here. See, if the government, sometimes the conflicting interest, suppose conflicting interest, suppose coal, take the example of coal. Suppose World Bank is coming. World Bank say that there should be promotion of clean energy, there should be government, World Bank will be more interested to fund renewable energy. But our national interest is, our most important priority is development, poverty reduction. For these aspects we need cheap fuel or cheap electricity. For that, coal is inevitable for India. So India's developmental vision needs coal. At the same time, the donor agencies may not be so much interested in funding for coal. So what I am trying to say is, here there will be a conflict of interest or conflicting interest between government agencies and government policies or national interest. This come into picture. Now these donor agencies can have ulterior motives. Ulterior, mainly bad motives. You can cite some IB report in 2014 which says that environmental activism is being funded from outside, so that the developmental projects in India will be stalled. IB report you can cite. Now sovereignty issues, like in Sri Lanka we have seen the debt checkbook diplomacy of Sri Lanka by China in Sri Lanka. This lead to debt crisis, sovereignty issues in Sri Lanka or other countries. This you can cite. And how donor agencies come into picture, like you can cite Asian Development Bank. China is the highest stakeholder and China is the most influential member of the Asian Development Bank, and if this bank is coming to implement projects, China may have a upper hand in influencing its policies. So likewise you can connect it with donor agencies and you can make a point on their motives. Secondly, if a donor agency is coming to implement a project, it's not that they will come and implement the projects as with the giving all the freedom on other dimensions. There will be so much obligations, there will be so much XYZ to be
fulfilled. Like if IMF is coming, IMF is giving fund for Sri Lanka recently we have seen, but IMF come with so much of reforms, these XYZ, these all reforms you implement, then you give the next quota of funding, like that. And consultants, like a project is to be implemented, the government agency will approve only international consultants, something like Goldman Sachs or McKinsey, these kind of consultants, then the project has to take them into consideration also. These kind of obligations will come with these projects involving donor agencies. Second, I already told, there is NGOs involved, there is always a scope for corruption. Now how corruption? You can cite some data, like CBI recently cited in the Supreme Court that less than 10% of the NGOs are really filing the audit reports, and NGOs have so many accusations on misplacing the fund, misappropriation of the funds. So all this you can cite as a corruption examples. Now you think about the other aspects, like here we were thinking on donor agencies aspects. Now here you can think on policy aspect or beneficiary aspect. Here the project implemented may be top-down approach. What is top-down approach? Suppose a project is to be implemented, suppose nutrition approach. Nutrition problem need to be resolved. Sometimes these donor agencies, World Bank will come and say distribute egg or meat in the midday meal scheme. Now it is worldwide it is approved, like eating egg or meat will be good for nutritious, addressing the nutrition problem. But the problem here is it will lead to conflicts with social values, conflict with religious values. This will lead to more problems. So these donor agencies will not be completely aware of social realities that is existing within the communities in India. So this can lead to issues, top-down approach of planning, designing, all these things. Now alienation of masses, how this comes into picture? Like we have seen the success of Jan Dhan Yojana. Now Jan Dhan Yojana, we have created accounts for so many people, crores of accounts being opened. One major issue we have found here is, even though the accounts are being opened, even though it is operable account, people are not using the accounts. People are not making use of it. In Swachh Bharat mission, toilets were being made, but the problem coming were people are not using the toilets. So this, how this can be addressed, that will through behavioral approach. You can see Mr. Prime Minister taking the Jadu and cleaning the roads. So this will inspire people to make the changes in their behavior. So if donor agencies involved, the scope for having this kind of approach will be very less. Now there is accountability issues, like if a donor agency is funding the project, CAG report may not be available, especially if it's funding through NGOs. There will be limited provision to use the Right to Information Act provisions. So this also major issues. Now if donor agencies are coming in and extending the benefits every now and then this can also lead to less cooperation within the society. Like people will create an attitude, they will always take the demands and they will not use the project for purposeful aspects. Like suppose XYZ money is being transferred, this money is purposefully used only when if it is used for sustainable income development. Now if this money is being just spent on any aspects and then the beneficiary is waiting for next round of funding to come, then this will lead to so much issues. Another aspect is social audit provision will not be available with the people. So people contact with development will go for a toss. Another aspect is there will not be no long-term commitment. Like if a World Bank is funding a project maybe for 2 years or 4 years or 10 years, but after that what will be the status of the project? If government is funding, there is a sense of sustainability in the future, but if these donor agencies are coming, there is always a risk of what is a long-term future or what will happen to the project. So these are different aspects you can think of, you can generate points. I think I have covered most of the points here. You can take away the approach we have followed here is stakeholder approach. We think from the perspective of donor agencies, we think from the perspective of beneficiaries, then we generated the points. Let's move ahead. Since this question, do you agree?
So there is always a scope for writing counter perspective. And what is counter perspective? Donor agencies are not always bad. Why they are not always bad? They bring in so much funding. Like if you take India, there is always capital crunch. There is always need for more funding. So donor agencies complement government's efforts. Donor agencies complement government efforts in filling the funding gap. Second, they bring in modern technologies. One example you can cite is the bullet train. Who is funding it? Japan's JICA is funding it. They are bringing modern technologies. Then what if a World Bank is trying to implement a project? They are not just implementing the scheme in India. They may be implementing it in Bangladesh, in African countries. So they have huge expertise with them. Expertise. One is they have huge expertise. Secondly, they have best practices, well aware of best practices. So these experience can be very handy when donor agencies are involved. Now they usually, World Bank is involved, they promote noble vision. What is noble vision? Gender equality or something like inclusive development. All these noble vision will be upheld by the donor agencies. Then skill development and training. You can give the example of 9 Manzil scheme. What is 9 Manzil scheme? It gives leadership training to minority women, and around 50% of the women will be 50% of the funding will be done by the World Bank, and this minority women will be trained on leadership aspect, business aspect, skill development aspect, all these. Also, it will also, these donor agencies are also giving training to the civil servants. Also, they are giving training to the students, college students, school students, etc. So an exposure with World Bank will give a lot of career opportunities for students. So in different aspects, donor agencies are promoting community participation also. They are bringing fund and installing new projects, means more community participation. Technology integration is happening, standards, best practices are coming, skill development is happening, they are upholding very progressive vision. So through all these aspects, donor agencies are creating more community participation also. That is what you want to say here. Now you can conclude the answer on a diplomatic note here, because donor agencies, even though there are limitations, they have certain utilities also. That is your opinion on how far do you agree. Clearly stating your opinion is always good in this kind of answer, and it should not be personal also. You have given the reason on both aspects, and you are given the explanation for whatever the inference you have written here. Now you can write a few words on best way forward, like whoever be the implementing agency, be it government, be it private sector or donor agencies, what we need is inclusive citizen-centric development processes. If that is there, whoever funding the project is not going to impact that much. So you can cite something like this, if you way forward an idea, if this is something which you need to institutionalize, this is something which you need to uphold irrespective of who is the funding agency or who is the donor agency. So if this is there, things are going to be okay. So on a forward looking note, you can conclude the answer likewise. So that is all for today. So what we have done today is we discussed 3 questions from governance. We have discussed 2 different approaches. One is a life cycle approach, we see in that infrastructure Gati Shakti question. Now we have seen a stakeholder approach. We have seen this approach in the later two questions. So these are different ways. If you think on these lines, the generating points part become very easy. That you should keep in mind in answering all the governance or social justice questions. So that's all for today. Thank you so much. Hope you enjoyed the session. All the best. I am Rajesh Vats and a faculty at the Kalam IAS Academy. So let's see कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और इसको कैसे हैंडल करना था, क्या क्या लिखने थे इसमें,
किस तरह से पॉइंट्स को बना सकते थे, है ना। देखते हैं, ये सब सारा क्वेश्चंस आया था आपका, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस थे सोशल जस्टिस पार्ट से, 2 15 मार्कर था और 1 10 मार्कर था, है ना। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी ट्रेंड एनालिसिस हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इस चीज़ का गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पार्ट का एक साथ मिलके ट्रेंड एनालिसिस किया गया था, और अभी सोशल जस्टिस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली ए लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन्स रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। कमेंट करना है। 10 मार्कर का क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों को 5-7 पॉइंट जो है ये बना के आप लिख देंगे, राइट। इस तरह का क्वेश्चन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इस पे पहले भी 2017 मेंस में भी आया था, वो भी 10 मार्कर आया था, तो उससे रिलेटेड फिर से 5 साल के बाद फिर से पूछ लिया इन्होंने। तो पहले तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इट इज़ ए लीगल डॉक्यूमेंट, देन ये दिखाना पड़ेगा कि विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनरीज। अब गवर्नमेंट फंक्शनरीज क्या होता है? गवर्नमेंट फंक्शनरीज वो होते हैं कि जो गवर्नमेंट का पार्ट है फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, इवन द आशाज एंड आंगनवाड़ी एट द ग्रास रूट लेवल, वो भी गवर्नमेंट का पार्ट होता है। देन मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो सब सारे पार्ट हो जाएंगे, ब्यूरोक्रेसी का सारा पार्ट्स आ जाएगा। देन लोकल लेवल पे जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, देन एमएलए, एमपीज एंड जो कि गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं, राइट। देन कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑल दीज आर गवर्नमेंट फंक्शनरीज। तो आपको क्वेश्चन में ये दिखाना है कि हाउ दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड अबाउट द डिसेबिलिटी एक्ट, हाउ दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड अबाउट द डिसेबल्ड पीपल, राइट। इसको लिखना पड़ेगा, और फिर ये भी दिखाना पड़ेगा कि सिटीजन्स भी कैसे इनसेंसिटिव हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं आप। इंट्रोडक्शन में आप इसको आर्टिकल 41 से कर सकते हैं कनेक्ट। आर्टिकल 41 किसके लिए है? सिक पीपल एंड डिसेबल्ड पर्सन का आर्टिकल 41 में जिक्र है। सो यू कैन कनेक्ट दिस DPSP आर्टिकल्स इन द इंट्रोडक्शन। देन आप ये बना सकते हैं कि आर्टिकल 41 के थ्रू प्रोविजंस ऑफ द सिक एंड डिसेबल्ड पर्सन का है, एंड आर्टिकल 14 के थ्रू हमको राइट टू इक्वलिटी सबको देना है। अब डिसेबल्ड पीपल भी तो हमारे सोसाइटी के पार्ट्स हैं ना, उनको भी तो इक्वलिटी चाहिए, तो उनको इक्वलिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को लेके आया, है ना। बट इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है, कैसे इंसेंसिटिव है, वो चीज़ हम लोग आगे के पार्ट में देख लेंगे, राइट। मेन बॉडी पे चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है क्या। आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन नहीं पता है तो भी आप एग्जाम हॉल में भी सोच सकते थे कि क्या हो सकता है। इसमें एक डिफिनीशन होगा, है ना, और उस डिफिनीशन में के साथ साथ जो है कुछ प्रोविजंस होंगे, कुछ पेनल्टीज होंगे, कुछ रिजर्वेशन सिस्टम का बात हुआ होगा, है ना। तो यही सब चीज़ जो है वो एक्ट्स में है लिखा हुआ। एक तो ये है कि 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ को इसको इंक्लूड किया गया है। इससे पहले जो एक्ट था उसमें सिर्फ 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी था, इसमें 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को ब्रॉडली कवर किया गया है। इवन द एसिड अटैक, मेंटल इलनेस, इन सब को भी इंक्लूड किया गया है, राइट। देन पब्लिक एक्सेसिबिलिटी को कवर किया गया है। बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या प्राइवेट बिल्डिंग्स, वो भी एक्सेसिबल नहीं है, रैंप की फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटीज सही से नहीं है डिसेबल पर्सन के लिए, है ना, साइंस सही से लगाया हुआ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को इस एक्ट में कवर किया गया है। देन नॉर्मल ईयर्स में राइट टू फ्री एजुकेशन जो क्या होता है 6 to 14 होता है, बट डिसेबल्ड पर्सन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इनके लिए 18 ईयर्स तक के लिए राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है ना।
देन रिजर्वेशन का बात है, 3 से 5% अलग अलग स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है रिजर्वेशन, इस चीज़ की जो है बात किया गया है, ठीक है। देन देयर इज सम सेंट्रल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, जो कि पीपल को ये कनेक्ट करने के लिए कोशिश के लिए डिसेबिलिटी को से डिसेबल्ड पीपल से बेटर कनेक्ट हो, उनके लिए बेटर गवर्नमेंट स्कीम्स बने, बेटर लॉज बने, इसको एडवाइस करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। तो ये वाला पार्ट क्वेश्चन का डिमांड नहीं है, ये आपके लिए को समझाने के लिए है। बट अगर फर्स्ट पेज में, ये आपका फर्स्ट पेज है, ये तो क्वेश्चन लिखा रहता है यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे, ठीक है। देन अगर यहाँ पे छोटा सा इस वाले पार्ट को आप कवर कर सकते हैं, देन इट वुड बी वेरी गुड। यहाँ से आपके इस चीज़ को कवर करने से आपके हो सकता है कि 1-1.5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए बाकी स्टूडेंट के कंपैरिजन में, जो कि सिर्फ क्वेश्चन को कवर करेगा, राइट। तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा सा करने, इतना सारा पॉइंट्स नहीं, 4-5 पॉइंट्स भी याद आए तो आप लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। देन देखते हैं मेन बॉडी में क्या करना है। अब देखो, गवर्नमेंट फंक्शनरीज इज नॉट सेंसिटाइज्ड। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी नहीं पता होता है कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी में क्या है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं डिसेबल फ्रेंडली, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, तो इन सब चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को भी नहीं पता है। बहुत सारे मीन्स गवर्नमेंट फंक्शनरीज जो हैं, जो लोकल लेवल पे आशा, आंगनवाड़ी, इवन सम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कलेक्ट्रेट में बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं पता है। तो इन लोग को कैसे पता चलेगा? तो इन लोग की सेंसिटिविटी नहीं है ना, कि क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। तो इनको ट्रेनिंग की कमी है, लैक ऑफ ट्रेनिंग, राइट। देन सेकेंड, देखो गवर्नमेंट का बजट बनता है, हर एक साल बजट आता है, ठीक है। उस बजट में 3 साल से जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए बजट कम होता जा रहा है। एक तो सबसे पहले कि 2.21% ऑफ द पॉपुलेशन पर्सन विद डिसेबल्ड है, लेकिन आप ये सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ 0.0084% इस बार के बजट में 2022-2023 में उनको बजट एलोकेशन किया गया है। तो कैसे ग्रो करेंगे, कैसे अपलिफ्ट होगा? तो ये इनसेंसिटिविटी है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंसिटाइज नहीं है गवर्नमेंट, नहीं तो फंड को ज़्यादा एलोकेट करती। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अब आपने देखा होगा कि कोरोना पेंडेमिक आया बहुत सारा, कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीम्स लॉन्च किया, लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि सिर्फ डिसेबल्ड के लिए कोई स्पेशल स्कीम लॉन्च किया गया हो, है ना। और अभी भी 2 साल कोरोना पेंडेमिक के बाद जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, अभी भी कोई स्कीम्स ऐसा नहीं लॉन्च किया गया ताकि उनको जो क्षति पहुंची है उस पर कुछ भरपाई किया जा सके। सो दिस शोज इनसेंसिटिविटी, है ना। देन पेंशन दिया जाता है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर। आपको पता ही होगा कि नेशनल इसको डिसेबल्ड के लिए कुछ पेंशन दिया जाता है, और वो मेयर 300 रुपीज़ का पेंशन है। अब आप सोचो कि 300 रुपया में आपका पिज़्ज़ा भी नहीं आएगा, पूरा भरपेट आप पिज़्ज़ा भी नहीं खा सकते, है ना। और इस तरह कम पेंशन दिया जा रहा है, 1 महीना डिसेबल्ड को इसमें चलाना है। इससे क्या शो करता है कि गवर्नमेंट इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द डिसेबल्ड पर्सन। वही अगर इनका बात किया जाए, पॉलिटिशियंस का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो इनके पेंशन्स भत्ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन डिसेबल्ड के लिए 300 रुपया, ठीक है। देन बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इवन आप कोर्ट्स में भी जाओगे तो वहाँ भी रैंप की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ढंग की पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, साइंस नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, बहुत सारे विधानसभा में भी ऐसा नहीं है, है ना। तो इन सब से क्या पता चलता है कि गवर्नमेंट इज इनसेंसिटिव, गवर्नमेंट फंक्शनरीज आर इनसेंसिटिव, राइट।
लैक ऑफ एजुकेशन। अब देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट तो आ गया, बट इससे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुए, है ना। एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स की कमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, गवर्नमेंट की स्कूल्स की ऑलरेडी बहुत कम है, जो भी हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सही से नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, राइट, इन सब से प्रॉब्लम्स अलग ही हैं। देन डिसेबल्ड फ्रेंडली, डिसेबल को क्या चाहिए, स्पेशल स्कूल्स चाहिए। तारे ज़मीन पे आपने देखा होगा कि किस तरह से समझाया जाता है, तो डिसेबल्ड स्पेशल स्कूल्स चाहिए, ट्रेंड टीचर्स होने चाहिए, स्टडी मटेरियल्स इनका अच्छा होना चाहिए, ब्रेल लिपि में लिखा हुआ, जो विजुअली चैलेंज है उनके लिए, है ना। तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है, और ये शो करता है कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज आर नॉट सेंसिटिव इनफ। देन लैक ऑफ इंश्योरेंस। अब ये बात समझो कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको और ज़्यादा खर्चा है, उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ज़्यादा लग रहा है, कहीं एक जगह से जाने से दूसरे जगह जाने में। उनको कुछ डिवाइस की ज़रूरत है, कान में कुछ डिवाइस की ज़रूरत है, स्पीकिंग के लिए कोई डिवाइस की ज़रूरत है। अब इन सब चीज़ों के कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए ना, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स होनी चाहिए जो कि इस सब चीज़ों को ढंग से कवर करे। स्कीम्स हो भी सकता है नाम मात्र का, लेकिन इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है, तो ये इनसेंसिटिविटी ही दर्शा रहा है ना। तो इसको आप दिखा सकते थे। देन दूसरे वाले पार्ट में सिटीजन्स कैसे इनसेंसिटिव हैं, इसको दिखाना होगा। अब आपने स्कूल्स में पढ़े हैं, कॉलेजेस में आपने पढ़ा है, आपने कहीं जॉब किया होगा, तो वहाँ भी आपने देखा होगा ना कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कोई इनसे दोस्ती नहीं करना चाहता, सब इनको अलग थलग रखा जाता है ना। तो ये क्या है, सिटीजन्स की तरफ से इनसेंसिटिविटी है कि नहीं। देन नॉन हेल्पिंग नेचर। अब आपने देखा होगा, आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पीएच कैटेगरी के पीपल हैं और जो कि लिख नहीं सकते, है ना, उनको स्क्राइब की ज़रूरत होती है। अब वो 7-9 पेपर के लिए वो स्क्राइब को इतना ज़्यादा परेशान होता है कि कोई उनके लिए पेपर लिख दे। तो ये क्या है, सिटीजन्स के अमाउंट इनसेंसिटिविटी। अब नॉर्मल लेवल पे भी आप देख लो कि कोई डिसेबल्ड पीपल हैं जिनको ट्रेन में चढ़ना है, उनको कोई चढ़ाने वाला नहीं है, किसी को रोड क्रॉस करना है, उसको रोड क्रॉस कराने वाला नहीं है। तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है इनको, और ये प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज सिटीजन्स आर नॉट सेंसिटिव इनफ, राइट। देन प्राइवेट बिल्डिंग्स, बड़े बड़े मॉल्स तो बन जाते हैं लेकिन डिसेबल फ्रेंडली नहीं होते हैं। अब एस्केलेटर लगा दिया बड़ा बड़ा, अब कोई व्हील चेयर वाला पर्सन कैसे चढ़ेगा उस पर, है ना, उसका नहीं सोचा गया। जो रैंप की फैसिलिटी होती है वो नहीं है। तो प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी है, इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। ये सिटीजन्स की तरफ से दिखा रहा है कि इनसेंसिटिव है, राइट। देन एम्प्लॉयर्स एटीट्यूड। अब आपने देखा होगा कि कोई भी एम्प्लॉयर डिसेबल्ड पीपल को नहीं रखना चाहता है, उनको लगता है कि इनसे आउटपुट कम मिलेगा, है ना। अगर कोई वेटर का जॉब सीखा हुआ है, ठीक है, तो उस डिसेबल्ड पीपल को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है किसी भी रेस्टोरेंट में जाके, किसी भी कहीं भी उनको जॉब मिले, राइट। तो ये क्या है, इनसेंसिटिव है। और रेस्टोरेंट पे काम मिल भी जाए तो कस्टमर जो आएंगे वो बोलेंगे कि नहीं, मैं इनके हाथ का नहीं खाऊंगा, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे दे रहा है ना, कैसे बात कर रहा है, इस तरह की जो है धारणाएं हैं। तो इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन ये लोग फेस करते हैं, राइट। देन स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ द डिसेबिलिटी। बहुत बार तो ऐसा लॉजिक दिया जाता है कि भगवान इनसे दुखी हैं इसीलिए इनको ऐसा बनाया गया। अब आप सोच, अब ये इनका ये लॉजिक होता है कि जब भगवान ही इनसे दुखी हैं, भगवान ने इनको बनाया है ऐसा, तो फिर हम लोग क्या हैं, हम लोग भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो ये सब सरासर गलत है। अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस होती है बहुत जगह। तो सिटीजन्स की तरफ से इनसेंसिटिविटी को ये चीज़ दर्शा रहा है, राइट। ठीक है, तो आपने ये समझा। और कुछ पॉइंट्स जो है 10 मार्कर क्वेश्चन है, इसमें कुछ पॉइंट्स आप ये भी दे सकते हैं कि कैसे इन सब इनसेंसिटिविटी को दूर किया जाए, ठीक है। वे फॉरवर्ड में आप जो प्रॉब्लम्स आपने गिनाए हैं वो सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं।
प्रॉब्लम क्या गिनाया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है, तो ट्रेनिंग मॉड्यूल होनी चाहिए, है ना, गवर्नमेंट फंक्शनरीज को सेंसिटाइज करने के लिए। बजट एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए, पेंशन जो सिर्फ 300 रुपया मिल रहा है उसको बढ़ाओ, ठीक है, वो होना चाहिए। बिहेवियरल चेंज होना चाहिए सिटीजन्स का, है ना। देन पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग शुड बी एक्सेसिबल। तो ये सब 4-5 पॉइंट जो है आप दिखा सकते हो वे फॉरवर्ड के रूप में, राइट। देन इसके बाद देख लेते हैं कि कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इसको आप लिख सकते हो। इंडिया ने साइन किया है एंड रेटिफाई भी किया है। रेटिफाई कैसे हो गया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया, ठीक है। तो आ तो गया, इंडिया ने रेटिफाई तो कर दिया, लेकिन हमने देखा कि कैसे इनसेंसिटिविटी है। तो प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू गवर्नमेंट को सेंसिटाइज किया जा सकता है, गवर्नमेंट फंक्शनरीज को सेंसिटाइज किया जा सकता है। एंड एमंग द सिटीजन्स देयर शुड बी कॉमन ब्रदरहुड सो दैट द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैन लिव विथ डिग्निटी। इस चीज़ को हमको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से आप इस 10 मार्कर क्वेश्चन को 3-4 डायमेंशंस में कवर करते हुए सारा पार्ट्स को अलग अलग करके लिख सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन सेकेंड क्वेश्चन है, 15 मार्कर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा होगा इसका आंसर। बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम्स इंडिया नीड्स डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिस्कस करना है। तो पहले तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या हमें लिखने की जरूरत है, ठीक है। ये समझिए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिसाइड्स द वेलफेयर स्कीम इंडिया नीड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वेलफेयर स्कीम्स की नीड है, एक पार्ट तो ये हो गया। दूसरा इसमें एक फ्रेज जो है ये है डेप्थ मैनेजमेंट। अब बहुत सारे लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे, वहाँ सोचे होंगे कि ये डेप्थ मैनेजमेंट क्या है। डेप्थ मैनेजमेंट तो सुना था, अब डेप्थ मैनेजमेंट से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे डेप्थ मैनेजमेंट, कैसे इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे हो रहा है, राइट। तो इसका अगर हिंदी आप पढ़ते तो वहाँ पे लिखा था कुशल प्रबंधन, और इसका मतलब था कि एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो 1 सेकेंड में आपको ये समझ में आ जाता था कि डेप्थ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। और एक तो आपका ये हो गया वेलफेयर स्कीम्स वाला। दूसरा आप ये दिखाएंगे कि कैसे डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन करने की जरूरत है और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है। 3 पार्ट तो आपका ये आ गया, और तीनों पार्ट में आपको ध्यान क्या रखना है कि अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को आप कवर करें, तभी जाके जो है एग्जैक्टली टू द पॉइंट ये आंसर आपका बनेगा, राइट, ठीक है। तो इसको देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो वेलफेयर स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में दिया हुआ है, आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रोवाइड्स दैट स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द स्टेट। इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है तो थोड़ा सा ये भी दिखा दो कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कौन कौन से हैं, SC, ST, वुमेन, ओल्ड एज्ड, है ना, माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो ये सब पीपल जो हैं वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं और इनका वेलफेयर करने का जरूरत है थ्रू द वेलफेयर स्कीम्स, थ्रू इन्फ्लेशन कंट्रोल एंड थ्रू अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। अब मेन बॉडी में क्या करोगे आप, सबसे पहले तो बताओगे कि नीड ऑफ वेलफेयर स्कीम कैसे है,
तो वेलफेयर स्कीम्स का हमारे पास ज़रूरत क्यों है अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को? तो ये दिखाओगे ना कि कैसे पॉवर्टी है, हंगर है, इसीलिए हमको ज़रूरत है ना। अगर वेलफेयर स्कीम नहीं होगा तो लोग किस डायरेक्शन में टर्न हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को वेलफेयर स्कीम्स वाले में दिखा दोगे। देन इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे क्यों किया जाए, नीड ऑफ द डेप्ट मैनेजमेंट ऑफ द इन्फ्लेशन, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो लोग सही से न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाएंगे, है ना। एंड और एजुकेशन हेल्थ सही से इनका नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप दिखा दोगे। देन अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से जो है वो डेप्ट मैनेजमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो लोग कैसे भूखमरी में मरने लगेंगे, ठीक है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगी। इन सब चीज़ों को, इन सब पॉइंट्स को पॉइंट बना के आप लिख सकते हो, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कवर कर लेंगे कि नीड ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स। तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा गरीबी, देखो गरीबी कम हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी अब 12-13% ही रह गया है, बट एब्सोल्यूट नंबर में अभी भी बहुत ज़्यादा है वो चीज़, राइट। पॉपुलेशन ही हमारा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत सारे रिपोर्ट इंडेक्स भी इसको सपोर्ट करता है, इस लॉजिक को। जैसे कि आप देखोगे कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक था 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज। ऐसे तो हम लोग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इसकी बात करते हैं, लेकिन जब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात आती है तो वहाँ पे हमें रैंक मिलता है 66 आउट ऑफ 109 कंट्रीज, है ना। तो इस कारण से वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है। 68.8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन अभी भी पर डे $2 से नीचे का खर्चा कर रही है या उससे कम कमा रही है, राइट। तो ये दिखाता है कि हमको वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अब डिपेंडेंसी रेशियो कैसे होता है, 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज और 65+ एज वाले जितने भी पॉपुलेशन हैं उन सब पॉपुलेशन को फिर डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से, राइट। तो ये 48.7% ऑफ द पॉपुलेशन हमारे डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत हाई है, बट डिपेंडेंसी रेशियो भी हमारा हाई है बिकॉज हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब इन सब जो डिपेंडेंट हैं, बहुत सारे गरीबी भुखमरी इनसे से जूझ रहे हैं, तो इनके लिए वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है ना। देन द पर कैपिटा इनकम, देखो IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडिया के अकॉर्डिंग 144th पोजीशन है आउट ऑफ 194 इकोनॉमी इन GDP पर कैपिटा। ऐसे तो देखोगे तो हमारे पास मोर देन 234 बिलियनर्स हैं, राइट, बट नीचे तबके के लोग भी अभी भी भुखमरी में बंट रहे हैं, ठीक है। इनको कौन बचाएगा, वेलफेयर स्कीम्स ही बचा सकता है, गवर्नमेंट ही बचा सकती है, राइट। इसीलिए हमें वेलफेयर स्कीम्स की ज़रूरत है। बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, PBTGs हैं, राइट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी भी नोमैडिक लाइफ जी रहे हैं, गांव में हैं, इनके पास बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है, प्योर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है। ये सब कैसे पहुंचेगा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कैसे होगा, वेलफेयर स्कीम्स लाना पड़ेगा। खुद से अगर ये लोग कर पाते तो अभी तक कर लिए रहते हैं ना, गवर्नमेंट को कुछ इंटरवेंशन करना पड़ेगा, मेन स्ट्रीमिंग इनका करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ है, इसलिए हमको वेलफेयर स्कीम्स चाहिए। देन बहुत बार ये देखा गया, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि अगर हम लोग सही से डेवलपमेंट नहीं करवाते हैं तो फिर देयर आर चांसेस कि एक्सट्रीमिस्ट लोग बन जाए, नेक्सलिज्म, माओइज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इन सब डायरेक्शंस में लोग टर्न अप हो जाएं, राइट। तो इनको अगर रोकना है तो हमें वेलफेयर स्कीम्स लाके गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट लाना पड़ेगा, तभी जाके जो है इस सब चीज़ों को रोका जा सकता है। सो वेलफेयर स्कीम्स इज नीडेड, ठीक है। देन अब सेकेंड वाला पार्ट है कि डेप्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आप ये बता दो कि कैसे, क्यों ज़रूरत है इस चीज़ों की। तो एक बता सकते हो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो बोलती है कि 7.6% ऑफ द पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड, जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए,
उसमें से 7.6% लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं, राइट। इन्फ्लेशन का बात करोगे तो अगस्त 2022 में 7% था हमारा इन्फ्लेशन। आरबीआई का परमिशन लिमिट क्या है 2 to 6%, लेकिन इन्फ्लेशन है 7%, ठीक है। तो अब इन सब के कारण इतना ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इसके कारण अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तभी तो पता चलेगा कि क्या क्यों नीड है इन्फ्लेशन करने की, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की और अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की क्या नीड है ना, तभी पता चलेगा। सो देखो, अब अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो खाना पीना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जो गरीब लोग हैं वो न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा पाएंगे, है ना। और अगर न्यूट्रिशनल फूड नहीं खा पाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं। देयर मे बी सम डिजीज़ आउटब्रेक, एंड डिजीज़ आउटब्रेक होगा तो हमारा हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी बैकवर्ड है, चरमराया हुआ रहता है। वो कोविड-19 में हमने देख लिया था कि कितना चरमराया हुआ है ना। तो उस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा, राइट। तो ये लैक ऑफ न्यूट्रिशनल है, डिजीज वल्नरेबिलिटी, प्रेशर ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देन ये इन्फ्लेशन वाला जो पार्ट है ये फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अगर हाई इन्फ्लेशन है तो इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट फ्यूल महंगा हो जाएगा, डीजल का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस, ये सब चीज़ महंगा हो जाएगा। और जब फ्यूल महंगा हो जाएगा तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम महंगा हो जाएगा तो एक जगह से दूसरे जगह में जाने वाले जो गुड्स जो जा रहे हैं अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही वो पे करना पड़ता है, तो कंज्यूमर गुड्स महंगे हो जाएंगे, राइट। तो इन्फ्लेशन इज टर्निंग मोर इन्फ्लेशन, ठीक है, ये फीडबैक मैकेनिज्म है। देन अब लेट सपोज कि कोई एवं पॉवर्टी लाइन वाला है, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बहुत महीनों तक आ गया, 6-8 महीने तक आ गया, तो उसके सारे सेविंग्स जो है हो सकता है ख़त्म हो जाए, डिस्पोजेबल इनकम उसके पास कम है, राइट। तो क्या होगा कि वो एवं पॉवर्टी लाइन से आ जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन पे, और फिर उसने जो बच्चे का एडमिशन करवा रखा होगा किसी प्राइवेट स्कूल्स में, जो कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ वो एक्सेस कर रहा होगा, तो ये सब चीज़ उनके नसीब अब नहीं होने वाला है, राइट। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब ये देखो कि आपके पास तो हो गैस चूल्हा है, आप तो खाना बना लोगे, और इन्फ्लेशन का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आए, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है ये लोग, इन लोगों पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर लेट सपोज कि एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो जाता है तो क्या होगा, इनको ट्रेडिशनल मेथड पे जाना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे तो क्या होगा, फिर वुड एंड चारकोल का यूज़ करेंगे, और वो उसका यूज़ करेंगे तो फिर क्या होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, वहाँ से भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा है। एंड बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है तो ये एंटी सोशल एक्टिविस्ट, जो एंटी सोशल एलिमेंट ऑफ जो सोसाइटी है, ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो पीडीएस ग्रेन्स लोगों के पास पहुंचना चाहिए वो ये लोग होर्ड कर लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करने लग जाते हैं। इस कारण से जो है और ज़्यादा वो महंगा हो जाता है जो फूड ग्रेन्स जो मार्केट में होता है, राइट, ये चीज़ हो जाता है। देन सेविंग वाला मैंने बता ही दिया है कि कैसे डिस्पोजेबल इनकम लोगों के कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होने से, तो सेविंग रेट्स भी कम हो जाएगा, और सेविंग रेट्स जो वो कम हो जाएगा तो सेविंग लोग कम करेंगे तो वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, है ना, आगे के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिन अगर इन्फ्लेशन बहुत हाई रहता है तो इन वल्नरेबिलिटी इंक्रीजेज, अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये चीज़ आपको दिखाना था। देन ये वाला पार्ट अनएम्प्लॉयमेंट, इसको ये दिखा दो कि बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट है तो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्यों नीड है इसका डेप्ट मैनेजमेंट करने का, है ना। तो इट कैन बी इजली सीन कि जब
अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाई हुआ है तो क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, है ना। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब लोगों को देखो किसी भी तरह से पेट भरना है, फैमिली बचाना है, राइट, तो वो सोचते हैं कि जो मिल रहा है वो कर लो। अगर इसीलिए अगर सही एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो बुरे कामों में वो लग जाते हैं, क्राइम रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो हंगर फिर से बढ़ जाता है, भूखमरी बढ़ जाएगी, राइट। अब इसको आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में कहा गया है कि इंडिया का रैंक जो है 101 आउट ऑफ द 116 कंट्रीज। ये सब डाटा जो है ना, छोटा छोटा डाटा, इस सब को प्रिपेयर करके रखिए आप, और इसको अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए आप इसमें डालते रहिए, ठीक है। देन लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, लोग APL से BPL में आ सकते हैं, है कि नहीं। ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, और प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फिर इसका मतलब कि ग्रोथ कम हो रहा है। बहुत सारे सेक्टर में जब प्रोडक्शन कम होगा तो बहुत सारे सेक्टर में ग्रोथ कम हो जाएगा, एंड बहुत सारे सेक्टर में जब ग्रोथ कम हो जाएगा तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री विल रिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज़ कनेक्ट कर सकते हो आप। एंड जब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोग सस्टेन नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, ठीक है, उस टाइम पे फिर लोग एक्सट्रीम स्टेप्स ले लेते हैं और फिर सुसाइड वाली बात भी लोगों के मन में आती है। बहुत बार ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हो जाता है। इसीलिए हमको अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि नीड क्यों है वेलफेयर स्कीम्स की, डेप्थ मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन की, एंड अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की क्यों ज़रूरत है। अब हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड लिख देंगे आप, 15 मार्कर का क्वेश्चन है, राइट। तो तीनों सेक्शंस के लिए 2-3 पॉइंट वे फॉरवर्ड में लिख देंगे, और आप ये दिखा देंगे कि अब देखो GS पेपर 2 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। GS पेपर 3 का क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ज़्यादा लगाने की कहीं कोशिश नहीं करेंगे। जितना गवर्नमेंट साइड से हो रहा है इन्फ्लेशन कंट्रोल, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। देन वेलफेयर स्कीम्स से रिलेटेड आप क्या वे फॉरवर्ड लिख सकते हो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लेके आना चाहिए, राइट टू एजुकेशन तो है लेकिन सबको एजुकेशन नहीं मिल रहा है। अभी हमने देखा था कि डिसेबिलिटी वाला जो है सेक्शन जो है एजुकेशन सही से नहीं प्राप्त कर पा रहा है, राइट। देन रिडक्शन इन द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। इलेक्शन के टाइम पे ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रीबीज बांटे जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोन वेवर कर दिया जाता है, वो अचानक से, वो पता है, सबको पता है कि वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी पे ही तो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। तो ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे सकता है, राइट। तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे हो सकता है, प्राइस कंट्रोल एंड रेशनिंग होना चाहिए। गवर्नमेंट ओपन मार्केट सेल स्कीम लेके आती है, जब बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोडक्ट जो होता है मार्केट में होता है और उसका प्राइस बहुत कम हो जाता है तो गवर्नमेंट वो खरीद लेती है ना। और जब बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो बेच देती है ताकि सप्लाई बना रहे। तो इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। सब्सिडीज़ को रेशनलाइज किया जा सकता है। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा अगर मिल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो फिर क्या होगा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे किसान इलेक्ट्रिसिटी को का वैल्यू नहीं समझते हैं, और फिर लाइक हैंड पंप है, दमकल जो चलता रहता है, ठीक है, उसको चलता हुआ छोड़ देते हैं, घंटों घंटों वो चल रहा है। इससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है, राइट। हमारे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा डिमांड में आ जा रही है, बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा डिमांड किसी चीज़ का होगा, सप्लाई कम है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन ही होगा। तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है कि रेशनलाइजेशन ऑफ द सब्सिडीज़, इसको न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से जोड़ा जाए। उससे क्या किया जाए कि सोलर पंप दिया जाए, राइट, उससे आप जितना ज़रूरत है उतना ही किया जाए।
तो बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं देंगे इलेक्ट्रिसिटी में, तो फिर ये सब चीज़ें कम हो जाएगी। इसके बेसिस पे इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। देन रेगुलेशन ऑफ द ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग ऑन द राइट टाइम। पीडीएस सिस्टम के कारण जो उसके अंदर जो ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग हो रही है, उससे जो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, तो उसको नीचे करने का है ना। देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, पीपीपी मॉडल पे काम किया जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से, और जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे 100% एफडीआई वाला फैसिलिटी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंक्लूड करें, प्राइवेट कंपनीज को ईज ऑफ डूइंग प्रोवाइड करें, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हो पाए और अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इनको नौकरी मिल सके, राइट। देन बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पहले से बैकलॉग्स हैं, जैसे कि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट में एससी एसटी ओबीसी का पहले से बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, तो इसका गवर्नमेंट जो है फुलफिल करे, एम्प्लॉयमेंट यहाँ से भी जनरेट होगा, है ना। और ज़्यादा सीट्स क्यों नहीं निकाल रही है, निकालेगा गवर्नमेंट। देन स्टार्टअप कल्चर अच्छे से होना चाहिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम, इस सबसे वल्नरेबल सेक्शंस को बढ़ावा तो मिल रहा है, लेकिन इसको ढंग से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। देन स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एसएचजीज तो मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसको ढंग से प्रमोट किया जाए, उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया जाए, उनको लोन प्रोवाइड किया जाए, उनको कुछ मैनेजरियल स्किल सिखाया जाए, है ना। तो इन सब चीज़ों से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर बना सकते थे, डिस्कस कर सकते हैं। देन कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक बनाओगे, पॉजिटिव बनाएंगे आप, कि अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इनके लिए गवर्नमेंट ने काम किया है, कुछ सक्सेसफुल भी हुआ है, बट एब्सोल्यूट नंबर में ये अभी भी बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इनको अगर ठीक करना है तो हमको वेलफेयर मेजर से ही ठीक करना पड़ेगा, एंड हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको कम करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से बना के जो है आप कंक्लूजन लिख सकते हो, और तभी जाके जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड सही से यूटिलाइज होगा, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन डन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 remains inadequate in promoting incentive-based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze, ठीक है। इसमें थोड़ा सा सोच लीजिए आपकी क्या करना है। देखो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं। एक तो ये है कि इनएडुकेट इन प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो कैसे इनएडुकेट है प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। और दूसरा ये दिखाना पड़ेगा कि कैसे ये बिना अवेयरनेस जनरेट किए, बिना इम्पोर्टेंस ऑफ द स्कूलिंग सिस्टम को दिखाए आरटी को लाना चाह रहा है, सबके लिए राइट बेस्ड अप्रोच लाना चाह रहा है ना। तो इन दोनों सेक्शंस को आपको, इस दोनों पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड वो आप लिख सकते हो। फिर जब मेन बॉडी में आएगा तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि किस तरह से इनएडुकेट है इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम, और फिर दूसरा वाला पार्ट कि कैसे अवेयरनेस नहीं है जनरेट, ठीक है, दोनों। और एक वे फॉरवर्ड अच्छा सा बना लोगे जो आप नेगेटिव दिखा रहे हो कि इसी का कि पॉजिटिव, कि कैसे इस सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, एंड देन एक अच्छा सा कंक्लूजन बना के ये आंसर बन जाएगा। ये वाला पार्ट ट्रिकी है, इनएडुकेट इन प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे होंगे, क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है बट इस वाले पार्ट में बहुत सारे लोग फंसे होंगे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है।
देन इंट्रोडक्शन में तो सबसे पहले आप बता दोगे कि 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन आ गया था अंडर आर्टिकल 21A इन 2002, और फिर 2009 में तो हमारा RT एक्ट ही आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और क्या दिखा सकते हो? आर्टिकल 51 का के में है फंडामेंटल ड्यूटीज कि पेरेंट्स एंड गार्जियंस को जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए इन फॉर द एजुकेशन एंड वार्ड्स ऑफ हिज चिल्ड्रेन एंड वार्ड्स को फ्रॉम द 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। RT एक्ट किसको कवर करता है? ठीक है, 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट। चलते हैं अब सबसे पहले बात कि यहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत है कि how it is inadequate in promoting incentive based system। तो देखो, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, यहाँ पे 25% ऑफ द रिजर्वेशन है इन प्राइवेट स्कूल्स, जो कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको, जो कि माइनॉरिटी अनएडेड नॉन माइनॉरिटी स्कूल्स है ना, इनको कहना है कि 25% जो है सीट्स आप रिजर्व रखिए फॉर द इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब क्या इनको कुछ इंसेंटिव दिया गया? अब ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, इनका मेन काम है प्रॉफिट गेन करना, बट अचानक से जो है इनका इस एक्ट के आने के बाद 100% प्रॉफिट से लेके 75% प्रॉफिट आ गया। जो 25% प्रॉफिट गैप हुआ, इसका कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो क्यों इम्प्लीमेंट करेंगे? दिस इज जस्ट ए बर्डन फॉर देम। देन पुअर स्टूडेंट्स, जिनको ये 25% कैटेगरी के अंदर एडमिशन मिलता है, तो अब क्या कि सिर्फ एडमिशन मिल गया स्टूडेंट को उससे काम चल गया? ऐसा तो नहीं है ना। उनको ड्रेस चाहिए, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, बड़े बड़े स्कूल्स में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो रहा है, आज ये प्रोजेक्ट बना के लाना है, कल वो प्रोजेक्ट बना के लाना है, तो पुअर पेरेंट्स कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे? ये सब खर्चा कौन उठाएगा, है ना। तो इस कारण से जो है अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ड्रॉप आउट ही कर जाना पड़ता है, राइट। देन अब देखो, मिड डे मील स्कीम इसको लाया गया था, इट इज़ ए इंसेंटिव बेस्ड स्कीम, ताकि चिल्ड्रन जो पुअर चिल्ड्रन है इन लोगों को स्कूल्स में लाया जाए, एटलीस्ट खाने के लिए ये लोग आ जाएंगे। बट बहुत बार ऐसा देखा गया है कि मिड डे मील का मेनू ही नहीं फॉलो होता है। बहुत सारे स्कूल्स में तो महाराष्ट्र के 100 स्कूल्स में 6 महीना तक मिड डे मील स्कूल चला ही नहीं, स्कीम ही नहीं चला। देन बिहार का सारण वाला डिस्ट्रिक्ट, आप तो सबको पता ही होगा कि 23 स्टूडेंट्स का जो है वो जान चला गया था मिड डे मील खाने से। तो अब वो सोचो कि जिस स्कूल में ऐसा घटना हुआ है वहाँ पे कोई अपने बच्चे को भेजेगा? नहीं भेजेगा ना, है ना। तो ये इंसेंटिव्स कम हो जा रहा है। देन राइट टू एजुकेशन किस एज ग्रुप के कवर करता है? 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज। लेकिन 6 साल के नीचे वाले बच्चों के लिए क्या? अब देखो, जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो तो 3 साल से बच्चों को स्टार्ट कर देते हैं, प्री नर्सरी, नर्सरी, देन KGs, LKGs, UKGs, इस तरह से जो है इनको पढ़ाया जाता है, इनको ट्रेन किया जाता है। बच्चे जो है ग्रोथ होता है, इनका मेंटल डेवलपमेंट होता है। और जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं वो 6 साल से स्टार्ट ही करते हैं, तो 3 साल तो ये पहले ही पीछे छूट गए। उसके बाद वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, पढ़ाई सही नहीं है, तो ये और ज़्यादा पीछे छूट जाते हैं। तो इनके पास इंसेंटिव बचता नहीं है बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करने का, है ना। देन अब ये देखो कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज है। 14 ईयर्स के बाद क्या? बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा देखा जाता है कि 14 ईयर्स के बाद लगभग क्लास 8 के बाद बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स होते हैं स्कूल से, है ना, स्टूडेंट का। इवन आप ये देख सकते हो कि ये यूपी के स्कूल में 35% ड्रॉप आउट हो जाता है आफ्टर क्लास 8। गुजरात वाले स्कूल में 23% स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है आफ्टर 8th क्लास। तो इसको स्कूल्स को क्या इंसेंटिव है कि
इन बच्चों को कंटिन्यू करवाया जाए स्टडी, ये लोग 11th करे, 12th करे, आगे का ग्रेजुएशन करे, इनको कैसे मोटिवेट किया जाए, क्या इंसेंटिव है स्कूल के पास, ठीक है ना, इस चीज़ को कवर नहीं है आरटी में। देन देयर इज अ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है अगर बेटर ट्रेनिंग हो। अब देखो भारी भरकम शब्द तो आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, लेकिन टीचर्स के पास कोई ट्रेनिंग ही नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने का। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? अब कोई ट्रेनिंग ही नहीं दोगे आप टीचर्स को तो उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है, कैसे वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? अपने तरफ से वो क्या करेंगे, है ना, ठीक है। और इसी कारण से जो है आप ऐसा रिपोर्ट देखते हो कि एनुअल स्टेटस, ऐसा रिपोर्ट के अंदर ही आ जाता है कि मोर देन 50% ऑफ द जो क्लास 5th का है वो सेकेंड क्लास का टेक्स्ट भी नहीं पढ़ पा रहा है ना। तो सबकी गलती है, टीचर्स, स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट, सबकी गलती है इसके पीछे। देन ये बोलती है कि प्राइवेट ट्यूशंस नहीं पढ़ाएं गवर्नमेंट टीचर्स, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में क्या हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टीचर्स को लिया जा रहा है, उनको बहुत कम सैलरी दिया जा रहा है और वो सैलरी भी टाइमली पेमेंट नहीं हो रहा है। तो टीचर के पास ऑप्शन क्या बच गया? प्राइवेट ट्यूशन ही तो करेगा, घर भी तो संभालना है, पेट भी तो पालना है ना, तो वो फिर कैसे करेगा? तो इसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है ना। इसको आप कनेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल दे सकते हैं कि गोवा में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, बिहार में हो रहा है। देन एक प्रोविजन है आरटी एक्ट में कि एज बेस्ड होना चाहिए एडमिशन। 6 to 14 ईयर्स ऑफ द एज है, लेकिन किसी बच्चे का अगर 10 साल का वो हो गया और 10 साल के एज में उसको मन किया कि अब हम पढ़ाई स्टार्ट करें, तो उसको 4th क्लास में रखा जाएगा, है ना, ठीक है। लेकिन ये तो कर दिया आपने एज बेस्ड एजुकेशन, बट उसको 10 साल में वो उसने सीखा क्या है? कुछ भी नहीं सीखा। वो 4th में चला जाएगा तो वो कर क्या पाएगा वहाँ पे? कुछ नहीं कर पाएगा। उसको जो टीचर्स बताएगा वो कुछ समझ ही नहीं आएंगे उसको, है ना। तो ये क्या इंसेंटिव है? और कोई ऐसा टीचर एलोकेट हो हर एक स्कूल में कि जो इस तरह के बच्चे को देखे, राइट, इन पे ज़्यादा फोकस दिया जाए, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है इन सब बच्चों को कवर करने का। बस एक्ट में लिखना है तो इन्होंने लिख दिया, राइट, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोई पॉलिसीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब आ जाएगा आपका इनएडुकेट इन प्रमोटिंग इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अवेयरनेस जनरेशन की कमी है, राइट। तो अवेयरनेस जनरेशन की कमी को देखेंगे तो बहुत तरह से देख सकते हैं, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, सबके मेथड से इनको देखा जा सकता है कि कैसे अवेयरनेस जनरेशन की कमी है। अब देखो बच्चा है, बच्चा को क्या पता है कि उसका कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, उसको लॉजिकल थिंकिंग मिलेगा स्कूल जाके, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बेटर होगी, है ना, उसकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन उसकी बेटर हो सकती है। कुछ पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे कैरियर बिल्ड होगा आगे जाके। ये 6 to 14 ईयर्स वाला एज ग्रुप जो है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी के बेसिस पे ये जो बेसिक्स इसके स्ट्रॉन्ग रहेंगे तभी जाके वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा, अच्छा लॉयर बनेगा, है ना, IAS कोई कंप्लीट कर सकता है। तो उसके बेसिक्स ही नहीं स्ट्रॉन्ग है तो कैसे कर पाएगा? और ये चीज़ अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट्स को बताया नहीं जा रहा है ठीक से, है ना। उनको पता ही नहीं है कि उनका कैरेक्टर बिल्डिंग होगा, उनको पता ही नहीं है कि इसमें कैरियर प्रोग्रेशन कैसे है, सोशल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब चीज़ों को भी जो है वो स्कूल में आप सीख सकते हैं। ये बात उनको पता ही नहीं है स्टूडेंट को। तो आपने आरटी तो लेके आ गया, लेकिन जिस बच्चे को पढ़ाना है उसको ही नहीं पता है तो कैसे प्रमोट करोगे, है ना। देन पेरेंट्स, गरीब पेरेंट्स का क्या होता है कि बच्चा स्कूल चला जाए, मिड डे मील में उसको खाना मिल जाएगा, देन यूनिफॉर्म का पैसा मिल जाए, देन बहुत सारे स्टेट्स में साइकिल का पैसा मिलता है, साइकिल का पैसा मिल जाए। इन सब चीज़ों यही वो बस समझते हैं इंसेंटिव। उनको ये नहीं पता है कि वैल्यू एजुकेशन क्या है, स्कूलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है ना। उनको कोई विज़न ही नहीं है कि कैसे वो
अपने चाइल्ड का कैरियर डेवलप करवाएंगे, राइट। तो इन सब चीज़ों पे कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई अवेयरनेस जनरेशन नहीं है, उनको पता नहीं है कि कैसे वो सोसाइटल डेवलपमेंट में उनका बच्चा भाग ले सकता है आगे जाके, राइट। तो ये सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। देन टीचर्स, टीचर्स कैसे, अब गवर्नमेंट टीचर्स क्या होता है, मेनली जो होता है वो चाहते हैं कि महीना ख़त्म हो और मेरा पैसा आ जाए, बस उनका फोकस बस इसी पे रहता है कि किस तरह से जो है वो पैसा कमा ले, उनका सैलरी आता रहे, है ना। उनको ये नहीं पता है, सही से अवेयरनेस नहीं क्रिएट किया जा रहा है, सही से उनको सेंसिटाइज नहीं किया जा रहा है कि आपके हाथों में भविष्य है, देश का भविष्य आपके हाथ से संवर सकता है और बिगड़ भी सकता है, राइट। तो उनको नहीं सेंसिटाइज किया जा रहा है, उनको अवेयरनेस इतनी नहीं फैलाई जा रही है। और जिन टीचर को पता भी है तो इन्वायरमेंट और सिस्टम ऐसा बन जाता है कि एक टीचर फांकीबाज है तो दूसरा भी फांकीबाज बन रहा है ना। तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, प्राइवेट टीचर्स, प्राइवेट स्कूल्स में आपने देखा होगा कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स होते हैं, इन सब चीज़ों का कोई प्रोविजंस नहीं है, है ना। इसको होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अगर प्राइवेट टीचर्स मीटिंग होगा तभी जाके तो स्टूडेंट को पेरेंट्स को पता चलेगा कि उनका स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, किस सब्जेक्ट में बेटर करने की ज़रूरत है ना। तो इसकी ज़रूरत है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देन कोई अवेयरनेस कैंपेन नहीं चल रहा है, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर एम्पावरमेंट, अब ये कौन समझाएगा कि लड़का लड़की समान है, कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है। बिना ये सब समझाए आरटी एक्ट आ गया, अब लड़कियों की जो है वो स्कूल में इनरोलमेंट कम हो रही है, इनरोलमेंट हो भी रही है तो क्लास 5th से निकल गई, 8th से निकल गई, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है अवेयरनेस कम है, राइट। तो इस सब तरह से जो है आप इसको कनेक्ट कर लोगे। देन आप कुछ वे फॉरवर्ड बता दो, बहुत सारे पॉइंट्स आपने ऑलरेडी लिख दिए हैं तो आप ये बता सकते हो। अब जो भी आपने प्रॉब्लम्स गिनाए हैं उसी का आप वे फॉरवर्ड कर दो, उसी को देख लो कि किस तरह से जो है ये चीज़ बेटर होनी चाहिए, किस तरह से इंसेंटिव बनना चाहिए, किस तरह से अवेयरनेस जनरेशन होना चाहिए। तो इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल्स को थोड़ा बहुत इंसेंटिव दो, उनका जो 25% लॉस हो गया है बिकॉज ऑफ द आरटी एजुकेशन वो थोड़ा सा भरपाई हो जाए, कुछ फंड्स उनको एलोकेट कर दो, राइट, ताकि वो बेटर तरीके से ये 25% रिजर्वेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। देन स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट होना चाहिए, जो प्राइवेट स्कूल्स में जिनका एडमिशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण वो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं उनके पेरेंट्स, तो इनको कुछ अगर स्कॉलरशिप होगा तो ये लोग सस्टेन कर पाएंगे, इनकी एजुकेशन सिस्टम बेटर हो पाएगी, है ना। देन क्लास 6 तो आरटी एजुकेशन है, चलो ठीक है, उसके अब क्लास ईयर 6 ईयर से जो है आरटी एजुकेशन है, अब उसके नीचे को भी तो थोड़ा बहुत प्रमोट करो, आशा, आंगनवाड़ी सेंटर्स, इन सब पे जैसे प्राइवेट स्कूल्स में प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इन सब ये सब क्लास होते हैं, उस तरह का थोड़ा सा सिस्टम बना के आशा, आंगनवाड़ी सेंटर, इन सब पे थोड़ा सा करो, राइट। देन अवार्ड एंड रिवार्ड का सिस्टम बनाया जाए ताकि 14 ईयर्स के बाद भी स्टूडेंट्स जो है वो उनका इनरोलमेंट बना रहे, वो कंटिन्यू करते रहे अपना स्टडीज़, तो उसके लिए स्कूल्स को कुछ अवार्ड दिया जाए, कुछ स्टूडेंट्स जो स्कूल्स बेटर परफॉर्म कर रही है उसको कुछ अवार्ड दे रहे हैं, रिवार्ड दे रहे हैं, तो बाकी स्कूल्स भी उसको देख के बेटर करेंगे, वो भी अपना इनरोलमेंट बेटर करने का कोशिश करेंगे, रिटेंशन बेटर करने का कोशिश करेंगे, है ना। देन टीचर्स ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन, इसको करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन तो आपने लेके आ गया लेकिन टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दिया, तो ट्रेनिंग आप दीजिए तभी तो वो सिस्टम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, इसको करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस जनरेट कैंपेन आप स्टार्टिंग फ्रॉम द विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसको करने की ज़रूरत है ना। तभी तो लोगों को पता चलेगा, तभी तो पेरेंट्स को पता चलेगा, सोसाइटी को पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ स्कूलिंग क्या है, तब जाके जो है आरटी एक्ट बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा, राइट। देन कुछ प्राइवेट
इंस्टीट्यूशंस जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन है वहाँ पे जिस तरह से परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हो रहा है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो रही है, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए तो तब जाके जो है आपका स्कूलिंग सिस्टम बेटर होगा, तब जाके जो है आप इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम आप बना पाएंगे और तब जाके जो है लोगों को पता चलेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूलिंग क्या है, राइट। तो इस तरह से जो है आप वे फॉरवर्ड बना सकते हैं। देन कंक्लूजन, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से आप कंक्लूजन बना सकते हैं। आर्टिकल 39F में क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द मोरल एप्लीकेशन ऑफ द स्टेट्स दैट द चिल्ड्रेन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर। ठीक है, तो आरटी एक्ट तो आ गया लेकिन हमारा गोल अभी तक नहीं अचीव हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है, सिटीजन्स को काम करने की ज़रूरत है, सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है ताकि ये वाला अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम क्रिएट किया जा सके, तभी जाके जो है यंग माइंड्स को इग्नाइट किया जा सकता है, राइट। तभी जाके जो है APJ अब्दुल कलाम का जो ड्रीम्स है इग्नाइटेड माइंड्स वाला वो चीज़ फुलफिल किया जा सकता है ना। तो इसको आप कंक्लूजन बना सकते हैं, ठीक है। इस क्लास में इतना ही है। इन सारे क्वेश्चंस का मॉडल आंसर हमारे वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। तो आज का हमारा एजेंडा है पॉलिटी के पेपर का डिस्कशन करना। तो जैसा शेड्यूल आपको मिला है कि डिफरेंट डेज पे डिफरेंट फैकल्टी डिफरेंट सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग दो चीजें सीखेंगे, एक कि उस क्वेश्चन में कंटेंट क्या होना चाहिए था उसके आंसर में, और दूसरा कि उस सही कंटेंट तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को देख के कैसे इंटरप्रेट कर सकते थे कि हाँ यही लिखा जाना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग ओपन टू डिस्कशन रखेंगे, इट वुड बी ए टू वे कम्युनिकेशन। आपको जहां कहीं लगेगा कि मैं जो इंटरप्रेट कर रहा हूं उसके अलावा आपका इंटरप्रिटेशन कुछ और हो सकता है, आप कुछ और सोच रहे हो, डेफिनेटली डिस्कस करो, क्योंकि अनटिल अनलेस आप डिस्कस करोगे आप सीख नहीं पाओगे। मैं तो ज्ञान देके चला जाऊंगा और भी लोग आएंगे ज्ञान देके चले जाएंगे, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग भी, आप चैट पे आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग सेम टाइम पे मेंशन करो, ठीक है। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस जो कि पॉलिटी के सेक्शन से इस बार आया है। व्हाट्स योर फीडबैक? आप लोगों में से कितने लोगों ने पेपर लिखा, जो रिप्ले हुआ उसका लिखा है? बाकी आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा? अच्छा, थक गए लिखते? अच्छा, तुमने लिखा ना, चलो ठीक है। तो कैसा लगा पेपर पॉलिटी का, डिफिकल्टी लेवल इस टाइप का? ओके, हाँ मीडियम, ओवरऑल मीडियम था, ठीक है। इस बार जो एक चीज डिफरेंट थी पिछले सालों से, देयर वर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 ऑफ देम व्हिच इज डिफिकल्ट टू आंसर। ऐसा यूजुअली पॉलिटी में नहीं होता था, मतलब कुछ डिफिकल्ट भी होते थे, वो इसलिए डिफिकल्ट होते थे क्योंकि एनालिसिस करना होता था। इस बार वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि फैक्चुअल है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 ये प्राइमा फेसी लगता है कि वो इजी है, बट एक्चुअली वो इजी नहीं, वो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। The most significant achievement of modern law in India is the constitutional revision. ये कैसे? So because we are getting laws which are more environment specific in this, especially last 5 years when our Prime Minister has been visiting international like summits, and over there he's talking about like there was this life for environment at Glasgow. So all this we are getting in our like law, like even we are like declaring harsh punishments for industries that like whatever their pollution they're causing and all of that. So that is why this question. ठीक है, मतलब so like right to environment was made constitutional article 21. MC Mehta case was like when was right to environment made a part of article 21? So here I am not aware. Yes, any guess? 1991, ठीक है। और ये जो लाइन है ना एग्जैक्ट, जिस लाइन को हाँ जिसको डिस्कस करने के लिए बोला जा रहा है, एक 2005 के रिसर्च पेपर की लाइन उठाई हुई है,
ठीक है, 2005 का रिसर्च पेपर है, मतलब गूगल करोगे लाइन तो एज इट इज फर्स्ट रिजल्ट में लाइन आ जाती है। ठीक है, तो तब क्या चीज़ उठा करके उन्होंने दिया है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, पहले बारी बारी से चलते हैं। तो ओवरऑल चीज़ें ये है कि करंट अफेयर से ही हम आंसर कर पाएंगे। ठीक है, भले उन्होंने कहीं से पूछा हो, हम तो वही आंसर करेंगे जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम ये दोनों, ठीक है, हम वो डिस्कस करेंगे, वी विल कम टू दैट। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होने की वजह से उनको आंसर करना डिफिकल्ट था, और कुछ क्वेश्चन जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, अब इसको उन्होंने 15 नंबर का पूछ लिया है। ठीक है, एक चीज, अब इसमें 15 नंबर क्या लिखोगे आप, दैट्स द चैलेंज। वैसे ही जो क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए उन्होंने बोला है प्रोसीजर थ्रू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। ठीक है, प्रोसीजर तो हम बता सकते हैं, एक तो फ्रांस का सब लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, मान लो अगर पढ़ भी लिया प्रोसीजर तो पढ़ लिया, इसमें क्रिटिकल एनालिसिस क्या करेंगे हम। ठीक है, सो दीज आर स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस जो कि छिपे हुए हैं इस पेपर में, जो प्राइमा फेसी अगर कोई पेपर नहीं दे रहा है ना, इसीलिए पेपर एक्चुअली में जब आप देते हो तो आपको पता चलता है पेपर कितना डिफिकल्ट है। जब ऊपर से देखते हैं अच्छा ये तो सब आता था, ये भी आता था, ये भी आता था, ठीक है, भी इजी है, बट जो एक्चुअल में देता है उसको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव नजर आता है। बट बिफोर मूविंग ऑन, एग्जैक्टली चैलेंज इस बार का यही है कि क्वेश्चंस में आपको पता है टॉपिक, ठीक है, बट क्या उतना कंटेंट है 3 पेज भरने का, ये चैलेंज है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि 3 पेज का कंटेंट कैसे आएगा। देयर इज सम चैलेंज, मेरी कोई एक स्लाइड गायब हो गई है। ठीक है, जस्ट आप लोग मुझे 1 मिनट बियर करना। ठीक है, सो एक चीज पहले देख लेते हैं कि ये मार्क्स को मैक्सिमम करने की जो मैं बात कर रहा हूं वो आप कैसे कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज तो सबको पता होगा कि आंसर लिखते हैं ऐसे। आप लोगों में से किस किस ने पहले मेंस लिखा हुआ है? ओके, और बाकी किस किस ने टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है एटलीस्ट? ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ लोगों ने है, कुछ लोगों ने नहीं लिखा है। ठीक है, तो जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज वगैरह लिखा हुआ है तो ये तो बेसिक पता ही होगा कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बॉडी लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, लेकिन हर इंट्रोडक्शन इक्वली गुड नहीं है, और ना ही हर क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन सेम होना चाहिए। डिफरेंट क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो दीज आर सम वेज इन विच पीपल ट्राई टू डिफाइन डू द इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन लिखना है, डेटा देना है, कंटेक्स्ट या बैकग्राउंड देना है, व्हाई न्यूज देना है। नाउ कॉमन सेंस सजेस्ट if it was in news, then we will start with why news. If it was not in news, then we cannot start through this. ठीक है, if it has some key term, then we shall start with definition. If it doesn't have any key term, तब हम definition से नहीं शुरू करेंगे। ठीक है, अब इसमें पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का डेफिनेशन देना शुरू करें वो लगेगा कि मतलब क्या लेमन चीज की जा रही है, वो कोई की टर्म नहीं है। ठीक है, तो फिर हम तीसरा जो दूसरा तीसरा अप्रोच है कि कंटेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड में पूछी जा रही है चीजें, वो हमें बताना है, ताकि हम ये मैसेज दे रहे हैं कि एग्जामिनर को कि आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन करेक्टली। दिस इज द पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, डेटा पॉलिटी में कम यूज होगा, डेटा मोस्टली इकोनॉमी में GS3 वाले में यूज होगा। ठीक है, देन कम्स द बॉडी। बॉडी में सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए आपके पास, नॉलेज बेस तो होना चाहिए। तो देयर इज नो शॉर्टकट। अगर कुछ लोग, आप लोगों ने कुछ टॉपर आते हैं ना, वीडियो अपना ज्ञान देके चले जाते हैं कि मैंने तो ये भी नहीं पढ़ा था, वो भी नहीं पढ़ा था, फिर भी रैंक 2 आ गई, 4 आ गई, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, उनको फेस वैल्यू पे नहीं लेना है। उनका आ गया है मतलब ये नहीं है कि वो तरीका है, कभी कभी हो सकता है आ जाए, तुक्का लग जाता है कभी कभी। दैट्स नॉट द आइडियल पाथ। आइडियल पाथ इज कि मेहनत करनी है, पहले कंटेंट बेस अपना स्ट्रॉन्ग करना है, बट आंसर राइटिंग शुरू करने से पहले वेट नहीं करना है कंटेंट बेस स्ट्रॉन्ग होने का।
जैसे ही आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया वैसे ही आंसर राइटिंग शुरू कर देना, जाना है क्या? ठीक है। देन दूसरी चीज आती है कि डिसिफरिंग डिफरेंट पार्ट्स, अप्रोप्रिएट हेडिंग देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एडिक्वेट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखना, कम से कम 4 से 5 पॉइंट पर पार्ट लिखे जाने चाहिए। ओवरऑल हमारी कोशिश होनी चाहिए कि पूरे आंसर में अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है 8 पॉइंट, और अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 13 पॉइंट, बाकी एक इंट्रोडक्शन एक कंक्लूजन। ठीक है, इतना होना चाहिए। अब अगर 2 ही पार्ट हैं तो हम 7 और 6 लिखेंगे, 3 पार्ट है तो हो सकता है हम 4-4-4 लिख दें 15 नंबर के क्वेश्चन में। वो वेरी करेगा कितने पार्ट हैं। 4 पार्ट अगर उन्होंने पूछ दिया तो और कम पॉइंट होंगे, बट एवरी पॉइंट हैज टू बी सब्सटेंशिएटेड। अगर आपने 4 पॉइंट लिखा जिसमें 4 पॉइंट सिर्फ एक लाइन के हैं, ठीक है, उसका उतना वेटेज नहीं है। चारों पॉइंट का सब्सटेंशिएशन होना चाहिए, कुछ वैल्यू एडिशन से। जैसे कि कोई एक बंदा ये लिख रहा है कि इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ गई है, और एक बंदा साथ में लिख रहा है कि इन्फ्लेशन जो है WPI 12% टच कर गया है, किसको ज्यादा नंबर आप दोगे? सेकंड वाले को। ठीक है, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि अपने आंसर में हम लोग कहाँ कहाँ सब्सटेंशिएट, अब हर पॉइंट को सब्सटेंशिएट करना संभव ही नहीं है, ठीक है ना। हर पॉइंट के बारे में कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास एग्जांपल हो, डेटा हो, कोई कमिटी रिकमेंडेशन हो, कुछ हो। जहां जहां संभव हो हम लोग करेंगे। तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ज्यादा से ज्यादा ऐसे डेटा वगैरह याद करते रहें डेली बेसिस पे, जहां मिल जाए उसको याद कर लो। तो आज के सेशन में भी कुछ एग्जांपल्स, कुछ डेटा, कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। घर जाके सबसे पहले यही करना है, उनको एक बार रिवाइज करके याद कर लेना है। तो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ याद करना है, ठीक है। देन कंक्लूजन में मोस्टली लोग करते हैं कि वो समराइज कर देते हैं जो ऊपर में ऑलरेडी लिखा है, और इन इफेक्ट कई बार तो ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन ही रिपीट हो जाता है, ठीक है। डेफिनेटली वो अच्छा नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो अच्छा नहीं है। तो फिर अच्छा क्या होगा? सो यू मस्ट मूव अहेड। कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें एक स्टोरी बन रही होती है। आप पहले पार्ट ऑफ द बॉडी में कुछ लिख रहे होते हो, दूसरे में आप जैसे पहले पार्ट में लिख रहे हो तो चीज क्या है, दूसरे में लिखते हो प्रॉब्लम क्या है, तीसरे में वे फॉरवर्ड लिखते हो, ठीक है। तो एक स्टोरी बन रही है, एक लिंकेज बन रहा है। कंक्लूजन डेफिनेटली उससे आगे जाना चाहिए। अगर आपने प्रॉब्लम तक बॉडी में लिखा है तो कंक्लूजन शुड बी वे फॉरवर्ड, बट अगर वे फॉरवर्ड ऑलरेडी बॉडी में लिखा हुआ है देन द कंक्लूजन शुड बी इट्स इंपैक्ट, ठीक है, कि फ्यूचर क्या होगा। और कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी ये मत लिखो कि चीजें डूब जाएंगी, हमेशा लिखो यहाँ भी और ऐसे में भी कि चीजें अच्छी ही होगी, थिंग्स शैल इंप्रूव, ठीक है। और कंक्लूजन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कंक्लूजन मस्ट बी स्पेसिफिक। बहुत सारे लोग इस टाइप के वे फॉरवर्ड लिखते हैं, द गवर्नमेंट शुड इंप्रूव एजुकेशन, ठीक है। गवर्नमेंट शुड इंप्रूव एजुकेशन इज ऑब्वियस थिंग ना। ऑब्वियस चीजें लिखने के आपके नंबर क्यों मिलेंगे? यू मस्ट सोचो, कोई भी एजुकेशन अगर यही लिखना है ना, कोई एक स्पेसिफिक चीज लिखो। हाँ, अब या तो एटलीस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम डालो, ठीक है। रादर देन सेइंग कि इंडिया जो है ग्रो करेगा, आप लिखो कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करेगा। उसमें भी अगर रिलेवेंट कोई गोल याद है तो वो लिखो कि ये वाला गोल अचीव कर लेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसी कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा जिसमें आप स्पेसिफिक चीज डाल नहीं सकते। इट्स सिंपली या तो पता नहीं होता या फिर हम जल्दी में होते हैं, लास्ट तक आते थक जाते हैं, वहां पे वो आधे नंबर जो है कॉस्ट कर जाता है हमारा, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीजों को हम आगे के क्वेश्चन में और देखेंगे कि कैसे हम इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते थे। अभी तक के लिए कोई किसी को डाउट? इनफैक्ट यू मस्ट यूज पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। इसका सबसे पहला एडवांटेज यही है कि एग्जामिनर को क्लियर मैसेज जाता है कि आपने क्वेश्चन को आंसर किया है। अगर आप अपने मन से हेडिंग दे रहे हैं, जैसे अगर इन्होंने पूछा है रोल और आपने उसके जगह पे लिख दिया कि व्हाट इज द रिलेवेंस या फंक्शन या पावर, ठीक है, तो वो तो क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन हाँ रोल में भी पॉइंट वही आएंगे जो फंक्शन में है, ठीक है। लेकिन अगर आप रोल लिखते हो ना तो आप एग्जामिनर को तुरंत मैसेज दे रहे हो कि हमने क्वेश्चन एग्जैक्टली आंसर किया है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, मतलब आप लोगों में से किसी ने कभी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ इवेल्युएटर काम किया है? नहीं, ठीक है, अभी सब पहले अटेम्प्ट वाले हो गया, ठीक है, कोई नहीं, मतलब सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में लोग एज ए इवेल्युएटर काम करते हैं। जैसे मैं तो टीचर हूँ ही अभी, ठीक है। तो एज ए टीचर ना, अगर जो कॉपी आपको ऐसे मिलती है जिसमें आप शुरू से लेकर अंत तक विद इन ए मिनट पहुंच जाते हो, ठीक है, तो आप एक पॉजिटिव फ्रेंड ऑफ माइंड में रहते हो कि यार कुछ अच्छा ही लिखा है इसने, ठीक है, और ज्यादा नंबर देते हो। तो प्रेजेंटेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वो होनी चाहिए।
और जिन लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई है जिसकी बहुत खराब है, ठीक है, आप हैंड राइटिंग की क्लास है तो ज्वाइन कर लो। सही बोल रहे हैं, सीरियसली। मतलब इट्स लाइक ना कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो और आपके पास बैट अच्छा नहीं है, ठीक है, कितने भी आप स्किलफुल रहो, ठीक है, वो जो आंख बंद करके बैट घुमाएगा, हार्दिक पांड्या टाइप का कोई प्लेयर, वो आपसे ज्यादा रन बना जाएगा, ठीक है। और आप बहुत अच्छे स्किलफुल रहोगे, एकदम क्लास है हमारा रोहित शर्मा का, ठीक है, अब आपके पास बैट ही अच्छा नहीं है तो एज लग जाएगी, कैच हो जाओगे, इनसाइड एज से विकेट गिर जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो वो टूल है आपका, इसी के माध्यम से तो आप एग्जामिनर के, आपके और एग्जामिनर के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, जो आप लिख रहे हो, और वो अगर अच्छा नहीं है तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस कैसे होगा। सिंपल सा एजेंडा, एग्जामिनर को इंप्रेस करना है। वी शुड डू ऑल द थिंग्स दैट कम्स टू आवर माइंड, ठीक है। चलो अब अपन आगे करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है उस 2005 के रिसर्च पेपर से आया है, बट हमें तो नहीं पता एग्जाम हॉल में, तो हम तो इस स्टेटमेंट को सिंपली देखेंगे कि इस स्टेटमेंट में कहा क्या गया है और करने के लिए कहा गया। एक और चीज है जो बॉडी में लोग इग्नोर करते हैं अक्सर, ये जो कमांड दिए हुए होते हैं, डिस्कस, एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज, एग्जामिन, इवेलुएट, कमेंट, ठीक है, सबके अपने मतलब होते हैं, बट सब एक दूसरे से अलग नहीं है। कुछ हैं जो एक कैटेगरी के हैं, कुछ हैं जो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, ठीक है। और सब में एक, कुछ लोग ये अप्रोच फॉलो करते हैं, प्रोज लिखो अगेंस्ट लिखो, प्रोज लिखो कॉन्स लिखो, फॉर लिखो अगेंस्ट लिखो, वो मतलब मैकेनिकल अप्रोच नहीं काम करता है हर जगह, ठीक है। तो हमें एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल अप्रोच डेवलप करनी है, ठीक है। So the most significant achievement of modern line India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. हमें इसको करना है डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है कि डिस्कशन करनी है। डिस्कशन अगर किसी टॉपिक पे करना है तो डिस्कशन तभी कंप्लीट होगा जब आप चारों तरफ से करेंगे। अच्छा, एक मैंने एनालिसिस का वीडियो बना के डाला था, वो देखा है क्या किसी ने? चलो अच्छा नहीं देखा है, उसमें मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो डिस्कस का मतलब है सिंपली कि हम ऑल राउंड डिस्कशन करेंगे किसी भी टॉपिक पे। ऑल राउंड डिस्कशन कैन गो इन एनी डायरेक्शन, नॉट नेसेसरली प्रोज एंड कॉन्स। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। आपके पास यहाँ पे थोड़ी सी ऑटोनॉमी है कि आप डायरेक्शन खुद से चूज करो, बट डेफिनेटली सिर्फ इस क्वेश्चन को सब्सटेंशिएट करना इस स्टेटमेंट को इज नॉट एडिक्वेट। अदरवाइज तो ये होता है ना कि सब्सटेंशिएट, एलुसिडेट, इलेबोरेट, ठीक है, एक्सप्लेन, ये सब अगर कीवर्ड हैं तो इसमें हमें सिर्फ इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे डिस्कस करने बोला गया तो हमें कुछ और भी डिस्कस करना है। तो पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग में ये कहा गया है कि सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का मतलब कोई बताओ? यस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना, सम सॉर्ट लेमन टर्म्स में। लेकिन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देना, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है मॉडर्न लॉ इन इंडिया का, ठीक है। इस चीज को हमें डिस्कस करना है। तो पहला पार्ट क्या होगा हमारा कि नहीं, पहला पार्ट तो ये होगा कि इस चीज को हम सब्सटेंशिएट करें कि कैसे ये चीज हुई है। किसी को डाउट इसमें? तो दूसरा पार्ट क्या होगा ये बताओ। पहला पार्ट तो आसान था थोड़ा सा। एक और भी चीज है, कोई अगर ऐसी स्टेटमेंट है ना जो स्टेटमेंट ऑब्वियस नहीं है, मतलब ये चीज, ठीक है, ये ऑब्वियस नहीं है इतना कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज डन बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो पहला पार्ट तो हम यही करेंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? यस, दिस बाकी लोग और क्या बोले थे? एक तो वो है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे आप कौन सा डायमेंशन चूज करोगे, इसमें आपकी मदद करेगा जो सेंटेंस पहले लिखा हुआ है, ठीक है।
जो ये वाली चीज लिखी हुई है ना, ये वाली चीज तो हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम बाय सुप्रीम कोर्ट हमने सब्सटेंशिएट कर दिया। इससे पहले भी कुछ लिखा हुआ था, यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि हमें जो है दूसरे पार्ट में क्या लिखना है। तो ये है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया, ठीक है, कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है। हाँ, एक अचीवमेंट वाले लाइन से अपन जा सकते हैं कि इससे फायदा क्या हुआ, ठीक है। तो दो ऑप्शन है अपने पास, एक तो कि हम फायदा बताएं और दूसरा ऑप्शन है कि हम ये बताएं कि और किसने किया है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बाय सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है कि और भी तरीके से हुआ है, एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ने भी किया है, ठीक है। सिंस ये 10 नंबर का क्वेश्चन हम दो ही पार्ट लिखेंगे तो दोनों लिखने का स्पेस आपके पास होगा नहीं, तो या तो आप और इसके इम्पैक्ट लिख दो या फिर आप लिखो कि और किसने किया है, बट आइदर ऑफ द टू शुड बी रिटन, ठीक है। और उसके बाद फिर उससे पहले एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद एक कंक्लूजन हो जाएगा। अब बताओ इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए? तो But you can simply start by saying that how Supreme Court has banned the cracker thing in there. So that shows the importance of like in that context actually I have started, but I didn't know some of this case was in the second part, so I. Sir, recent Supreme Court जो डिस्ट्रिक्ट हुए वो भी थोड़े इंडिविजुअल इश्यूज से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मतलब उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो पास किया था, जो जजमेंट दिया था, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के लिए मतलब ये इंस्टेंस है जो। अच्छा, एक थोड़ा सा जो आप मिस कर रहे हो ना कि इंट्रोडक्शन शुड बी समथिंग जो कि हम बॉडी में नहीं लिखने वाले हैं। पहला चीज तो जो हम बॉडी में लिखने वाले वो हम इंट्रोडक्शन में क्यों लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन शुड बी समथिंग दैट मेक्स बैकग्राउंड फॉर दिस समथिंग जो हम बॉडी में लिखने वाले हैं। हाँ, कुछ वहां से शुरू करना पड़ेगा हमें। और एक चीज और जो आप शुरू कर सकते हो कि ये जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, ये है क्या, मतलब कहना क्या चाह रहा है, और फिर वो हुआ कैसे है ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब एक कंटिन्यूटी बननी चाहिए इंट्रोडक्शन में और बॉडी में। एग्जैक्टली, नहीं पॉलिटी का क्वेश्चन है। हाँ बताओ। सर मतलब मैंने इसकी मोस्ट के ऊपर वो किया कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली में बहुत अच्छे डिसीजंस लिए, जैसे कि 377 हटा दिया दूसरे, पर उनमें जिसका सबसे सिग्निफिकेंट मेरा रहा है जिसने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे फेस किया, इट वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ सुप्रीम मॉडर्न लॉ। ठीक है, दैट्स अनदर डिबेट, बट दैट कैन आल्सो बी सेड, ठीक है, कि आप कह सकते हो। बट ओवरऑल ये है कि हमें बॉडी के बैकग्राउंड बनाना है, ये हमारा मकसद होना चाहिए, ठीक है। एक बैकग्राउंड जो उसने बताया कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की है। यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे है? नहीं, पॉलिटी में है ना। पॉलिटी में एनवायरनमेंट कहाँ से आ गया? पॉलिटी में कौन से टॉपिक में है? हाँ नहीं, जुडिशरी थोड़ा सा मतलब ब्रॉड बोल दिया आपने, जुडिशरी के अंदर थोड़ा जाओ। एग्जैक्टली, दिस क्वेश्चन इज ऑन जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशरी ने डिफरेंट लिबरल इंटरप्रिटेशन किया आर्टिकल 21 का, ठीक है। सो जो मैंने प्रपोज किया है कि अगर हम इसका वहां से शुरुआत करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉ स्टार्टेड फ्रॉम द मेनका गांधी जजमेंट, ठीक है। मेनका गांधी जजमेंट क्या था? राइट टू लाइफ क्या? उसमें मेनका गांधी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज सेम एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, तो अब हम उस वहां से राइट टू लाइफ का लिबरल इंटरप्रिटेशन शुरू हुआ था जब उन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया,
इससे पहले तो बस सिंपली सुप्रीम कोर्ट बोल रही थी प्रोसीजर है कि नहीं है, ठीक है। सो वहां से हम लोग ये शुरू कर सकते हैं कि इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंटल लॉ का से रिलेटेड कोई लीगली इन्फोर्सेबल प्रोविजन नहीं है। ऐसा मत लिखना प्रोविजन नहीं है, प्रोविजन है, ठीक है, बट वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं। प्रोविजन कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ कहाँ है? डीपीएसपी में, सही बात है, और फंडामेंटल ड्यूटी में है, वेरी गुड। तो ये दोनों जगह पे है, लेकिन वो दोनों ही लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लीगली इन्फोर्सेबल चीजें कहां से आनी शुरू हुई? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू। जब सुप्रीम कोर्ट ने लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया और उसकी शुरुआत हुई, मैंने लिखा नहीं, मेनका गांधी केस से, ठीक है। तो इस टाइप से इस आइडिया को किसी दूसरे वर्डिंग में वर्ड करते हुए आप लिख सकते हो। ये बैकग्राउंड हमारा बना रहा है कि इसके बाद फर्दर कौन से केसेस हुए जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गया इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। नाउ इसके जो एक्चुअल आंसर जो होगा वो डेफिनेटली टेक्निकल है, और उसको मतलब इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि मोस्ट ऑफ यू माइट बी नोइंग। इसमें साथ में क्वेश्चन में ये भी सुप्रीम यूपीएससी ने बोला है, एक्सप्लेन विद द डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट केस लॉज। केस लॉ क्या होता है? जजमेंट, मतलब वो लॉज जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से बन गया है। जो सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एवरी रिकॉर्ड इज ए लॉ, एवरी जजमेंट इज ए लॉ, ठीक है। सो उसकी वजह से जो चीज हुआ उनको मेंशन करते हुए हमें इसको डिस्कस करना है। सो इसके बाद अगला जो आपका हेडिंग होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन एनवायरनमेंट प्रॉब्लम का कैसे हुआ है। तो आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द जजमेंट जो है आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, क्योंकि कॉमन लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना है, ठीक है। बाकी मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो सबसे पहले ऐसा है कि एक बार में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज नहीं बोल दी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ आर्टिकल 21 का मतलब है राइट टू एनवायरनमेंट ऑल्सो। हम ये चीज सीधे पढ़ते हैं, वो चीज आई चरण लाल साहू केस से, ठीक है। लेकिन ये चीज सबसे पहले नहीं थी, वो डिबेट डिफरेंट जजमेंट में आने पहले से शुरू हो गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये पहली बार में नहीं बोल दिया कि राइट टू एनवायरनमेंट है। पहले उन्होंने ये बोला कि वाटर एंड एयर आर इनएलिजिबल पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है, तो इसको आप नहीं छीन सकते। फिर उन्होंने ये बोला कि अगर इकोनॉमिक कॉस्ट है तब भी हम इन्वायरमेंट को वरीयता देंगे। इसको आप इजीली याद कर सकते हो देहरादून केस से, देहरादून केस के नाम से भी जाना जाता है कि अगर इकोनॉमिक कॉस्ट है तो भी हम लाइफ को वरीयता देंगे, इन्वायरमेंट को वरीयता देंगे। फिर उन्होंने बोला नर्मदा बचाओ आंदोलन वाले केस में कि राइट टू वाटर एक फंडामेंटल राइट है लोगों का। फिर उन्होंने बोल दिया राइट टू इन्वायरमेंट ही राइट टू लाइफ के अंदर है, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड, और फाइनली यहाँ पे आकर के कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो गया कि राइट टू इन्वायरमेंट ही मिला हुआ है, तो कोई भी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है मतलब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। फिर एक और रिलेवेंट जजमेंट है गुड्डा बर्मन केस। ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला फॉरेस्ट क्या होगा, ये डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो दिस वाज ए केस रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, याद है किसी को? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे क्या? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वैसे अभी प्रीलिम्स आएगा ना, ठीक है, तो सब याद कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीलिम्स से पहले सारे वो एक्ट जितने भी इन्वायरमेंट वाले हैं वो सारे याद कर लेना, क्योंकि पिछले सालों में 1-2 सालों में कम हो गया है, बट वो यूपीएससी दोबारा आ सकती है बैक ट्रैक पे कि इन्वायरमेंट ढेर सारा पूछेंगे, ठीक है। तो गुड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सिंपली ये कहता है कि अगर कोई फॉरेस्ट है और उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। सिंपल सा एक्ट है। अगर आपको पेड़ गिराने हैं, नहीं फॉरेस्ट गिराना है, ठीक है। अब इसमें ये बात ये आई, डिस्प्यूट ये हुआ कि फॉरेस्ट किसको बोलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहीं भी अगर पेड़ और श्रब लगा हुआ है, ठीक है, नहीं वो फॉरेस्ट कवर का साथ तुम डेफिनेशन बता रही हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल डेफिनेशन अलग से दिया कि अगर कोई फॉरेस्ट या श्रब लगा हुआ है कहीं पे भी वो फॉरेस्ट है, ठीक है। सम डेंसिटी वगैरह का उन्होंने दिया, इतनी डेंसिटी से ऊपर का है, कहीं भी लगा हुआ है तो फॉरेस्ट है, इवन इफ इट इज नॉट डिक्लेयर्ड एज ए फॉरेस्ट एरिया।
इससे क्या हुआ कि प्राइवेट लैंड पे भी अगर किसी ने पेड़ लगा रखा है, ठीक है, एक बगीचा आपने लगा रखा है, तो आप उसको नहीं गिरा सकते बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो ए लैंडमार्क जजमेंट इन दिस केस। इसके अलावा एक और इवोल्यूशन है इस कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन में। वो इवोल्यूशन है कि जो डिफरेंट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती है उस पे किस टाइप से हम डील करेंगे, ठीक है, उनकी कितनी लायबिलिटी होगी, बिकॉज दे आर ऑल्सो पॉल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट, दे आर हैम्परिंग आवर हेल्थ, एनवायरमेंट, एवरीथिंग। हाँ, ठीक है। तो वो प्रिंसिपल भी इवॉल्व हुआ है और वो भी किसी लॉ के अंदर नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट के अंदर हुआ है। तो यू कैन आइदर राइट दीज थिंग्स, यू कैन राइट दैट थिंग, और यू कैन राइट बोथ, ठीक है। लिख लिया? मोस्ट लाइकली इस दोबारा यूपीएससी कभी पूछेगी नहीं इन केसेस को, तो इसकी यूटिलिटी आएगी अगर आप फॉरेस्ट सर्विस के इंटरव्यू वगैरह देते हो या फॉरेस्ट्री ऑप्शनल वगैरह आप पढ़ते हो कभी, तब आएगी, ठीक है। तो इन केसेस में जो लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इवॉल्व हुआ है। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री पे, तो उनको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा जो भी पॉपुलेशन अफेक्ट होगा। ये एमसी मेहता केस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एमसी मेहता एक बहुत बड़े दिल्ली बेस्ड लॉयर थे और उन्होंने बहुत सारे केसेस लड़े हैं। तो ये पहला केस था जो उनके नाम पे फेमस हुआ, तो इसको एमसी मेहता के नाम से होता है। अदरवाइज ये जो कमलनाथ वाला केस है इसमें भी एक पार्टी कमलनाथ वर्सेज एमसी मेहता ही है, ठीक है। दिल्ली में जो सीएनजी बसेस लगी थी उसमें भी एमसी मेहता ही थे एक पार्टी, ठीक है। तो बहुत जितने फेमस एनवायरनमेंट के केसेस हुए हैं सब में आपको दिखेगा कि एमसी मेहता कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पहले आया कि कंपनसेशन देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं कंपनसेशन काफी नहीं है। कंपनसेशन में लोगों ने एक्सक्यूज दिया ना कि अगर गलती मेरी नहीं है तो, मान लो मैंने सारे सेफ गार्ड लिए, मैं इंडस्ट्री चला रहा था, मैंने सब कुछ सेफ गार्ड लिया, कुछ चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। जैसे भोपाल गैस वाले केस में यूनियन कार्बाइड ने लॉजिक दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, तुम एक हजारडस इंडस्ट्री रन कर रहे हो तो तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। फिर उन्होंने वेल्लोर ट्रेनरी वाले केस में बोला कि सिर्फ कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा, लोगों के साथ साथ आपने इन्वायरमेंट को भी डैमेज किया है तो आपको इन्वायरमेंट को रिस्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने बोला नहीं इन्वायरमेंट रिस्टोर करना भी इनफ नहीं है, आपके लिए एक एग्जाम्पल भी सेट होना चाहिए। सो यहाँ पे कमलनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि दोबारा से कोई ऐसी गलती ना करे। एग्जेम्पलरी का यही मतलब होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द पेनाल्टी फॉर पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड थ्रू वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। इट इज नॉट थ्रू लेजिस्लेशन दैट दीज थिंग्स हैव चेंज्ड, इट इज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट व्हिच हैव चेंज्ड। एब्सोल्यूट का मतलब यही है, देयर इज नो एक्सेप्शन, इवन इफ you have done it unintentionally you are liable, non negotiable। हाँ, no exception, absolute का मतलब होता है no exception, ठीक है। इसमें एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन आया, ठीक है। एक्चुअल आंसर में शायद इतना डिटेल में अपना लिखो, ठीक है, बस आ गया है तो बता देता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के पास, पब्लिक ने मैटर ऑफ ट्रस्ट रखा है, गवर्नमेंट इज जस्ट ए ट्रस्टी, गवर्नमेंट डजंट ओन दोज रिसोर्सेज एंड सिंस इट डजंट ओन दोज रिसोर्सेज इट कैन नॉट गिव इट टू एनी प्राइवेट पार्टी, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि नदी है, तो गवर्नमेंट नदी बेच नहीं सकती कि अडानी को हमने कल से गंगा नदी दे दिया, ठीक है। दिस इज सिंपली नॉट पॉसिबल। इस केस में ऐसा ही हुआ था, उन्होंने ब्यास रिवर को जो है कमलनाथ को दे दिया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, ये रिवर बिलोंग टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट शैल रिमेन विद पीपल ऑफ इंडिया। Sir, this year in PT also they asked me wildlife is the sole property of government. It was a wrong statement. Obviously इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से दैट्स रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। इट पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन बोलता है कि जब जो पब्लिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आइदर बिलोंग टू एवरीवन और नो वन, किसी सिंगल पर्सन को बिलोंग नहीं कर सकते, ठीक है। और लोगों के पास राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट टू एनवायरनमेंट है, इसका मतलब लोगों के पास उस पब्लिक
इन्वायरमेंट को एक्सेस करने का फंडामेंटल राइट है जो गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। ठीक है, और नाउ ये जजमेंट्स मोस्ट लाइकली नहीं आएंगे, मतलब सॉरी मोस्ट लाइकली आपको नहीं पता होंगे। इनमें से कई सारे मुझे भी तब पता चले थे जब मैंने फॉरेस्ट का इंटरव्यू दिया था। ठीक है, अदरवाइज इतनी डिटेल में कोई इतनी इन्वायरमेंट लॉज को नहीं पढ़ता है। तब आप क्या आंसर करोगे? आंसर तो तब भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो वो था मिंटोस जिंदगी, जिसको एक्चुअली में पता है फॉर्चुनेटली, आम जिंदगी में भी तो आंसर कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आम जिंदगी में हम सिंपली जो सब लोग आप लोग बोल रहे थे कि रिसेंट टाइम में जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसकी लिस्ट लगाओ यहाँ पे। ठीक है, कुछ नंबर तो मिलेगा कि इन जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर रहा है। और तो उसमें आप एक चीज तो लिख ही दोगे, मेनका गांधी केस तो आप लिख ही सकते हो, तो सबको पता है। लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू एनवायरमेंट आता है, वो आप लिख दोगे। और फिर और क्या लिखोगे? तो जोन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वो लिखना है। हाँ ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीएनजी लगाने का ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर बैन किए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टबल बर्निंग में बैन लगाया क्या? अभी क्या वो हाई कोर्ट ने दिया है वैसे तो, बट चलो ठीक है, दे सकते हैं वो भी। ठीक है, तो उस लाइन में जितने जजमेंट आपको याद आए एक एक करके यहाँ पे लिख देना है। मैंने नहीं, दैट वुड बी इररिलेवेंट ना। नहीं, वैसे क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है तो आपको आइडियली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देने चाहिए। अगर जुडिशरी वर्ड यूज किया हुआ था तो हम हाई कोर्ट या फिर हम दूसरे भी लिख सकते थे। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ही बनी है वो। ठीक है, तो जो भी चीजें सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रही है वो दो, लेकिन डेफिनेटली आप समझ रहे हो कि ये आइडियल आंसर नहीं है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन की बात कर रहा है, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ, ये इम्पैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन का। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया राइट टू एनवायरमेंट को, फिर उसके बेसिस पे जजमेंट आए हैं सारे। ठीक है, देन अब ये तो थोड़ा सा हुआ, इसमें पेज भरेगा नहीं, तो फिर कुछ अपन कॉमन सेंस और चीजें लगाएंगे। कुछ प्रिंसिपल्स सुप्रीम कोर्ट ने दिए होंगे, कुछ प्रिंसिपल के बेसिस पे ही तो सुप्रीम कोर्ट सारे जजमेंट देगी, डॉक्ट्रिन वगैरह। एक हमने पब्लिक ट्रस्ट वाला डॉक्ट्रिन देखा, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल हमने देखा, एक डॉक्ट्रिन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, अल्टीमेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बेसिस पे ही होगी चीजें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप गेस मार्क गिरी कर सकते हो। एक प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है कि हम वेट नहीं करेंगे कि एनवायरमेंटल डैमेज हो। ठीक है, ये वही सारे कॉमन सेंस वाले प्रिंसिपल हैं जो हम लोग हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रिंसिपल के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें डिफाइन करी है। ठीक है, इसमें राइट टू लाइवलीहुड वाली जो चीज है ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट ये था कि राइट टू लाइवलीहुड इज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो अगर आप कुछ नेचुरल रिसोर्स को इस तरीके से डैमेज करते हैं कि किसी की लाइवलीहुड हैम्पर हो रही है, तो आप वो नहीं कर सकते। जैसे ट्राइबल लोग कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट हैं, अगर आपने उस फॉरेस्ट को कट कर दिया तो उसकी लाइवलीहुड चली गई। तो ये बेसिकली राइट टू एनवायरमेंट से पहले आ गया था, कि पहले उन्होंने एनवायरमेंटल चीज को इस एंगल से कि लाइवलीहुड हैम्पर हो रहा है इसलिए आप वो नहीं कर सकते। बाद में तो उन्होंने सीधा सीधे बोल दिया कि तुम पेड़ ही नहीं काट सकते, राइट टू एनवायरमेंट ही है लोगों के पास। ठीक है, इसके बाद अपन अगले पार्ट पे आएंगे। अगले पार्ट में तो सिंपल, जैसे एक जो तरीका था कि इम्पैक्ट क्या हुआ है, तो आप इम्पैक्ट अगर क्या हुआ है तो उसमें वो जो जजमेंट हैं या फिर जो भी तरीका है कि गवर्नमेंट जो डिफरेंट एक्शन ले रही है सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, वो वाली पार्ट आप लिख सकते हो। और जो दूसरा हमने देखा था कि लेजिस्लेटिव एक्शन भी हुए हैं और एक्सिक्यूटिव एक्शन भी हुए हैं।
ठीक है। आइडियली इस स्टेटमेंट में, चूंकि ये जो स्टेटमेंट है, जैसे जहां कहीं भी डिबेटेबल स्टेटमेंट हो कि हम डिबेट कर रहे हैं दो साइड में, वहां पे दोनों साइड ऑफ द डिबेट को लगभग इक्वल वेटेज देना चाहिए। बट जहां पे डिबेटेबल नहीं हो, हम ये डिस्कशन तो अपने हिसाब से चूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे इस पार्ट को ज्यादा वेटेज देना चाहिए, और जो दूसरा पार्ट जो हम खुद से ला रहे हैं, ठीक है, उसको कम वेटेज दिया जाना चाहिए। सो आइडियली अगर ये 2 पेज ऐसे हैं, ठीक है, तो आपको हाफ या 1.33 तक पहला पार्ट लिखना चाहिए, और बाकी इतने पेज में ये चीजें लिखनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ने भी कंट्रीब्यूट किया है कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में। जैसे कि अगर 42nd अमेंडमेंट में उन्होंने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी नहीं बनाया होता, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आधार बनाया अपने जजमेंट में कि चूंकि ये डायरेक्टिव है, स्टेट को करना है, तो वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल द एनवायरमेंट रिलेटेड लेजिस्लेशन रिगरसली। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी जो एक्टिविज्म है वो 1980 ऑनवर्ड्स ही बढ़ा है, जब 1976 में ये डीपीएसपी आ गए थे। ठीक है, और बाकी एग्जीक्यूटिव एक्शन में तो जितने भी आपको रूल्स वगैरह पता है, जो भी आप पढ़ोगे वो सारे लिख दे रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि इसके लिए स्पेस होगा नहीं तो इनको ज़्यादा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आइडियली ये है कि जैसे मैंने डायग्राम बनाया, एक तरीके यहाँ लेजिस्लेटिव एक्शन, यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट, यहाँ एक्जीक्यूटिव एक्शन, यहाँ पे ऐसे ऐसे पॉइंट, ये अपना लिख देंगे। इतने में ही, इतना ही स्पेस है। हाँ, क्योंकि स्पेस नहीं है ज़्यादा आपके पास। अगर यही 15 नंबर का होता तो फिर इसको भी एलेबरेट हमें थोड़ा थोड़ा सा करना चाहिए था। ठीक है, ये सारे एक्ट आपको पता ही होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अदरवाइज नहीं अगर किसी को याद है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे लेजिस्लेशन। डेफिनेटली आपको प्रीलिम्स से पहले रट लेना चाहिए कि इनके क्या प्रोविजन है। सबके 2-3 मोटा मोटा प्रोविजन, खास करके ये ईपीए, इसके कई सारे प्रोविजन है। ठीक है, और फिर कंक्लूजन यही है, कुछ फ्यूचरिस्टिक, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, तो वन ऑफ द इम्पैक्ट्स हम बोल सकते हैं कि इंडिया जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथ पे है, या हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दीज जजमेंट्स। ठीक है, तो एनी ऑफ दीज लाइंस यू कैन गो। एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन 3 लाइन से ज्यादा की नहीं होने चाहिए। इंट्रोडक्शन तो तब भी 4 लाइन का हो सकता है, कंक्लूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तक सारी रामायण कहानी कही जा चुकी है। तो फिर हम कंक्लूड करने में अगर पूरा आधा पेज दे रहे हैं तो हमने डेफिनेटली बॉडी का स्पेस खा लिया, और ज्यादा मार्क्स आपके बॉडी पे ही मिलेंगे। क्वेश्चन बॉडी में ही एड्रेस हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ ब्रीफ सा मैं कंक्लूजन एक्चुअल में इसलिए लिख के लाया हूं ताकि आप लोग समझ सको कि लिखा जा सकता है। काफी सारे लोगों में ये चैलेंज आता है कि बड़े लंबे लंबे से लिखते हैं, सर लिखा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इट इज डूएबल, आप भी कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, एक था, मतलब पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने 1 घंटे लगा दिए 2 घंटे के सेशन में। ठीक है, सो डू यू वांट मी टू मूव फास्टर, या हम लोग ऐसे ही चले? हाँ क्या, हाँ या ना, फास्ट स्लो? फास्ट। ठीक है, या फिर अपन ये भी कर सकते हैं कि आज कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस करें, क्योंकि लास्ट में मैं क्या चाह रहा था, कुछ आप लोगों की कॉपीज में मैं आपके सामने इवेल्युएट करके दिखाऊं, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट पीपल डू, हाउ इट कैन इम्प्रूव। तो हम लोग एक तरीका ये भी है कि हम लोग इसको 2 सेशन में डिवाइड कर ले। ठीक है, कुछ आज कर लें क्वेश्चन, कुछ हम लोग द डे आफ्टर टुमारो कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन वैसे बाद में आना चाहिए था आइडियली। ठीक है, और इंट्रोडक्शन पहले आ गया। राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंसी, ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन लगता है। ठीक है, ये आर्टिकल सबने पढ़ा है, कौन सा आर्टिकल का है बताओ? 19(1)D, 19(1)E। ठीक है, इसके एक्सेप्शन किस में लिखे हुए हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस हैं? ठीक है, 4 में लिखे हुए हैं। अब मोस्टली हम लोग इतना डिटेल में 19(1) को नहीं पढ़ते, अपन 19(1) तक पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके रेस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, वहीं पे छोड़ देते हैं। तो जहां तक आप सोचना बंद कर देते हो, यूपीएससी वहां से सोचना शुरू करता है। ठीक है,
तो उन्होंने सिंपली बोला राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस। अब ये दो अलग अलग आर्टिकल में है, मूवमेंट अलग में है, रेसिडेंस अलग में है। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजंस बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। इस पे कमेंट करना है हमें, ठीक है। अब अगेन अगर हमें किसी चीज पे कमेंट करना है तो पहले हमें उस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है क्या। अब यहाँ पे फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप क्या एनालाइज करोगे, वही चीज है कि राइट है क्या, राइट में रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ठीक है। और कोई एक एस्पेक्ट आप ये कर सकते हो कि रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या है। मतलब रिस्ट्रिक्शंस तो 2 ही ठो हैं, ठीक है, लेकिन 2 रिस्ट्रिक्शंस तो 2 पॉइंट में खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको उसकी थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि वो रिस्ट्रिक्शंस के मतलब क्या है। या तो आप रिस्ट्रिक्शंस की एनालिसिस करो या फिर आप राइट की एनालिसिस करो, ठीक है, किसी एक का एनालिसिस करना पड़ेगा। और उस एनालिसिस के बेसिस पे लास्ट में आपको अपना कमेंट देना है। सो हियर द कंक्लूजन वुड बी योर कमेंट, योर जजमेंट ऑफ दिस एनालिसिस, ठीक है। दिस इज हाउ कमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डिस्कस और एनी अदर थिंग, ठीक है। बाकी है ना, डिस्कस भी रहता तो सेम एनालिसिस आप करते, राइट बताते, रिस्ट्रिक्शंस बताते और उसकी थोड़ी एनालिसिस करते, ठीक है। बस थोड़ा सा आपका कंक्लूजन यहाँ पे वो बांध देता है, आपके पास अब लिबर्टी कंक्लूजन में नहीं है, आपको अपनी कमेंट देना है और इसी चीज पे देना है, ठीक है। डिस्कशन में आपके पास वो लिबर्टी रहती है कि हम क्या कंक्लूजन दें, फ्यूचरिस्टिक, वे फॉरवर्ड, इंडिया में अभी कैसा चल रहा है, इस टाइप की बातें आप वहां पे कर सकते थे अगर डिस्कस होता तो। क्या टेक स्टैंड, ये बोल रहे हो? हाँ, ठीक है, बट स्टैंड का मतलब ये नहीं होता कि हम लेफ्ट या राइट या प्रो या कॉन्स लेंगे, ठीक है। व्हाट यू फील, ठीक है, ये चीज क्या है, हम अपना स्टैंड रखेंगे। स्टैंड का मतलब ये नहीं कि लेफ्ट या राइट आपको जाना है, यस या नो कहना है, ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, जो भी आप एनालिसिस करोगे उसके बेसिस पे। एलुसिडेट अगर इस करने को होता ना, फिर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते कि कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अदरवाइज भी हम एग्जाम्पल वैसे देंगे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जो है वो सिर्फ उस एनालिसिस यहाँ पे मैंडेटरी हो जाती है कमेंट करने के लिए। एलुसिडेट में हो सकता है एनालिसिस के बजाय आप एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करो कि इसी चीज को हम कैसे डिफरेंट एग्जाम्पल से हम दिखा सकते हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि इनमें जो एग्जामिन, डिस्कस और कमेंट में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। काफी सारे जैसे एलुसिडेट में और एक्सप्लेन में जैसे कोई खास डिफरेंस नहीं है। एक्सप्लेन में भी एक्सप्लेन करना, एग्जांपल तो आप दोगे ही दोगे, एक्सप्लेनेशन ऐसे थोड़े करोगे। एलुसिडेट में एग्जांपल देने के लिए वो बोल रहा है स्पेसिफिकली, ठीक है, एक्सप्लेन तो कर ही रहो। इलस्ट्रेट में भी सेम चीज है। तो देयर आर फ्यू कमांड जो कि सिमिलर हैं, ठीक है, थोड़ा बारीक सा बस डिफरेंस आता है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है। तो 19(1)D, 19(1)E जो कि एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, वो राइट ये 2 चीजें हमें देता है, ठीक है। इस टाइप से 2 से 3 लाइन में क्रिस्प इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। आइडियली ये है ना, जैसे हमने जो शेड्यूल दिया है, अगर आप लोगों ने अभी पेपर, जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, वो लोग भी क्या करो कि जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज हम करते जाएंगे ना, लिख के आना। उससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में रहेगा कि आपने क्या सोचा था, ठीक है। तो उससे जो डेविएशन हम अगर कुछ बोलेंगे आपको, ठीक है, तो वो याद होगा बड़ी आसानी से, ठीक है। जब हमको कोई करेक्ट करता है तो वो चीज़ दिमाग में रहती है। ऐसे अगर आप सिर्फ कहानी सुन लोगे सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह, ठीक है, तो वो याद नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसे प्रैक्टिस करो। टाइम की कमी तो है नहीं, अभी कोई एग्जाम तो है नहीं, ठीक है। अगले वाले पार्ट में अपन बताएंगे कि राइट्स क्या क्या अवेलेबल हैं पहले, ठीक है। तो ये 2 राइट हैं, राइट टू फ्रीली मूव इन इंटर एंड इंट्रा स्टेट्स, एंड देन राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द थ्रू आउट द टेरिटरी का बेसिकली मतलब क्या है, ये है। इसके अलावा एक और चीज हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, ठीक है, या फॉरेन मूवमेंट। तो वो भी यहाँ पे आपको लिखना चाहिए। हाँ, ये वाली बात वैसे तुम्हारी सही है, ठीक है। तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि वो थ्रू आउट द टेरिटरी की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो आप ये 21 वाला स्किप कर सकते हो,
ठीक है। फिर राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, तो इसमें हम जो एक्सेप्शन है उसको लिख देंगे। इन 1905 इट मेंशंस द ग्राउंड फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और इसमें दो ही ग्राउंड हैं, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। यहाँ पे आपको डेफिनेटली एग्जाम्पल्स देने चाहिए। हाँ, पैसा नहीं है, एग्जाम्पल। he cannot मूव करते तो हैं, मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके दूसरे एक्टिविटीज पे रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, ठीक है। मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस, कोविड का एग्जांपल दो ना, कोविड में सबको उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, किस में? जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, तो इसका एग्जांपल आना चाहिए। इसका तो इनर लाइन परमिट ही है, शेड्यूल ट्राइब के इंटरेस्ट में इनर लाइन परमिट जो लगा रखा है, क्या? शेड्यूल, हाँ, बट वो मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस कहाँ लगाते हैं? फिफ्थ शेड्यूल से, हाँ, रेसिडेंस पे मत, वो लिख दिया, लिखा ना मैंने, अच्छा कोने में लिखा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, इनर लाइन परमिट मैंने लिखा था, ठीक है। इसके अलावा आप नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके मूवमेंट में हैं, जैसे ये जो वर्ड यूज किया हुआ है ना, फ्रीली मूव्स, तो फ्रीली का मतलब क्या हुआ कि हम जब चाहें तब घूम सकें, व्हेन एवर, ठीक है, जिस तरीके से चाहें, जहां चाहें, व्हेन एवर, हाउ एवर, उस तरीके से हम कर सकें। लेकिन ऐसा हमें करने देती है क्या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट बोलती है अगर आपको बाइक चलाना है तो हेलमेट लगाना पड़ेगा, कार चलाना है तो सीट बेल्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑल दोज रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड इन द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो आप चाहो तो यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल भी दे सकते हो, क्योंकि यही तो क्वेश्चन का कोर है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन लगाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपको फर्दर थोड़ा एनालिसिस भी देना चाहिए, तो फैक्चुअल पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब आपको एनालिसिस देनी चाहिए कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैज टू बी रीजनेबल, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि रीजनेबल का क्या मतलब होगा, किसी को पता है? ठीक है, बट कुछ और नहीं, वो तो राइट की बात हो गई, नहीं, रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होने चाहिए। हाँ, टू सम एक्सटेंट, मतलब जैसे रिस्ट्रिक्शंस हम लगा रहे हैं तो आपके फंडामेंटल राइट को मैंने रोक दिया, ठीक है, तो रोकने के लिए कुछ बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, तो वो बेनिफिट जो है वो आपके लॉस से ज्यादा होना चाहिए। तो इमरजेंसी का वो अलग से प्रोविजन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आप बोल सकते हो, लेकिन वो तो अलग आर्टिकल ही है। यहाँ तो अब देखो ये रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, तो कौन लगाएगा? तो एक लेजिस्लेटिव एक्शन के द्वारा लेजिस्लेटिव पहले उसको सैंक्शन करेगा और एक्सिक्यूटिव लगाएगा, ठीक है। इमरजेंसी भी आप बोल सकते हो एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन था, लेकिन वो अलग ही है। वो भी है, हाँ बिल्कुल, सेक्शन 144 भी आप लिख सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, दुनिया भर के एग्जाम्पल हैं जो आप लिख सकते हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन वो चीज मत लिखो जो ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में है, ठीक है, तो वो फिर एप्लीकेशन ऑफ माइंड आपका नहीं दिखा रहा है। वो चीज लिखो जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। टेक्निकली यू आर करेक्ट, बट आइडियली वो पॉइंट लिखे जाने चाहिए। मतलब मार्क्स तो वही है ना कि खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें खुद लग रहा है कि कौन सा बेहतर है, तो जो बेहतर है वही चीज हमें लिखनी चाहिए। और चूंकि यहाँ पे प्लेथोरा ऑफ एग्जाम्पल अवेलेबल है, इसलिए हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, ठीक है। अब एक और भी चीज होती है ना, जैसे प्रोस्टिट्यूशन पे जो हमने बैन कर रखा है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ था कि आप जो है उसको आप प्रोफेशन वाला भी है, अगला जो आर्टिकल DE के बाद जो जी है कि आप प्रोफेशन भी उसको प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं, और फिर आप प्रोस्टिट्यूशन एक्चुअली बैन नहीं है इंडिया में, उनके प्रोस्टिट्यूशन आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, ठीक है, कि आप पब्लिक प्लेसेस के आसपास जो है कस्टमर नहीं ढूंढ सकते, अपना रेंट नहीं कर सकते रूम, ठीक है, इस पे रिस्ट्रिक्शंस है। तो आर्टिकल यही था कि आप मूवमेंट पे उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है, क्योंकि हम पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक में हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए कर रहे हैं,
ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एनालिसिस दिया कि रीजनेबल हम किसको मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक तो कि ये रेस्ट्रिक्शन जो है उसके लिए लेजिस्लेटिव सैंक्शन होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक्सिक्यूटिव एक्शन बिना किसी लेजिस्लेटिव बैकअप के नहीं किया जा सकता। दूसरा, आर्बिट्ररी नहीं होगा। आर्बिट्ररी नहीं होगा का मतलब रैशनल होना चाहिए, ठीक है। रैशनल कैसे पता चलेगा कि जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हो वो उस रेस्ट्रिक्शन से अचीव हो रहा है क्या, ठीक है। जैसे मान लो हमें दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और अगर हमने जाके चांदनी चौक वाले एरिया में धारा 144 लगा दी, तो दिस इज आर्बिट्ररी। कोई लॉजिक होना चाहिए दोनों में। देन जो एक्सटेंट है, जो अर्जेंसी है, उसके बेसिस पे भी तय किया जाएगा कि वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल है कि नहीं। डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए। मान लो अगर कुछ लोग स्लोगनियरिंग कर रहे हैं, उस पर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि फायरिंग कर देंगे, तो डिस्प्रपोर्शनेट है, ठीक है। हाँ, माइल्ड जो है उनके मूवमेंट को आप रोक सकते हो, इस टाइप की चीजें कर सकते हो। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी के लिए अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इट कैन बी कंसिडर्ड ए वैलिड ग्राउंड, इट कैन बी कंसिडर्ड ए रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, कहानी की तरह याद करो कि एक मकसद ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ठीक है, और सिचुएशंस वारंट करनी चाहिए, एक्सीजेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, और फिर डीपीएसपी इज ए वैलिड ग्राउंड। इस टाइप से 4-5 पॉइंट आप याद कर लो। मैंने उसमें कंप्यूटर साइंस में ये लिख दिया दैट इज लार्जली इजीली अवेलेबल टू सिटीजंस। एग्जांपल 2000 में मेरा कोई भी दिल्ली का पॉलिटिकल पार्टी लीडर होता था, दैट यूज्ड टू बी अ दिल्ली, राइट, बट अब मेरा डेमोग्राफिक चेंज हो गया है, तो नाउ मनोज तिवारी को बन गया है। So बिहारी डेमोग्राफी है चेंज टू बिहार, उनका हाँ, वो तुम्हारा एनालिसिस है कि यू आर सेइंग कि रेस्ट्रिक्शंस जो है मतलब टेम्पोररी नेचर के हैं जो अभी इंडिया में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। लार्जली जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। यू कैन गिव योर कमेंट, ठीक है, कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट आर्बिट्ररी नहीं लगा रही है, देयर इज जुडिशरी जो कि कई बार रेस्ट्रिक्शंस को रोकती भी है कि आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा कंक्लूजन। और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहिए? एक उसने अपना कंक्लूजन बताया कि लार्जली अवेलेबल है, और किसी का कोई कंक्लूजन? सोचो सोचो सोचो, एक्टिव करो, रहोगे तब ज्यादा सीखोगे। पेपर ले लो। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शंस के पर्पस क्या है? रेस्ट्रिक्शंस का पर्पस है देश में यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रखना, ठीक है। खास करके जैसे इनर लाइन परमिट है तो वो है कि डाइवर्सिटी मेंटेन रखने के लिए है, ठीक है। तो उस पर्पस के लिए है। एब्सोल्यूट फ्रीडम से एनार्की आ सकती है, तो एब्सोल्यूट फ्रीडम एनीवे किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं है, ठीक है। बट हमारे यहाँ, हमारे वाले में खास बात यह है कि हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो अमेरिका का है जैसे कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। इट हैज बीन लेफ्ट फॉर द जुडिशरी टू इंटरप्रेट व्हाट वुड बी द रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और एक बैलेंस दोनों में बनाया जाना चाहिए। ये मैंने चाहिए के टर्म्स में कंक्लूड किया है, आप कैसा है के टर्म्स में भी कंक्लूड कर सकते हो। थोड़ी सी लिबर्टी है कि आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। बट सम कमेंट विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रिटन इन द बॉडी शुड बी मेंशन्ड एज ए कंक्लूजन। जो लाल किले पे जो फार्मर्स वाले लोग कर रहे थे, तो इससे भी हमारी जो इमेज है इंडिया की वो टैर्निश हो गई। हाँ, मतलब ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो कि जैसे इंडिया के इमेज को बनाने के लिए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, सब कुछ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है। एवरीथिंग कैन बी डन इन द पब्लिक इंटरेस्ट। वहाँ 2.5 लाख लोगों को नर्मदा जो डैम बना सरदार सरोवर डैम, 2.5 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। But हमने जैसे इसमें ये but these rights are not absolute, sir,
अरे वही तो आंसर किया है। ये तो फिर हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अरे ये राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। और रीजनेबलनेस की हमने एनालिसिस, अब हमें एनालिसिस देनी है, ठीक है। तो अब सिर्फ इतना अगर आप लिख दोगे ना तो ये तो खत्म हो जाएगा ना आधे पेज में, ठीक है। दूसरे पेज में आप क्या लिखोगे? इस बार के पेपर में चैलेंज ही यही है कि दूसरे पेज में हम क्या लिखेंगे हमें खुद से सोचना है, ये क्वेश्चन नहीं बताता है हमें, ठीक है। और वो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं। मल्टीपल पीपल कैन थिंक ऑफ इन डिफरेंट लाइंस एंड देन ऑल कुड बी करेक्ट, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े। ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो कि हम सब पढ़ते हैं और आई एम श्योर कि हम सब ने कर लिया होगा, सॉरी आप सब ने कर लिया होगा, ठीक है। तो फिर इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग बताओगे, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि जितने लोग क्लास में भी बैठे हुए हैं उतने पॉइंट्स तो मुझे आप लोगों से मिलने चाहिए। सब लोग एक एक पॉइंट बोलेंगे, सब लोग अभी से सोचना शुरू कर दो, ठीक है। मैं तब तक बताता हूँ कि बॉडी में क्या क्या पार्ट होने चाहिए थे। टू व्हाट एक्सटेंट, देखो जहां कहीं भी चीजें आ जाए, टू व्हाट एक्सटेंट, कोई भी चीज यहां से यहां पहुंचनी है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली अभी बीच में कहीं होगी। अब ये यहीं पे है कि यहीं पे है, वो मैटर ऑफ डिबेट है, हम मान के चलते हैं बीच में कहीं पे है, ठीक है। तो ऐसे हर क्वेश्चन में आप बताओगे कि यहां तक तो पहुंच गया है और ये नहीं पहुंचा है, ठीक है। हर क्वेश्चन अगर टू व्हाट एक्सटेंट पूछा है, हमारा स्ट्रक्चर यही रहेगा। Has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? तो पहला पार्ट आएगा कि हाँ चेंज हुआ है, दूसरा पार्ट आएगा नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं हुआ है की जगह पे आप ये भी बोल सकते हो कि लिमिटेशंस रही हैं, फेलवर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि हेडिंग में आप डालो नहीं हुआ है, पॉइंट भले लिमिटेशन के डाल दो, फेलवर के डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। ये चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप, डिड नॉट चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप, ये दो हेडिंग अप्रोप्रिएट डाले जाने चाहिए। पॉइंट तो सारे लिमिटेशन फेलवर यही सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है। किसी को कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं? अब आएगा कि इंट्रोडक्शन क्या होगा। हाँ, पहले बेसिक चीजें बताएंगे, बेसिक के बेसिस पे हम आगे बढ़ाएंगे कि 73rd ने क्या चेंज किया है। कंक्लूजन क्या होगा? हाउ दे हैव गॉट रिप्रेजेंटेशन, तो मोस्ट लाइकली आप यही लिख दोगे ना कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम बता रहे हैं तो फिर हम सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में भले पूछा हो नहीं पूछा हो, अगर हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट एंड योर प्राइमरी ड्यूटी इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस नेशन, तो यू हैव टू शो योर कैंडिडेचर फॉर दैट, ठीक है। तो यहां आपने बताया कि कुछ चीजें नहीं बदली है, तो कैसे बदलेगी वे फॉरवर्ड, ये आइडियल कंक्लूजन होना चाहिए। अगर यही 15 नंबर का हो जाता क्वेश्चन तो हम वे फॉरवर्ड प्रॉपर एक पेज में लिख देते, एक पार्ट बन जाता हमारा, ठीक है। लेकिन चूंकि 10 नंबर का है, हम 2 पेज इसी में चला जाएगा हमारा कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली हम कंक्लूजन को थोड़ा लंबा लिखेंगे और उसमें 2-3 वे फॉरवर्ड इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड होने से हमारा वो कंडीशन भी फुलफिल हो गया कि स्पेसिफिक होना चाहिए कंक्लूजन, समथिंग मोर देन व्हाट वी हैव रिटन इन द बॉडी, ठीक है। ऑल दोज कंडीशन आर बीइंग सेटिस्फाइड। तो ये थंब रूल कहीं पे लिख लो, इफ आई हैव रिटन प्रॉब्लम आई विल राइट सॉल्यूशन आइदर इन डिटेल और इन कंक्लूजन, इट विल डिपेंड कि कितना स्पेस बचा हुआ है, कितने मार्क्स है क्वेश्चन। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन तो बहुत आसान है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया, रिजिड सेप्टेम्बर, इस टाइप का कोई भी एक सेंटेंस बना दो,
ठीक है। अगर आप चाहो तो एक छोटा सा इस टाइप का डायग्राम भी बना सकते हो, इट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, क्वेश्चन की डिमांड नहीं है, ठीक है। बट टू ब्रिंग आउट सम डाइवर्सिटी कि 73rd या 4th अमेंडमेंट ने किया क्या है, आप इस टाइप से कुछ प्रोविजन लिख सकते हो। आपके ऊपर है कि कितना स्पेस है, बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देना चाहिए क्योंकि ये कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज नो कॉपीराइट, देयर इज ओनली राइट टू कॉपी। ठीक है, इसमें बॉडी में आपको थोड़ा ज्यादा लिखना चाहिए, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन क्या है। हाँ हाँ आई वुड रादर से कि आपको ये लिखना चाहिए कि ये सारे जो पॉइंट हैं ये एक्चुअल में कन्वर्ट क्या हुए हैं। ये तो प्रोविजन सिर्फ है ना, ये तो 1992 में आ गया, ठीक है, लेकिन 2022 तक आते आते कितना इफेक्टिव हुए ये प्रोविजन। ये जैसे आपको ये लिखना है ना कि SC/ST रिजर्वेशन इन पॉपुलेशन, ठीक है, अब प्रैक्टिकली कितने SC/ST को रिजर्वेशन का फायदा मिला, ये वुमेन रिजर्वेशन हुआ, तो जैसे आप लिख सकते हो कि कई स्टेट ने तो 50% तक दिया, फॉर एग्जांपल बिहार। एग्जैक्टली, कुछ डेटा सब्सटेंशिएशन या कुछ एग्जांपल, सक्सेसफुल एग्जांपल कि कहीं पे पंचायत ने अच्छा काम किया है, वो आपको बॉडी में देना चाहिए, मतलब मोर देन जस्ट प्रोविजंस, ठीक है। तभी तो आप बताओगे ना कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट सी। हाँ, yes you can write that, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट एक एग्जांपल आएगा, ठीक है। और चलो अब ये आपकी ड्यूटी है, फिर पॉइंट बताओ कैसे क्या क्या गवर्नेंस चेंज हुआ है। यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है, उन्होंने लिखा है ना चेंज द गवर्नेंस लैंडस्केप, तो हाँ वो ऑब्वियसली सारे एग्जांपल ग्रास रूट के ही आएंगे, वो तो ऑब्वियस है। पंचायत का आप एग्जांपल दोगे तो ग्रास रूट ही आ जाएगा, तो उसमें दिक्कत होगी नहीं। दिक्कत ये होगी ना कि सारे एग्जांपल गवर्नेंस के नहीं होंगे, ठीक है, तो हमें सारे नहीं तो हमें कुछ तो एग्जांपल गवर्नेंस वाले होने चाहिए, ठीक है। गवर्नेंस मतलब स्कीम इम्प्लीमेंटेशन की आप बात करो, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की आप बात करो, ठीक है, एजुकेशन की बात करो, हेल्थ की बात करो, कि ये सारी चीजें, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की बात करो, इनकी बातें आपको करनी है अपार्ट फ्रॉम द वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट एज पॉलिटिकल एंगल ज्यादा है, सोशल एंगल ज्यादा है, गवर्नेंस एंगल कम है, जस्टिफाई किया जा सकता है कि गवर्नेंस उसमें भी है, ठीक है, बट अपन वही पॉइंट अगर सिर्फ लिख के वापस आ गए तो अपन गवर्नेंस के कोर को एड्रेस नहीं किए। हाँ, अब क्या अब रेगुलर इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो अब तो वो गवर्नेंस थोड़ा ना चेंज कर दिया, मैं वही तो बता रहा था। व्हाट्स द पॉइंट, मतलब हमारे किस हेडिंग को जस्टिफाई कर रहा है तुम्हारा पॉइंट, ये हमें सोचना है। लिखोगे क्या ये बताओ। नहीं, अगर हम हाँ, प्रोबेबली व्हाट यू आर सेइंग इज कि हम ये लिखेंगे कि इलेक्शन जो है रेगुलर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एज शोन इन मूवी न्यूटन, प्रोबेबली यू आर ट्राइंग टू से दिस, ठीक है, कर सकते हैं, बट अगर एक्चुअल एग्जांपल अगर आप कुछ दो तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, उसमें पंचायती राज का कहाँ रोल है, पीआरआईज ने जो किया है वो लिखना है हमें, पीआरआई या अर्बन लोकल बॉडी ने जो किया है वो लिखना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ऐसा अर्बन लोकल बॉडी से वो रोल नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें है, लोकल गवर्नमेंट का रोल है उसमें। हाँ, मस्टर रोल किसमें? हाँ बिल्कुल, मनरेगा में बहुत रोल है, मनरेगा तो इस आंसर में आना ही चाहिए। मनरेगा की प्लानिंग
लोकल बॉडीज करती है, उसका एक्सिक्यूशन लोकल बॉडीज करती है, ठीक है, क्या एसेट बनेगा, किसको जॉब मिलेगी, सब लोकल बॉडीज डिसाइड करते हैं। तो मनरेगा तो इसमें एग्जांपल में 2-3 बार आना चाहिए, ठीक है। सोशल ऑडिट आएगा, बिल्कुल सही। और सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने का भी बड़ा रोल किया है। कोविड के टाइम पे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मास्क वगैरह बनाए हैं, ठीक है, उसमें पंचायत और सेल्फ हेल्प ग्रुप साथ में मिलकर काम किए हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल आएगा। कई सारे लोकल बॉडी जो है सफाई वगैरह का काम कर रही है, अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में कंपटीशन, इसमें अर्बन और रूरल अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप दोनों के एग्जांपल ले सकते हो। Is it related to governance? The question is this. ठीक है, अगर इसको इस टाइप से लिखा जाए ना कि एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेप लिया जा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक प्लानिंग का, तो वो कर सकते हैं, इस एंगल से लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा हाँ, ये भी आप कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो देयर वेरियस पॉइंट्स जो आप लिख सकते हैं। एक चीज है, कुछ पॉइंट्स मैं और ऐड करा देता हूँ, जो आपने बोला वो तो सही से बोला ही आपने। ऑनलाइन वाले भी जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी पॉइंट लिखा करो, ठीक है। कस्टमाइज्ड गवर्नेंस मॉडल्स, जो सबसे 73rd का जो सबसे बेसिक चीज है, इसमें अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट मॉडल है, ठीक है। खास करके अर्बन लोकल बॉडीज में बहुत ही डाइवर्सिटी है, कैंटोनमेंट बोर्ड अलग है, नगर पंचायत अलग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग है, डिपेंडिंग अपॉन की क्या साइज है, तो गवर्नेंस मॉडल ही पूरा जो है चेंज हो गया है, ठीक है। फिर आप प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी लेकर के आए, पता है सबको? नहीं पता? प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी ये बोलता है कि जो काम नीचे के लेवल पे हो सकता है उसको नीचे के लेवल पे दिया जाना चाहिए, अगर वो नीचे के लेवल पे अच्छे से नहीं हो रहा है तभी ऊपर वाले लेवल पे काम आना चाहिए। तो ये लोकल बॉडी जो बने हैं वो इस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई गई, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई गई, ठीक है। इसमें आप मनरेगा का भी एग्जांपल दे सकते हो, उन कमिटीज का भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। देन डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, जैसे पंचायत को क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट में पंचायत को राइट दिया गया कि दे विल बी द फाइनल डिसीजन मेकर, ठीक है, वो यहां से आया। देन सोशल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम बॉटम, गवर्नेंस का पैराडाइम चेंज हुआ, ठीक है। अभी तक अकाउंटेबिलिटी कौन, सीएजी कर रहा था ऑडिट, तो द थिंग्स आर चेंजिंग। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो, 2.5 लाख पंचायत, उसमें सारे पंचायत के जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात हम लोगों ने कर ही ली है कि वुमेन रिजर्वेशन कैसे हुआ है। इसमें आप लिख सकते हो कि ऑन एन एवरेज अभी 40% रिप्रेजेंटेटिव वुमेन है, 33% जो है वो डिमांड था, अभी 33 से ज्यादा है, 40 के करीब है। बिहार ने तो 50% रिजर्वेशन दिया, कई सारे स्टेट ने 50% कर दिया रिजर्वेशन वुमेन को, ठीक है। थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान बस ये रखना है कि हमें गवर्नेंस वाले एंगल से सोचना है, ठीक है। कैसे स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नेंस के डिफरेंट मॉडल में लोकल बॉडीज की वजह से चेंज आ रहा है। अगर हमारे सारे पॉइंट नॉन गवर्नेंस वाले रहेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, 1-2 पॉइंट हम डाल सकते हैं, वो चल जाएगा। नंबर ऑफ पॉइंट जैसे 3-4 तो आपने गवर्नेंस के डाल दिए और भरना है पेज, ठीक है, तो कुछ नॉन गवर्नेंस वाले साथ में चले जाएंगे। ठीक है, कैसे नहीं बदला है ये बताओ, अगला पार्ट क्या आएगा ना, कैसे नहीं बदला है। हाँ, टैक्सेशन लगाते ही नहीं है, कोई डेटा है किसी के पास? हाँ, तो देखो अल्टीमेटली जो हम लोग चीजें पढ़ते हैं ना कि देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम, 3F, फंड, फंक्शन, फंक्शनरी, ठीक है। वो वही चीज़ों को लिखना है कि एक्चुअली में जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन वर्ड दो या नॉट चेंज लिखो। ये जो गवर्नेंस है वो एक्चुअल में अभी भी ब्यूरोक्रेसी चला रही है, एक्चुअल में अभी भी स्टेट गवर्नमेंट चला रहे हैं। कैसे? थ्रू टाइड ग्रांट, थ्रू देयर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम,
ठीक है, थ्रू देयर ब्यूरोक्रेसी, और प्लान इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट हमें लिख देना है। ठीक है, कुछ डेटा लिख लो इसके, जैसे टाइड नेचर ऑफ फंड्स में अप्रॉक्सीमेटली 80% जो फंड पहुंचते हैं पंचायतों तक वो टाइड होते हैं। कुछ नंबर लिखोगे तो अच्छा रहेगा ना, वजन बढ़ेगा बाद में। ठीक है, तो अलग अलग आते रहते हैं यार, ये मैंने भी नहीं देखा कि किसने दिया है। ठीक है, हाँ वो भी मैंने लिखा है, पंचायत पति, बिल्कुल सही। हाँ मतलब वो पूरा इंडिया की रियलिटी है वो। ठीक है, उसमें कोई उसमें कोई सब्सटेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप। हाँ ये तो हाइटिंग हो गया। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो। हाँ ओवरऑल ही बेसिकली जो हमारा म्यूनिसिपल टैक्स है वो 0.25% ही है टोटल। ठीक है, जबकि चाइना का जो आप बता रहे हो ना, चाइना में 3% है। टाइड का मतलब ये हुआ कि हमने आपको पैसा दिया और ये बोला कि आप चप्पल खरीदेंगे, और एक हुआ कि मैंने आपको पैसा दिया और आपको छोड़ दिया कि आपको जो जरूरत है वो खरीद लो। तो पंचायत को गवर्नमेंट से स्कीम आता है कि आप इस स्कीम में खर्चा करेंगे, कि आपको अनाज देना है या आपको जो है चापाकल लगाने हैं या फिर जो भी चीज़ें करनी है। उनको ये नहीं आता कि आप अपने पंचायत में क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से खर्च कर लीजिए, तो उसको बोलेंगे अनटाइड। तो ये रिकमेंड किया है फाइनेंस कमीशन ने कि जो अनटाइड फंड हैं वो 50% होने चाहिए। 50% फॉर अर्बन लोकल बॉडीज और 60% फॉर रूरल लोकल बॉडीज। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट फंडिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है तो उसका प्रॉब्लम क्या है? पैसा आना चाहिए, कहीं से आए, सरकार से आ रहा है तो क्या दिक्कत है? हाँ तो दिक्कत क्या है? हाँ मतलब एक्चुअली फिर लोकल गवर्नमेंट नहीं हो रही है ना। अगर आपको ऊपर से पैसा आ रहा है, ठीक है, तो आप उसके एजेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ गवर्नमेंट वाली जो चीज थी वो डिफीट हो गई। द होल पर्पस इज डिफीटेड। ठीक है, कैपेसिटी गैप है। पहले तो ये फंड वाले प्रॉब्लम हो गए, फिर फंक्शन वाले प्रॉब्लम हो गए। ठीक है, पैरेलल बॉडीज है, कई सारी पैरेलल बॉडीज होती है, जैसे कि जो पंचायत है या म्यूनिसिपैलिटी वो भी अपने प्राइमरी हॉस्पिटल बना रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी प्राइमरी हॉस्पिटल बना रही है। ठीक है, तो उनके फंक्शन डाइल्यूट हो रहे हैं। देन कैपेसिटी गैप है, फंक्शनरी वाला प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल है। ठीक है, सोशल ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। हाँ ठीक है, तो मतलब इट इज टू द ट्यून ऑफ कि मतलब 10% ही हो रहा है, बहुत ही कम है वो। ठीक है, और करप्शन, सीएजी ने बोला, मैं सर्च कर रहा था कि कोई इंडिया लेवल का कोई डेटा आया है क्या, तो बट एक्चुअली ऐसा है कि सीएजी ऑडिट जो है इंडिया लेवल पे होती नहीं है। तो एज एंड व्हेन स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट, सीएजी ऑडिट करती है लोकल बॉडीज का। तो इसीलिए डिफरेंट स्टेट के आ रहे थे। तो आप एज ए एग्जाम्पल दे सकते हो कि सीएजी ने अपने ऑडिट में बताया था कि 70,000 करोड़ के जो काम हुए हैं उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया लोकल बॉडी ने इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो सिमिलर चीज आप बोल सकते हो कि ये मतलब करप्शन है वैसे। बिल्कुल, अगर वहां पे है तो मतलब खराबी बाकी जगह भी होगी, क्योंकि ऑडिट होता ही नहीं है ना, पूरा नेशनल लेवल पे होता ही नहीं है ऑडिट, इसलिए नेशनल लेवल का डेटा हमारे पास है नहीं। ठीक है, और ऐसे तो सबको ही पता, सबने देखा होगा कि करप्शन होता है, तो इस पॉइंट में कोई डिस्प्यूट करेगा नहीं। ठीक है, एक हमारे गांव में थे, मैं अभी गांव गया हुआ था, तो चुनाव होना था, तो चुनाव में आया, उसने बोला कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे मैंने बातों में पूछ दिया कि मतलब क्यों लड़ रहे हो, पता नहीं मैंने भी क्यों पूछा कि क्यों लड़ रहे हो, क्या ही मतलब है। ठीक है, बट वो भी बड़ा ईमानदार था। उसने बोला कि एक्चुअली देखिए बाबू, ठीक है, वहाँ पे मतलब बाबू टाइप से बोलते हैं, बाबू हमारी 3 बेटियां हैं,
तीनों की शादी करनी है अगले 5 सालों में। ठीक है, तो वो खुलेआम यही कह के गांव में सब लोगों से वोट मांग रहा था। ठीक है, हाँ वो ये बोल रहा था कि हमको 3 बेटियों की शादी करनी है, गांव वाले मदद करो मेरी। ठीक है, हालांकि गांव वालों ने की नहीं मदद फाइनली। हाँ ठीक है, तो बेईमानी का काम इतना ईमानदारी से नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब मेरा इंटेंशन क्लियर है कि मैं तुम्हारा मर्डर कर दूं तो मर्डर जायज हो जाएगा। ये कौन सी बात है। हाँ ये तो मतलब वही बात है, अभी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है सब इसको क्वेश्चन कर रहे थे कि देखो तुम भी करप्ट हो। ठीक है, अब तो ये खराब काम कर रहा है, अब मेरे से क्यों क्वेश्चन कर रहे हो, मैंने तो कभी बोला ही नहीं मैं ईमानदार हूँ, ये तो बात नहीं हुई। ठीक है, और एक पंचायत पति का पॉइंट तो आना ही चाहिए इसमें। ठीक है, सो इनमें बहुत सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख दिए होंगे, आगे बढ़े। ठीक है, अब अगर किसी के पास वही है स्पेस बचेगा तो आप वे फॉरवर्ड लिखोगे, अगर स्पेस नहीं बचेगा ठीक है, बट मैंने थोड़ा वे फॉरवर्ड लिख दिया है ताकि आपको नॉलेज में बढ़ावा हो। फंड फंक्शन फंक्शनरी में ही अपन वे फॉरवर्ड लिखेंगे। ये जो 50% 60% वाला डेटा मैंने दिया था, एक अच्छा चीज़ जो है वो तमिलनाडु का प्रैक्टिस है। जब भी PRI में आए तो आप ये चीज़ लिख सकते हो। तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या करती है कि मैचिंग ग्रांट देती है, जितना भी वो रेवेन्यू खुद से जनरेट करते हैं उतने का मैचिंग एडिशनल ग्रांट आता है पंचायत को। तो पंचायत के पास इंसेंटिव है या लोकल बॉडीज के पास इंसेंटिव है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुद के रेवेन्यू जनरेट करें। मतलब पंचायत टैक्स लगा सकती है, तो अगर उन्होंने टैक्स लगा करके 1 करोड़ रुपए कलेक्ट किया है तो तमिलनाडु गवर्नमेंट 1 करोड़ और देगी। और अगर किसी पंचायत ने मान लो 10,000 ही जमा किए तो उसको 10,000 ही मिलेगा। तो पंचायत के पास इंसेंटिव है ना कि ज्यादा से ज्यादा पैसा, अभी कोई इंसेंटिव ही नहीं है पंचायत के पास क्यों। ठीक है, तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट दैट यू कैन राइट कि बाकी गवर्नमेंट को भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, फिर एक वर्ड होती है एक्टिविटी मैपिंग। ये वो काम स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है, जो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि शेड्यूल 11th में दिए गए हैं, 11th 12th में वो सारे सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट के हैं। तो एक एक्टिविटी मैपिंग होनी चाहिए कि कौन सा काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी, कौन सा काम लोकल बॉडीज करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग तो होना ही चाहिए। एक आइडिया ये है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस बनाए जाने चाहिए जो कि डेडिकेटेड होंगे या स्पेशलाइज्ड होंगे लोकल गवर्नमेंट में। अभी क्या होता है कि ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो ऑफिसर होते हैं वो IAS लोग ही चले जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो कोई सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइज्ड नहीं है, वो कभी वो हेल्थ में रहते हैं, कभी एजुकेशन में रहते हैं, कभी सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो देयर इज ए चैलेंज। ठीक है, हालांकि अभी जब तैयारी हम लोग कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि जितना पावर मिले उतना अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे पावर कम करने वाली बात मत करो सर। ठीक है, बट प्रैक्टिकली देश हित में यही है कि नहीं, यही तो ये प्रॉब्लम है ना जो हमारा सिस्टम है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें ये है कि IAS ऑफिसर ही सब जगह होते हैं। ठीक है, ये आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है किसी का, हाँ तो आप लोग पढ़ोगे जर्नलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट डिबेट। कुछ लोग कहते हैं कि स्पेशलिस्ट होने चाहिए एजुकेशन के, हाँ लेटरल एंट्री की बात की जा रही है उस ग्राउंड पे। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, जर्नलिस्ट बंदे का विजन बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि इसने सारी चीजें देखी है और हेल्थ जो है आइसोलेटेड नहीं है बाकी चीजों से, हाँ सब कुछ लिंक्ड है एक दूसरे से। तो आपका एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, अदरवाइज आप छोटे छोटे निटिग्रिटी पे ज्यादा ध्यान देते हो। जैसे अगर कोई डॉक्टर बनेगा मोस्ट लाइकली अगर हेल्थ सेक्रेटरी, तो उसका फोकस जो है बीमारी पे ज़्यादा होगा, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, जबकि अगर कोई IAS बनेगा तो उसका पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट पे ज़्यादा होगा, ब्रॉडर विजन होगा। हाँ, जो अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है हेल्थ पे, तो उस सब पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, यही सब बोल बोल के IAS लोगों ने जो है सारी चीज़ें कैप्चर कर रखी है। तो सोशल ऑडिट कराया जाना चाहिए। बिहार, हाँ हाँ हाँ, तो ये बिहार, ये
ये भी आप एग्जांपल दे सकते हो। ये बिहार ने अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया है कि अभी रूरल के लिए शायद उन्होंने भी शुरू नहीं किया, रूरल ने भी कर दिया क्या? ठीक है, अर्बन के लिए भी उन्होंने किया, अभी 1 ही या 2 ही बैच रिक्रूटमेंट हुई है उसकी। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो गुड इनिशिएटिव दैट यू कैन मेंशन। तो ये इस टाइप की चीज़ न्यूज़ में अगर आपको मिलते रहे ना कि किसी स्टेट में कुछ अच्छी चीज़ हो रही है तो उसका कंपाइलेशन बना लो। ठीक है, वही सारे एग्जाम्पल अपन लिख देंगे। एक आइडिया ये भी है कि जो डिविजिबल पूल है फंड वाली चीज़ को और इन्हांस करने के लिए, उसमें से 4 से 10% सीधा लोकल बॉडीज को दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब अभी डिविजिबल पूल से हम लोकल को एक ग्रांट देते हैं, परसेंटेज टर्म्स में नहीं बात होती है, ये इतना ग्रांट जो है लोकल बॉडीज को जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन शुड रादर रिकमेंड, जैसे स्टेट को 40% की बात होती है वैसे लोकल बॉडीज को 4 से 10% दे दिया जाए। तो मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन देनी होगी ना। ठीक है, तुम जब कह रहे हो सही कह रहे हो कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी कर रही है, उसमें चैलेंज ये है कि स्टेट के पास जब पैसा नहीं है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या ही रिकमेंड करेगी, पैसा तो सेंटर के पास है। तो फिर फाइनेंस कमीशन ऑलरेडी कर रही है, ग्रांट देने का काम कर रही है, तो ग्रांट को हम बोल रहे हैं कि थोड़ा एज ए रादर ग्रांट से वो फील आती है ना कि उनको ग्रांट मिल रहा है, रादर एज एन एम्पावरमेंट होना चाहिए कि इतना % उनको जाएगा एज ए मैटर ऑफ राइट। ठीक है, फिर इसमें आपको कंक्लूजन दे देना है, कुछ स्पेसिफिक लिखना है, कुछ आगे लिखना है। ठीक है, समथिंग मोर हैज टू हैपन। और अगर किसी ने वे फॉरवर्ड बॉडी में नहीं लिखा है तो वे फॉरवर्ड के पॉइंट कंक्लूजन में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था। हाँ ठीक है, क्योंकि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है आप वे फॉरवर्ड ना लिख पाओ। ठीक है, क्वेश्चन ने तो पूछा नहीं है वे फॉरवर्ड, तो आप कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड ही लिखो रादर देन राइटिंग दिस थिंग कि राम राज आएगा और ब्ला ब्ला। ठीक है, ये इसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, केक वॉक। ठीक है, लेकिन डिस्कस क्या किया है इसमें ये बताओ। जैसे कि ठीक है, लक्ष्मीकांत वाला स्टेप दे दिया। ठीक है, आर्टिकल तो मेंशन कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो हमें एक तो रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बताना है। तो वाइस प्रेसिडेंट के जो दूसरे बहुत सारे काम है वो नहीं लिखने हैं, स्ट्रिक्टली नहीं लिखने हैं। ठीक है, फिर रोल पूछा गया है, तो दूसरी और बहुत सारे जो चीजें हैं पे अलाउंसेस सैलरी वगैरह ये सब भी नहीं लिखना है। मोस्टली हमें फंक्शन पे फोकस करना है कि करना क्या है इनको। हाँ, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सिर्फ एक काम की उनकी हमें महत्ता दिखाने की क्या करना है। और अगर डिस्कशन करना है तो लाइक मेरे हिसाब से जैसे अगर स्पीकर आ जाता क्वेश्चन तो आप क्या डिस्कस करते हैं कि स्पीकर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, जो भी ड्यूटी दी गई है वो अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही अगर इनको ये स्पीकर के जगह पे चेयरमैन लिखा हुआ है तो इनके जो फंक्शनलिटी हो रही है, राज्यसभा अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी थोड़ी सी अपन को डिस्कशन करनी है। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू। अगर आपने सिर्फ रोल लिख दिया लाइन से तो मतलब वो 30% वाला नंबर मिलेगा, 10 में 3। गॉट इट? शायद किसी ने 63 बोला था, इट्स 64। हाँ 63 है? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट सैलरी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ये 64 में है। ठीक है, और फिर वो 89 में जहां पे वो राज्यसभा की बात करता है वहां पे दोबारा से वो सेम बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो का मतलब तो सबको पता ही होगा, किसी को नहीं पता है तो बोलो, वी कैन डिस्कस। ठीक है,
Thus he has dual role of executive as well as legislature, वो दोनों के पार्ट हैं, ठीक है। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग इवन प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ बोथ एक्सिक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। वैसे ये किसी को पता है कि वाइस प्रेसिडेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई है? व्हाई इज वाइस प्रेसिडेंट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, बट इससे वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव? वाइस प्रेसिडेंट इज ओनली इलेक्टेड बाय द यूनियन। उसमें नहीं, यही तो क्वेश्चन है कि ये क्यों है वो? हाँ, बाकी टाइम क्या करेगा? तो हमने जो है सिंपली अमेरिका वाला मॉडल अडॉप्ट कर लिया। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट इज चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, लेकिन वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अलग तरीके से होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन अलग तरीके से होता है, ठीक है। बट हमने वो मॉडल वहाँ से सिंपली अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। रोल तो आप सब लोगों ने लिख ही दिया होगा, इसको डिस्कस करने की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा ये डिसाइड करेंगे, ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन करेंगे, फाइनल इंटरप्रिटेशन इन राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर जो चेयरमैन है वो होगा, ठीक है। और रूल्स ऑफ द प्रोसीजर के भी वही होंगे। कास्टिंग वोट का इनको राइट है, एडजर्न करने का मीटिंग को इनको राइट है। चेयरमैन की जितनी भी कमिटीज होते हैं जो राज्यसभा की हैं उनके चेयरमैन वो करते हैं। कुछ कमेटी को खुद हेड भी करते हैं, जैसे विजिलेंस एडवाइजरी कमेटी हो गया, ठीक है। और डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डेफिनेटली आपको लिखने चाहिए। बाकी तो बोल बच्चन वाले पॉइंट लिख ही दिए होंगे, ठीक है। एंड जो पावर एंड प्रिविलेजेस हैं सारे मेंबर्स के और हाउस एज ए होल, उसके गार्जियन लोकसभा के केस में स्पीकर और इसके केस में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सेम, अब वही काम ही है, तो वहाँ पे वो स्पीकर है, यहाँ पे ये है, कुछ भी खास चेंज नहीं है। स्पीकर को वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो जाएगा कि स्पीकर के कुछ एक्स्ट्रा काम भी होते हैं। स्पीकर जो है, बताओ क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या अलग काम? ज्वाइंट सीटिंग होता है तो स्पीकर उसको प्रिसाइड करते हैं, और मनी बिल, ठीक है। तो मेजर यही है दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अदरवाइज कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फोरम्स में हाँ, और वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, स्पीकर जो होते हैं सो, ठीक है। और स्पीकर कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ये बन सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। वो इस क्वेश्चन का डोमेन नहीं है, ठीक है। तो अपन ये आ जाते हैं अब एनालिसिस करनी है। एनालिसिस किस किस ने किया था? जिन लोगों ने आंसर लिखा है उनमें, या सिर्फ रोल लिख करके खत्म कर दिया? किसी ने एनालिसिस चैलेंज ऐड किया था? चलो ठीक है, कुछ तो ऐड किया। चैलेंज में क्या लिखा? चैलेंज क्या है? हंसो मत यार। चलो ठीक है, हाँ। और ठीक है। और ये सर कुछ जैसे कि स्कॉलर उनका आर्गुमेंट होता है कि सूडो हाइनेस है, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। या ऐसा कुछ खास पावर और होती नहीं है, और पावर से ज़्यादा अभी क्या है ना कि हमारे जो एमपीज हैं वो इतने अच्छे हो गए हैं कि इज्जत भी नहीं देते, ठीक है। बट इसके अलावा जो नॉर्मल स्पीकर में जो हम पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, वो जो डेटा आपने याद किया होगा पार्लियामेंट के केस में, पार्लियामेंट के लिए जो डेटा याद किया है वो आप जनरल राज्यसभा के केस में भी लिख सकते हैं। वो तो पार्लियामेंट का डेटा दोनों जगह लग जाएगा, ठीक है। और सिर्फ लोकसभा का डेटा कोशिश करनी है कि नहीं मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन राज्यसभा पे है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है अभी, ठीक है।
तो ये डेटा क्या है कि हर साल आपको याद करना पड़ता है, हर साल एक नया लो अचीव हो जाता है, हर साल याद करना पड़ता है। आप 2021 के डेटा 2022-23 के एग्जाम में नहीं लिख सकते, ठीक है। सिर्फ 27% बिल्स, ये भी जो लोकसभा है ना, इसका मतलब सिर्फ लोकसभा का नहीं है, इसका मतलब है उस ड्यूरेशन में पार्लियामेंट ने कितने पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा, ठीक है। सिर्फ 27% बिल भेजे गए, जबकि ये चीज 60% थी। ये डिफरेंस भी दिखाना है अपन को, तब पता चलेगा कि कम हो रहा है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी में खुद जो है वेंकैया नायडू जो पिछले वाइस प्रेसिडेंट थे, उनका स्टेटमेंट है कि बहुत कम अटेंडेंस हो रही है, ठीक है। हाँ, तो ये आप रिकमेंडेशन में डाल सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल आना चाहिए कि अपोजिशन के जो एमपीज हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप पार्टीशन बिहेवियर कर रहे हो, और जो भी सस्पेंशन जो पिछले सालों में हुए हैं, 2021 में भी सस्पेंशन हुए, 2020 में भी हुए, 22 में भी हुए, सारे सस्पेंशन अपोजिशन एमपीज के हुए हैं। अपन वो नहीं डालेंगे, अपन ये बोलेंगे कि आरोप लग रहा है कि आप पार्टीशन बिहेवियर में हो। मिसयूज है कि यूज है, उस पर अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी गलती जो पिछले टाइम में हुई है वो है कि इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव मैटर्स पे वॉइस वोटिंग हुआ। जैसे कि एग्जांपल बताओ, फार्म बिल्स, ठीक है। फार्म बिल जैसे इंपॉर्टेंट मैटर पे आप वॉइस वोटिंग कैसे करा सकते हैं? खास करके तब जब एमपीज डिमांड कर रहे थे कि सर डिवीजन ऑफ वोट्स कराया जाए, ठीक है। वॉइस वोटिंग ये हुआ कि अगर अब मैं तुम लोगों से पूछूं कि क्या अब क्लास खत्म कर दी जाए, तो जितने लोग इसके फेवर में है क्लास कंटिन्यू करने के वो अय बोले, ठीक है, और जितने लोग इसके अगेंस्ट है वो नए बोले, ठीक है। तो कितने लोग फेवर में है, तो सब लोगों ने अय कुछ किया, फिर कितने लोग अगेंस्ट में, सब लोगों ने नए 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 कुछ किया। अब मैंने काउंट कर लिया, ठीक है, कि यस मेजोरिटी जो है फेवर में है और पास हो गया, रादर देन एक्चुअली काउंटिंग कि कितने लोग फेवर में, ठीक है। सो यूजुअली वॉइस वोटिंग तब कराई जानी चाहिए व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट मेजोरिटी, कि मतलब कोई भी इस चीज का विरोध ही नहीं कर रहा है, ठीक है। उस टाइप के मैटर्स में जैसे पहले डिबेट होती है, तो डिबेट से ही आइडिया लग जाता है कि क्या ये चीज कंटेंशन वाली चीज है या नहीं है। अगर डिबेट में है कि सारे लोग फेवर में बोल रहे हैं, तो आप उसको वॉइस वोटिंग करा के टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। अदरवाइज देयर शुड बी डिवीजन ऑफ वोटिंग। एंड आई डोंट नो इवन इन 21st सेंचुरी हमारे यहाँ सिंपल एक पुश बटन क्यों नहीं है सारे एमपी के पास। सिंपली भाई दबाओ ए नए जो भी करना है और आ जाएगी काउंटिंग, तुरंत विद इन ए सेकंड आ जाएगी रिजल्ट। हाँ क्या नए वाले नहीं नहीं है इस बिल्डिंग में भी, ये सुविधा के हिसाब से लोग यूज नहीं करते, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ना कि वहाँ पे एक स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें आता है, जैसे जीएसटी पास हुआ था तो उस स्क्रीन पे आया था कि इतने लोगों ने इसका फेवर किया, ठीक है। तो ये सुविधा के हिसाब से यूज करते हैं और नहीं करते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट को अपने काम कराने होते हैं तो भूल जाते हैं कि है। नहीं नहीं है, अरे वॉइस वोटिंग कौन डिसाइड करेगा, कौन सी चीज जाएगी पार्लियामेंट्री कमेटी के पास क्या नहीं जाएगी, सब सारी चीजें चेयरमैन डिसाइड करता है, ठीक है। किसको सस्पेंड करना है नहीं करना है कौन डिसाइड करता है, चेयरमैन डिसाइड करता है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, इसका फेलियर है ना कि वो अपना रोल नहीं अच्छे से निभा रहा है। हमने पिछले में रोल में लिखा था ना कि हाउस में डिमीनर मेंटेन कराना, मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम इन द हाउस, ये अगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अगर ऑर्डर नहीं मेंटेन हो रहा है उसका फेलियर है, ठीक है। तो वो मुखिया है तो सारी जिम्मेदारी उसी के पास आएगी। ये मतलब आप ये नहीं बोल सकते, इस लाइक ना कि अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं बोल सकते, ठीक है, कि एग्रीकल्चर मेरे पास नहीं है ना, ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो सबकी जिम्मेदारी। वैसे ही इज द हेड ऑफ द हाउस, तो एवरीथिंग गोइंग रॉन्ग इन द हाउस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरमैन, ठीक है। कंक्लूजन, सिंस हमने कुछ प्रॉब्लम्स की बात की है तो हमें कुछ सॉल्यूशंस देने चाहिए कंक्लूजन में, ठीक है। एक आध दो सॉल्यूशन बताओ फिर। हाँ ये बोल सकते हैं कि अल्टीमेटली
द मेन ड्यूटी जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की है, तो उसके लिए कुछ इस टाइप की चीज़ें की जा सकती है। ठीक है, मैंने ये चीज़ चूज करी है कि जो इशू है वो ये है कि देयर इज मार्जिनलाइजेशन ऑफ एमपी, अपोजिशन एमपीज, उसी की वजह से हंगामे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुछ मेथोडोलॉजी इस टाइप की ले सकें कि अपोजिशन डेज होंगे जिसमें अपोजिशन विल सेट द एजेंडा, इट कैन प्रोबेबली इंप्रूव द फंक्शनिंग एंड इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द चेयरमैन ऑल्सो। आप कोई और दूसरा सजेशन भी दे सकते हो, यहाँ पे आप एक दो सजेशन ही दे पाओगे, कॉम्प्रिहेंसिवली तो दे नहीं पाओगे, तो कोई भी सजेशन अपने हिसाब से हमें चूज कर लेना है। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल, ये ट्रेंड दिख रहा है, अभी भी रोल डिस्कस कराया था उन्होंने, फिर से वो रोल डिस्कस करा रहे हैं। तो ये है, इस टाइप से आपको तैयारी करनी है कि डिफरेंट रोल का क्या मकसद है, और बेसिकली डिस्कस करना है तो हर रोल में बंदा क्या अच्छा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि कितना सक्सेसफुल और कितना फेल हो रहा है। तो पॉलिटी में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, द रोल ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज इन द वेक ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने में इसका रोल सिर्फ डिस्कस करना है। तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि रोल क्या है, फिर हमें बताना पड़ेगा कि रोल में कितना सक्सेस है या फेल्यूर है। बेसिकली रोल क्या है वो अपने आप में सक्सेस बता दे रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली उसकी लिमिटेशंस बताने पड़ेंगे दूसरे वाले पार्ट में, और फिर उसी पैटर्न पे अपन वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन लिख देंगे। अगर स्पेस बचेगा तो आप डिटेल में कंक्लूजन लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज की जगह पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, कुछ भी लिख देंगे, मोर और लेस 70% आपका आंसर यही रहेगा। ठीक है, एक दो पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ओबीसी लिस्ट की बात करेंगे, वहां पे जो है ओबीसी लिस्ट की बात नहीं होगी, ये 2-3 पॉइंट बस चेंज हो जाएंगे। अदरवाइज पहला पार्ट तो जो है, अगर आप आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है ये, कौन सा अमेंडमेंट है, चलो अच्छा है, प्रीलिम्स की तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन में अपन वही लिख देंगे, सिंपल सी बात है। और अगर आप 338A और 338B तीनों में वर्ड बाय वर्ड आर्टिकल सेम है। ठीक है, तीनों जो कमीशंस बनाए गए हैं वो सेम चीज है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट रोल जो है, एक्चुअली इनका जो पर्पस है अलग अलग कम्युनिटी के लिए है, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग नीड्स हैं, उनको ध्यान में रख करके कमीशन बनाए ही नहीं गए। यह कमीशन बस सजाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। ठीक है, इसलिए ठीक है, रोल एक्सपेक्टेशन सिंपली उसी आर्टिकल से 338B से मैंने उठा लिए हैं सारे पॉइंट। ठीक है, अब दिक्कत ये है ना कि इनको याद आप कैसे करोगे, किसी के पास कोई टेक्निक है याद करने की? अदरवाइज हाँ, अदरवाइज कुछ एक कॉमन कहानी की तरह इसको दिमाग में रख लो। ठीक है, ये जो मैंने वर्ड्स बोल्ड किए हैं, ठीक है, कि वो एक तो जितने लॉज हैं सेफगार्ड के लिए बने हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, ठीक है, फिर उस पर रिपोर्ट बना के देना, फिर उसके बाद सजेशन देना कि और क्या कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोई अगर कंप्लेन करेगा तो उसको कंप्लेन की जांच करना, कुछ वेलफेयर अल्टीमेटली डेवलपमेंट भी तो करना पड़ेगा, सिर्फ राइट प्रोटेक्ट करना तो है नहीं। ठीक है, तो वेलफेयर के लिए जो चीज़ें हैं, उसके लिए जो चीज़ चल रही है, कहाँ तक वेलफेयर गया है पहले वो इवेल्युएट करेगा, फिर और क्या कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट है कि कंसल्ट किया जाएगा जब भी कोई मेजर पॉलिसी मैटर्स, यही वर्ड, ये जो वर्ड है ना, ये बस चेंज हो जाता है सारे आर्टिकल में। ठीक है, उसमें शेड्यूल कास्ट आ जाता है, उसमें शेड्यूल ट्राइब आ जाते हैं, इसमें SC BC आ जाता है, और एनी अदर फंक्शन दैट द प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई, ये सब में है। ठीक है, ले लो, किसी को फोटो लेना है, अदरवाइज आप जाके कॉन्स्टिट्यूशन से भी उठा के देख सकते हो। ठीक है, लेकिन याद कर लेना है, क्योंकि हर साल, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, पिछले साल NHRC पे आया था, उसके पिछले साल नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन पे आया था, हर साल किसी न किसी एक कमीशन पे आता है। तो दो तीन कमीशन बचे हुए हैं, एक नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब भी अभी तक आया नहीं है, क्या गया है?
नहीं आया। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बचा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जाके इनके कुछ कंसिक्वेंस है, रोल तो यही रहेगा लेकिन इनके कहाँ कहाँ फेल्यूर हैं और कहाँ कहाँ सक्सेस हैं, इसके एग्जाम्पल आपको कलेक्ट करके रख लेने हैं, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर इनमें से कुछ आने के प्रबल दावेदार हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशन ये कि हमें लिमिटेशन रोल पे देना है कि क्या रोल था। तो कुछ रोल ऐसे हैं जो इनके दिए ही नहीं गए हैं। जैसे बड़ा कंटेंशियस इशू था कि बैकवर्डनेस है क्या, किसको मानेंगे हम बैकवर्डनेस, ये डिफाइन करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड ही नहीं किया गया है। वो गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया है वो काम कि वो हम करेंगे, ठीक है। फिर जो लिस्ट है उस लिस्ट का पीरियोडिक रिवीजन होना चाहिए ना, यही तो इसकी ड्यूटी थी। वैसे किसी को पता है ये सबसे पहले कमीशन बना कब था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट? फिर से बोलो, एग्जैक्ट नंबर मुझे सुनाई नहीं, 19 तक बड़े जोर से बोला सबने। 1951। हाँ, कालेकर कमेटी नहीं, ठीक है। एक्चुअली में ये बना था 93 में, ठीक है। और ये बना था इंदिरा साहनी जजमेंट के बेसिस पे। इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप एक नेशनल कमीशन बनाइए, ठीक है। तो एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिस कमीशन वाज मेड एज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि इस कमीशन का एक काम होगा कि ये पीरियोडिकली देखेगी कि कौन से कास्ट बैकवर्ड है नहीं है, जो कि ये काम इसको दिया नहीं गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि ये एक एक्सपर्ट बॉडी होगी, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली में एक्सपर्ट बॉडी नहीं होती है, सारे रिटायरमेंट लोगों की प्लेसमेंट हो रखी होती है वहां पे, एज इज ट्रू विद ऑल दी कमीशंस। ठीक है। कास्ट सेंसस वगैरह के बारे में भी इसका कोई रोल नहीं है कि कंडक्ट कराएगा नहीं कराएगा, डेटा होगा ही नहीं तो फिर ये जजमेंट किस बेसिस पे देगा कि कितना रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कोई अगर कंप्लेन करती है तो कंप्लेन पे पनिशमेंट देने का कोई पावर इसके पास है नहीं, इट इज ओनली अ रिकमेंडेटरी बॉडी। ये सेम, ये सारे पॉइंट तो जो है ओनली एडवाइजरी बॉडी, ये सारे पॉइंट तो सारे कमीशन में लग जाएंगे, ठीक है। ओबीसीज का रिप्रेजेंटेशन अभी भी गवर्नमेंट जॉब में ओवरऑल 21% ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो डेटा कि कमीशन जो है सेम पुराना स्ट्रक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पिछले वाले स्ट्रक्चर से कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ एससी बीसी के कंडीशन में, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट करने की रिक्वायरमेंट थी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, तीन को ही मिला। हाँ, वुमेन, माइनॉरिटी, देयर आर टू मेजर कमीशंस। हाँ, एनएचआरसी को भी है, ह्यूमन राइट कमीशन, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसमें एक चीज ये भी है कि जिस समय कमीशन बनी हुई थी उस कमीशन का जब टेन्योर खत्म हुआ है तो नया कमीशन पिछले 6 महीने से अपॉइंट नहीं हुआ है, ठीक है। और 2021-22 में साल भर में 2 बार इन्होंने मीटिंग करी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना रखा है, इससे ज़्यादा बार तो हमारे पार्लियामेंटेरियन मीट कर लेते हैं, ठीक है। तो वो तो बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड है ना, उससे भी अगर नीचे कोई जा रहा है उसका मतलब बहुत नीचे जा रहा है, ठीक है। ये तो कम से कम लास्ट वाले पॉइंट तो लिखो। थक गए क्या सब लोग? ओके, तो करना क्या चाहिए अब? इनमें से जितनी भी चीजें जो हमने बोली कि नहीं की हुई है उनमें से कोई 2-3 चीज उठा के बोल दो कि ये करनी चाहिए। नहीं, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, मतलब ये है कि इनके एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होने चाहिए गवर्नमेंट पे। ओनली पार्लियामेंट शुड बी अलाउड टू ओवररूल दियर रिकमेंडेशन, नॉट द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है ना, जो कमीशन डिफरेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें ऐसा कोई खास डिफरेंस है नहीं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उनकी रिपोर्ट सीधे प्रेसिडेंट को जाती है और बाकियों की रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाती है। प्रैक्टिकली इतना ही डिफरेंस आता है,
ठीक है, एक सलाह थी कि एक्सपर्ट बॉडी बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट एडवाइस शुड बी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ओनली पार्लियामेंट शुड हैव पावर टू रिजेक्ट और अमेंड इट्स रिकमेंडेशन। ठीक है, इस टाइप से आप कुछ भी बोलो, या फिर अब और जो डिफरेंट है कि पीरियोडिक रिवीजन शुड बी इट्स मैंडेट। हाँ ठीक है, तो जो भी आपको समझ में आए वो 2-3 रिकमेंडेशन यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। अभी हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस का इवेल्युएशन करके देखेंगे कि इन्हीं क्वेश्चंस में कैसे आंसर किया जा सकता था, कि जिन लोगों ने आंसर किए हैं उन्होंने क्या कम किया है, क्या ज़्यादा किया है। ठीक है, कोई है जो वॉलंटियर करना चाहेगा कि उसकी कॉपी चेक की जाए? तुम करना चाहोगे? तुमने कॉपी सबमिट किया? एक मिनट, लेट मी फाइंड आउट। वैसे काफ़ी सारे लोगों को तो खुद से पता चल ही गया होगा कि क्या कमियां रह गई हैं, क्या नहीं रह गई हैं। कुछ बोलो। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग टेस्ट वगैरह जिन्होंने लिखा है? कुछ मज़ा आया? कुछ प्रोडक्टिव है ये? है? बाकी लोग सुन रहे हो? हाँ, तो बाकी सारे लिखो। ठीक है, अब और देखो, चाहे इट्स ऑनेस्टी है, इसमें एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग कितना भी मेहनत कर ले, वी कोचिंग इंस्टीट्यूट पीपल, एक्चुअल यूपीएससी एक्चुअल होता है। ठीक है, वो जब कुछ लेवल अपना ऊपर या नीचे करेगा तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम उसको कैसे कैच कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देयर इज डेफिनेटली अनसर्टेनिटी एवरी ईयर, कुछ नए ट्रेंड हर साल आ जाते हैं, तो जब आप एक्चुअल लिख तो नहीं हो ना, तब तक वो मुश्किल है गेस करना। नहीं, 105 अभी अभी रिसेंटली आया था। किसी कोई बुला दोगे क्या? वाईफाई का पासवर्ड नहीं मैच कर रहा है। 105 या ऑल्सो क्या है पासवर्ड? 5G वाला है, कौन सा वाला है? के कैपिटल स्मॉल KAS HBI कहाँ पे है कॉपी? ये राजेंद्र चौधरी जिनकी चर्चा मैं कर रहा था। ठीक है, किसी का रोल नंबर याद है अपना? कहाँ गया वो वॉलंटियर? बाकी कोई और? 4 तो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा 4 है। हाँ, पहले 23 आ गया, 23 मिल गया। 40023 सबको मौका मिलेगा अब। ठीक है, तुम ऐन वक्त पे जो है ना एब्सेंट हो गए थे। वी विल सी। अच्छा, दिख नहीं रहा है यहाँ पे? वैसे दिस इज नॉट द फाइनल इवेल्युएशन, एक्चुअली में इवेल्युएशन सबका होगा। ये मैं बस सबके साथ शेयर कर रहा था ताकि एक दूसरे से पीयर लर्निंग हो जाए।
ठीक है, देख लेंगे ना, वो लोग बोल रहे हैं। ठीक है, देखो अब इसमें जो है दो तीन चीजें हैं। एक तो जो हम इवेल्युएशन करेंगे अपना, तो हम जो अभी इवेल्युएशन कर रहे हैं उसका मकसद फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, उसका मकसद ये है कि हम इम्प्रूव कैसे करें, बट डू नॉट टेक इट अदरवाइज। ठीक है, जैसे आपने जो भी, किसका कॉपी है ये? ठीक है, तो यू कैन पुट योर वर्जन ऑल्सो कि तुमने क्या सोच करके क्या लिखा है। ठीक है, रिवर गंगा वॉज द फर्स्ट रिवर इन द वर्ल्ड, गिव हिम, ये तो तुमने सही लिखा, चलो ठीक है, कुछ कंटेक्स्ट देना था कि हमारा कैसे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन हुआ है, उसने ये दिया, हालांकि मतलब उतना अच्छा नहीं है बट इट्स बेटर। अब ये जो तुमने लाइन लिखी है कि देयर हैव बीन सेवरल सच अचीवमेंट्स वेयर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हैव बीन डन, तो एक्चुअल में तुमने वो वाला पार्ट मिस कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हुआ कैसे। ठीक है, जो मेजर अचीवमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हुआ है वो चीज मिस हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो पता ही नहीं होगा। ठीक है, तो हमें एग्जाम्पल लिखना है। नाउ ये दिस इज सिंपली वर राइटिंग ए हेडिंग। ठीक है, हेडिंग आइडियली 1 2 3 4, हाँ 4 लाइन में नहीं होनी चाहिए, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे ना आपको, मार्क्स तो इसके नीचे जो पॉइंट लिखे हैं उसके मिलेंगे। तो ये आइडियली ये सिंपल सा होना चाहिए था। ठीक है, कि अचीवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, सिंपल, क्योंकि बात ऊपर में आपने कर दी है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की बात हो रही है, तो वही सेम चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो हेडिंग हमें एक ही लाइन में होना चाहिए, उससे क्या होगा, 2 लाइन का स्पेस और टाइम बचेगा अपना, जिसमें हम एक्स्ट्रा पॉइंट लिख पाएंगे। ठीक है, नाउ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल टू लुक स्पेसिफिकली इनटू, यू हैव मिस्ड अनदर थिंग एज वेल कि सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं की तुमने। यहाँ पे तो क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है ना कि यहाँ पे बाई सुप्रीम कोर्ट लिखना है, तो वहाँ पे बेहतर ये भी जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बातें करते तो तब भी बेहतर होता। ठीक है, ये सही है। और जजमेंट नहीं लिखा तुमने कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वैसे इसको गो अहेड दे दिया। व्हाट इज दिस, यदो धर्म तदो जया, अच्छा सुप्रीम कोर्ट का मोटो है। ठीक है, उतना अच्छा रिलेवेंट कंक्लूजन नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज फॉलोड इट्स धर्म, मतलब तुम वो वाले लाइन में जा रहे हो, कंक्लूजन इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, यू हैव रिटन ए कंक्लूजन विच इज सिंपली कि उसको कमेंट कर रहे हैं हम, तो ये कमेंट वाली टिप चाहिए होती तो तब भी थोड़ा ठीक होता। ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, तो हमें कुछ मूविंग फॉरवर्ड टाइप का कंक्लूजन करना है। फिर जो सेकंड पार्ट था दैट इज कंप्लीटली मिसिंग, तो डिस्कशन है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इसमें सिंपली ये है कि यू हैव ट्राइड टू इलैबोरेट एंड देन यू हैव मिस्ड द पॉइंट एज वेल। ठीक है, तो इसमें नंबर बहुत ही कम मिल जाएंगे आपको। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट कि क्या क्या गलती हो रही है, कैसे इंप्रूव करना है। कोई ऐसा क्वेश्चन अपन देखते हैं जिस क्वेश्चन को तुमने अच्छे से आंसर किया हो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन ही डिफिकल्ट था, या फिर दूसरे स्टूडेंट को मौका देते हैं। तुम्हारा क्या रोल नंबर था? 102। व्हाट्स योर नेम? अच्छा, नाम तो लिखते नहीं है ना यहाँ पे।
अविनाश। तो इसने इंट्रोडक्शन बहुत सही लिखा है, एकदम क्रिस्प, जो सीधे मुद्दे की बात करी है, कुछ भी दाएं बाएं नहीं किया है। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, 2 आर्टिकल जो रिलेवेंट आर्टिकल हैं वो सीधा सीधे लिखा है। थोड़ा हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की जरूरत है विनाश। ठीक है, जो ये तुमने ऐसा घुसा घुसा के लिखा है ना लास्ट में, ठीक है, तो वो यहाँ तो ये ऑब्वियस है कि 19(1)D में यही होगा, तो इसमें ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया मैंने कि क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज जहाँ पे ऑब्वियस नहीं होगा वहाँ पे फंस जाओगे, वहाँ पे तुम्हारे पॉइंट को रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाउएवर रीजनेबल, ये हेडिंग बहुत अप्रोप्रिएट, एकदम जैसे मैं बोल रहा था कि एक लाइन में, उसने एक लाइन में दिया है इसने। ठीक है, ये जो हेडिंग है और इसके नीचे जो तुमने पॉइंट लिखे हैं, वो इस हेडिंग के नीचे जो पॉइंट लिखे हैं उससे कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे भी तुमने एग्जांपल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ रीजन से प्रोस्टिट्यूट्स को नहीं अलाउ किया, यहाँ पे भी वैसे ही तुम एग्जांपल दे रहे हो। यहाँ पे भी तो तुमने एग्जांपल नहीं दिया है ना कि अरुणाचल प्रदेश में इनर लाइन परमिट है, ऐसा कुछ है। तो बोथ द पार्ट यू आर राइटिंग एसेंशियली द सेम थिंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों है? इसका मतलब ये होगा कि जब क्वेश्चन तुमने शुरू किया था तो तुमने डिफरेंट हेडिंग क्या होंगे वो प्लान नहीं किया था। ठीक है, कि हम डिफरेंट चीजें क्या लिखने वाले हैं उसके, तो आइडियली इसके लिए करना क्या चाहिए कि हमें यहाँ पे मार्क करना चाहिए कि थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स, ये एक पार्ट हुआ मेरा, नॉट एब्सोल्यूट दूसरा पार्ट हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हमको करना है कमेंट। तो ठीक है, कमेंट में मैं किसका एनालिसिस करूंगा, पहले एनालिसिस करूंगा फिर कमेंट करूंगा। ठीक है, तो अगर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं करूंगा, ठीक है, कि ये नॉट एब्सोल्यूट का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, रीजनेबलनेस का क्या मतलब है, तो ये हो गया मेरा तीसरा पार्ट, और फिर मेरा कंक्लूजन। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो अलग से आपको मिलता है ना, उस क्वेश्चन पेपर में थोड़ी सी आधे मिनट में एक कलाकारी करनी है। ठीक है, फिर ये गलती आपसे नहीं होगी कि आपने 2 अलग अलग हेडिंग दी लेकिन बात आप एक ही तरीके की कर रहे हो। ठीक है, और ये ऐसे नहीं चलेगा। बहुत दिन बाद पेपर लिख रहे थे क्या? अच्छा, उल्टे ऑर्डर में लिख रहे थे। एक और भी चीज़ है, ये भी मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को लिख रहे होते हैं। एग्जामिनर तो आपका हमेशा ही पहले से देखना शुरू करेगा, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये बना कि यार ये बंदा कितना गंदा गंदा लिख रहा है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट रहेगा कहीं ना कहीं। आई एम ए ह्यूमन बीइंग और एनी एग्जामिनर इज ए ह्यूमन बीइंग। उसके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि कुछ तो ये बंदा है, तो वो आधे मार्क्स 0.25 मार्क्स जो है ना आप हर क्वेश्चन में लूज करते जाओगे। तो आइडियली शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से करो, फिर हो सकता है 6ठा 7वां आप स्किप करके 15 नंबर वाले पे चले जाओ। ठीक है, बट शुरू के पाथ से ही शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, आपका बेस्ट आना चाहिए उनमें। हाँ, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तब अपन उसमें मतलब फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ये तो समझ में नहीं आया। डन टू कंजर्व एथनिसिटी द ट्राइब्स एंड चेक एनी लॉ एंड ऑर्डर इशू इन दीज। अब ये है कि ये जो तुम्हारा कंक्लूजन था, तो ये कंक्लूजन तुमने सिर्फ एक वाले पार्ट पे लिख दिया है। ठीक है, कंक्लूजन तो ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन पे होना चाहिए ना। ठीक है, तो ओवरऑल रिस्ट्रिक्शन इज टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। और जो उसमें 2 पार्ट थे, 2 रिस्ट्रिक्शन थे, एक की ट्राइबल के लिए और एक जनरल पब्लिक के लिए। यू हैव रिटन कंक्लूजन ऑन ओनली 1 पार्ट। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सो गुड कंक्लूजन। यहाँ इन देयर भी तो लिखा है ना इसमें। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर अगर आप लिखो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए या पब्लिक ऑर्डर के लिए ये चीज किया जाता है तो वो ठीक है, वो चलेगा। इसने जो है कंजर्व एथनिसिटी एंड चेक लॉ एंड ऑर्डर देयर, तो इसने सिर्फ एक चीज को एस्पेक्ट में रख के लिखा है। तो कंक्लूजन हमेशा होल ऑफ द क्वेश्चन पे लिखना है, पार्ट पे नहीं लिखना है। ठीक है, स्टिल ये है कि ये क्वेश्चन से डिविएट नहीं हुआ, क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन से ही हैज स्टिक टू द क्वेश्चन। ठीक है, और आर्टिकल वगैरह इसने मेंशन किए हैं, दीज आर द गुड थिंग्स दैट ही हैज डन।
इन व्हाट पर्सपेक्टिव आर सेइंग? तो इसमें ना सिंपली एक चीज होता है, वर्ड लिमिट इज नॉट द क्राइटेरिया कि आपको ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। वर्ड लिमिट अगर आप ब्रीच भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा से आप ब्रीच कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा से ब्रीच करोगे तो टाइम आपका खत्म हो जाएगा। टाइम और स्पेस की भी तो लिमिट है वर्ड के साथ साथ, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 वाले में ना 170 लिख पाओगे, 180 लिख पाओगे, उससे ज़्यादा ब्रीच कर नहीं सकते, उसको माइंड नहीं किया जाएगा कभी भी। हाँ, दूसरी चीज़ है कि वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला अप्रोच सही है कि नहीं। उसमें सिंपल सा ये है कि जो चीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है उसको आप अगर वैसे लिखोगे तो चलेगा, और जो चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है उसको वैसे नहीं लिखा जाना चाहिए, ठीक है। जैसे इसने इफेक्टिवली वही किया है ना, आर्टिकल 19(1) लिखा है और सामने लिख दिया है टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी, ठीक है। अब यहाँ पे एक दूसरा स्टूडेंट ये भी लिख सकता था कि आर्टिकल 19(1)(d) मेंशंस दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी, ठीक है। बट दिस इज अ बेटर वे, सीधे मुद्दे की बात करो, व्हाई टू वेस्ट अ स्पेस, एवरी सिटीजन हैज, ऑब्वियसली सारे सिटीजन की बात हो रही है, ठीक है। तो दैट अप्रोच इज बेटर। लेकिन ये उस पॉइंट पे आप नहीं लिख सकते, अगर जैसे आप ये लिख रहे हो कि कैसे गवर्नेंस चेंज नहीं हुई है, उसमें अगर आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, वहां पे ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा कि कौन सा पॉइंट ऑब्वियस वाला है चलेगा, नहीं ऑब्वियस वाला नहीं चलेगा, ठीक है। वर्ड लिमिट की चिंता मत करो, तुम लिखो 200 वर्ड ना, इफ यू कैन। कोशिश ये है कि 20 क्वेश्चन होने चाहिए फिर तो। अच्छा, नहीं लिखना है, तुम 100 ही वर्ड में लिख रही हो? नहीं तो डेवलप करो, ठीक है। ये मतलब ये तो वही वाली बात है कि मतलब मैं मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ, तो नहीं कर पा रहा हूँ तो करना है, नहीं तो ज्यादा पॉइंट लिखो, ठीक है। तुम फिर सॉल्यूशन ये है कि ज्यादा पढ़ाई करो ताकि ज्यादा पॉइंट हो तुम्हारे पास, ज्यादा पॉइंट लिखो ताकि जो है तुम और ज्यादा पॉइंट लिखो, और अच्छी बात है ताकि भर सको। लेकिन हमारे पास हमें लिबर्टी दी गई है कि हम 150 वर्ड तक लिख सकते हैं, हमें डेफिनेटली 150 वर्ड कम से कम लिखने चाहिए। वो मैक्सिमम नहीं है, वो एक्चुअली मिनिमम है, उतने कम से कम वर्ड के तो आंसर होने ही चाहिए, ठीक है। और अभी टाइम है, धीरे धीरे डेली आंसर राइटिंग करते जाओ, इंप्रूव हो जाता है। शुरुआत सब ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एनी अदर वॉलंटियर? 10 इसकी हैंड राइटिंग अच्छी है, ठीक है। इसने भी टू द पॉइंट अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। और वो एक डायग्राम बना करके लिखा है, हालांकि ये थोड़ा बेहतर हो सकता था, ठीक है। मतलब अगर इसी को ना जो डिफरेंट एरोज हैं वो अगर अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के बने तो थोड़ा अच्छा दिखता है डायग्राम। किसी कॉपी है? हाँ, ठीक है। तो डायग्राम थोड़ा बेहतर हो सकता है, बट ये भी खराब नहीं है। अब ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये ना कोर डिमांड ऑफ द टॉपिक है। जैसे ये तो मैंने डिस्कशन के समय बोला था कि ये डिमांड ऑफ द टॉपिक नहीं है, तो इसको तो आपने डायग्राम बना दिया तो चलेगा, बट ये चीज़ तो क्वेश्चन की डिमांड ही यही है ना कि डिसेंट्रलाइजेशन ने कैसे गवर्नेंस लैंडस्केप की चेंज किया है। तो ये ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि आपने ऐसे लिखा है तो आपने किसी भी पॉइंट में कोई एग्जाम्पल या सब्सटेंशिएशन नहीं दिया, ठीक है। तो नन ऑफ द पॉइंट इज ए कंप्लीट पॉइंट, सारे पॉइंट जो है सिर्फ फेंके हुए पॉइंट हैं। अच्छा नहीं, बाद में लिखा भी है फिर इधर, ये अच्छा है, देखो जैसे इसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, गुड। ये हेल्थ एंड एजुकेशन क्या, इसके एलिब्रेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दे रहे हो कि भाई तुम्हारे पास अगर नॉलेज है एग्जामिनर के पास तो समझ ले नहीं नॉलेज है तो मत समझ,
ठीक है, तो वो ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये फिर क्या था और ये क्यों था। नहीं तो जो वही सारी बात तो फिर तुमने नीचे भी करी है। गवर्नेंस लिखना था, ठीक है, तो वही वाली बात है कि वो तुम्हारे लिए भी मैं यही बोलूंगा कि तुमने यहाँ पे शुरू में वो प्लानिंग करनी थी, ठीक है। हैज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया चेंज्ड, तो एक पार्ट हुआ चेंज, दूसरा पार्ट हुआ नॉट चेंज। तो ये एक दो वाली चीज करो, ये जो थोड़ा सा हम 30 सेकंड लगाएंगे ना, वो तुम्हारा ये जो तुमने गलत डायग्राम बना दिया इसमें 2 मिनट लगे होंगे कम से कम, ठीक है। तो तुम्हारा 30 सेकंड वहां लगा लेते, 2 मिनट यहाँ बच जाता, तो वो 30 सेकंड लगाना है हमें। नहीं, आइडियली क्वेश्चन पेपर में करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ये भी बोलता है कि अननेसेसरी मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हालांकि ये अननेसेसरी नहीं है, बट फिर भी सेफ साइड में क्वेश्चन पे करो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि क्वेश्चन पे अगर आप करोगे उसको आप घर ला सकते हो, ठीक है। तो आप बाद में आपको याद रहेगा कि मैंने क्या लिखा था, नहीं लिखा था, क्या गलती करी मैंने, क्या सही किया। तो बट तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है ना आपका। ये आप जो हेडिंग यहाँ लिखोगे लोकल लीडरशिप, नीचे लिखना पड़ेगा ना लोकल लीडरशिप, और उसको आप एक्सप्लेन करोगे, बिना लिखे तो 1 2 3 4 नहीं, दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर मान लो देखो आपने यहाँ लिखा, यहाँ पे आप 1 2 3 लिखोगे तो बेचारा बार बार नीचे ऊपर करता रहेगा, वो इतना मेहनत आपके लिए क्यों करेगा, वो चुपचाप काट के 0 देखे ना बढ़ जाएगा। आप उसके सामने बैठे हुए थोड़े ना, ठीक है, उसके ऊपर कोई नहीं है। अब ये मान के चलो कि वो बंदा एकदम कंप्लीट ऑटोनॉमी में है, यूपीएससी के ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो वो मेहनत कराने वाली चीजें नहीं करनी, उसका मेहनत कम कराने वाली चीजें करनी है हमें, ठीक है। तो आइडियली डायग्राम तब बनाए जाने चाहिए जिस चीज को हम रिपीट नहीं करने वाले हैं। जैसे ये एक्सप्लेनेशन हम नहीं करने वाले थे कभी, तो ये डायग्राम हमें बनाना चाहिए, ठीक है। जिसका हम एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो डायग्राम नहीं बनाने चाहिए, फिर वो एक्सप्लेनेशन ही कर दो। अब उसमें ये है कि तुमने स्पेस वेस्ट कर दिया, तो वे फॉरवर्ड वाली चीज जो है वो छूट गई है। वो स्पेस अगर बचता तो कर लेते, ठीक है। अदरवाइज बाद में यू हैव कवर्ड अप वेल, ठीक है, तुमने कवर कर लिया बाद में, ठीक है। सो यू आर सीइंग कि कैसे बाकी लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तो जो मिस्टेक दूसरे बंदे ने भी किया अगर आप भी वो कर रहे हो तो आपको वो चीज़ इंप्रूव करनी है, ठीक है। और अभी जैसे एक एक करके जो डिस्कशन का शेड्यूल मिला है, धीरे धीरे जब डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले ही 25-26 तारीख से ही पहले एस्से के आपके कॉपीज जो जिन जिन लोगों ने एस्से लिखा है वो ऐसे ही फेस टू फेस इवेल्युएशन में आपका जो है इवेल्युएट होगा, ठीक है। तो इसमें आप जैसे एस्से में तो और ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है कि एस्से में इज लाइक लिंकेज होना चाहिए। जिन्होंने पीयूष सर का क्लास अटेंड किया उन्होंने बताया होगा, फ्लो होना चाहिए। तो फ्लो जो है कैसे बनाना है, ये सिर्फ बोलने से फ्लो होना चाहिए, आ नहीं जाएगा, ठीक है। सो वी वुड ऑल्सो टेल यू कि यहाँ पे इसी चीज़ को तुम ऐसे लिख देते तो फ्लो हो जाता, ये नहीं हो जाता, ठीक है। तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ लर्निंग जब हम लोग एक्चुअल में फेस टू फेस इवेल्युएशन करेंगे तो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको इंटरप्रेट नहीं करना है कि कौन कौन सी चीजें लिखनी है, यूपीएससी ने ही सारी चीजें बता रखी है। उन्होंने पहले बताया कि डिस्कस द प्रोसीजर to decide the dispute arising out of the election of a member of parliament or state legislature under the RPA 1951। ये हो गया अपना पहला पार्ट। तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पेपर में मार्क करना चाहिए अलग से कि विच आर द पार्ट्स जो आप आंसर करने वाले हैं। फिर हो गया दूसरा पार्ट, व्हाट आर द ग्राउंड्स। फिर तीसरा पार्ट आएगा कि व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पार्टी अगेंस्ट द डिसीजन, ठीक है। कोई मुझे बताएगा इसके आंसर में क्या क्या चीजें हो सकती है।
किस चीज पे है ये क्वेश्चन, व्हाट इज इट ऑल अबाउट, जो टॉक कर रहा है ये। ऑनलाइन भी जो लोग जुड़े हुए हैं आप लोग भी जो है कमेंट करके बात कर सकते हो, रिप्लाई भी करो आंसर का, अच्छा रहेगा। बताओ। हाँ, वो उसी टॉपिक से है, जो टॉपिक है फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, और उस पूरे एक्ट में एक सेक्शन है इलेक्शन पिटीशन या इलेक्शन डिस्प्यूट, ठीक है, उस सेक्शन से एज इट इज इन्होंने क्वेश्चन उठाया है। तो इसको आंसर कर, अभी तक जो यूपीएससी का ट्रेंड रहा था वो पूछ रहे थे इलेक्शन से रिलेटेड कोई इशू, ठीक है, इस बार उन्होंने वो ट्रेंड चेंज किया, अब वो सीधा आरपीए एक्ट से इन्होंने पूछा है। तो अगर आरपीए एक्ट आपने पढ़ के अच्छे से तैयार किया है तभी आप इसका स्पेसिफिक और अच्छा आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज तो जनरल बातें कहानी लिख के हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि स्पेसिफिक वो पॉइंट क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए बताओ। फिर से बताना, दोबारा बोलना। ओके, सो यू आर सेइंग कि हमें आरपीए के बारे में बताना चाहिए, कुछ आरपीए 1951 के बारे में। दैट इज ऑल्सो सही तरीका है थोड़ा, पर थोड़ा और बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ आरपीए का नहीं है, ये इलेक्शन डिस्प्यूट या इलेक्शन पिटीशन का है। तो अगर हम इलेक्शन डिस्प्यूट या पिटीशन पे कुछ लिखें तो दैट इज इवन बेटर इंट्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन राइट। इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में आप स्पेसिफिक क्या लिख सकते हैं कि इलेक्शन डिस्प्यूट जो भी अराइज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पिटीशन के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है, और वो इलेक्शन पिटीशन कहाँ फाइल होता है, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से नीचे नहीं हो सकता और ना ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो जो भी कंसर्न्ड हाई कोर्ट है वहीं पे इलेक्शन पिटीशन फाइल होते हैं। क्या यस, ठीक है, आप डाल सकते हो, ठीक है, कि रिसेंटली जो है बट क्या वो इलेक्शन पिटीशन के थ्रू हुआ है, मैं थोड़ा सा अवेयर नहीं हूँ उसके बारे में। इलेक्शन पिटीशन एक्चुअली चुनाव होने के बाद अगर आप चुनाव जीत जाते हो तो अगर किसी ने आपके चुनाव को क्वेश्चन किया है दैट इज इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। बट आप नॉर्मली भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, इस बंदे को हमें नहीं अलाउ करना है बिकॉज ही, जैसे सेक्शन 8 हमने पढ़ा हुआ है, सेक्शन 8 में अगर आपके पास आपको किसी क्रिमिनल एक्ट में सजा हो जाती है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन है सिंपली, वो इलेक्शन पिटीशन नहीं है। इलेक्शन पिटीशन इज कि इलेक्शन हुआ, किसी को इलेक्शन कमीशन ने विजेता घोषित किया, अब किसी ने उसके इस जीत को चैलेंज किया है कोर्ट में, दैट इज इलेक्शन पिटीशन। अब उसी का ग्राउंड पूछा जा रहा है अगले पार्ट में, ये व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन व्हिच एन इलेक्शन ऑफ एनी रिटर्न कैंडिडेट में बी डिक्लेयर्ड वॉइड, ठीक है। तो उससे पहले वाले पार्ट में अपन उनके प्रोसीजर क्या है। अब प्रोसीजर एग्जैक्टली अपन उतना पढ़ते नहीं है, तो अब मैं ना कॉमन सेंस से ही वो आंसर करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आप इलेक्शन पिटीशन फाइल करोगे, कौन करेगा फाइल, हाँ, या तो कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा करेगा या फिर जो वोटर है वो भी कर सकता है, ठीक है। वोटर को भी तो राइट है ना कि एक सही बंदा जो है चुना जाए, ठीक है। तो वोटर करेगा, कहाँ करेगा, हाई कोर्ट में करेगा। अब वो हाई कोर्ट में करेगा तो उस समय उसको कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। तो ही विल हैव टू प्रेजेंट सर्टेन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड सम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। दैट सिक्योरिटी मनी इज ओनली 2000 रुपीज, ठीक है। फिर उसके बाद पिटीशन की सुनवाई होगी। अब सुनवाई में गेस करो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, एविडेंस एक्ट लगेगा, सिविल प्रोसीजर कोड लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जजमेंट आएगा, जजमेंट में हाई कोर्ट क्या कर सकती है, हाँ, या तो इलेक्शन को नलिफाइड कर देगी या तो बोलेगी कि इलेक्शन पिटीशन फर्जी था, उसको डिस्कार्ड कर देगी। वो ये भी कर सकती है कि ये बंदा जो जीता था वो गलत जीता था, इसके बजाय पर्सन बी शुड विन। जैसे इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया कि द पर्सन ए, ठीक है, या उन्होंने डिक्लेयर किया कि एमएस शर्मा इज द नेक्स्ट एमपी, ठीक है। हाई कोर्ट उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं एमएस शर्मा नहीं है, पीयूष कुमार वुड बी द एमपी। सच
पावर इज देयर विद द हाई कोर्ट, और ये आरपीए एक्ट में लिखा हुआ है कि ये काम कर सकते हैं। तो ये आरपीए एक्ट में जो सारे प्रोविजन है जो हमने कॉमन सेंस से डिस्कस की, यही चीजें लिखी हुई है। बस ये है कि हमें पता नहीं होगा तो हम डर जाएंगे कि क्या क्या लिखे, अदरवाइज और कोई भारी भरकम चीज इस पार्ट में है नहीं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये, विद इन 45 डेज ऑफ इलेक्शन ये पिटीशन फाइल हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर इलेक्शन के विद इन 45 डे ऑफ इलेक्शन का मतलब है रिजल्ट डिक्लेयर होने के 45 दिन के अंदर। ठीक है, फिर सिक्योरिटी जो है 2000 रुपए की है, और हाई कोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स की सुनवाई के दौरान इस सिक्योरिटी को बढ़ा भी सकता है। ये हाई कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिप्शन है कि उसको क्या लगता है कि कितना होना चाहिए, अदरवाइज फ्लैट इज 2000 रुपीज ओनली। ट्रायल जो होंगे वो डे टू डे बेसिस पे होंगे और विद इन 6 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए। ये आरपीए एक्ट 1951 मेंशन करता है कि ट्रायल डे टू डे होगा। ठीक है, बाकी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑब्वियसली सिविल मैटर है तो वही फॉलो होगा। एविडेंस एक्ट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि कोर्ट में मामला जाएगा तो एविडेंस एक्ट लगना ही है। ठीक है, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सिक्रेसी ऑफ वोटिंग नॉट टू बी इन्फ्रिंज्ड। हमारे यहाँ सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है, तो सुनवाई के दौरान किसी से भी ये नहीं पूछा जा सकता कि आपने किसको वोट दिया था। दिस इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड इवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट भी नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर ये हाई कोर्ट कैन डिसमिस डिक्लेयर एनी अदर कैंडिडेट विनर। अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हुए हैं तो हाई कोर्ट को अपने जजमेंट में वो डिक्लेयर करना है कि वो कौन से करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हुए और वो किसने किए। ठीक है, दिस इज देयर ड्यूटी। आप अगर वो ऑब्वियसली किसी अगर इलेक्शन को वाइड करेंगे तो इसी ग्राउंड पे करेंगे कि करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो हुआ था, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ये हाई कोर्ट को अपने जजमेंट में बताना है। दिस इज समथिंग जो कि आरपीए एक्ट में मेंशन किया हुआ। तो पूरा आरपीए एक्ट का जो सेक्शन 100 शुरू होता है उसमें सारी चीजें लाइन बाय लाइन यही सारी चीजें दी हुई है। एज इट इज क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। एक पूरा सेक्शन है इलेक्शन डिस्प्यूट पे, उसी सेक्शन में तीनों चीजें हैं और वो तीनों चीजें यूपीएससी ने पूछ ली है। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, अब हमें जो आरपीए एक्ट के बचे हुए सेक्शंस हैं वो भी पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें देखो कुछ टेक्निकल और डिफिकल्ट चीजें भी हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिया जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप वो सारी टेक्निकल चीजें याद करो। सिंपल लैंग्वेज में भी तो हमें 10 पॉइंट मिल गए ना, तो सिंपल समझने वाली चीजें भी हैं। ये खुद से मेहनत करके आरपीए के जो डिफरेंट मेजर सेक्शन है वो कर लो। हो सकता है अगले साल नहीं, लेकिन कभी ना कभी डेफिनेटली पूछा जाएगा। अगले साल पूछा जा सकता है, क्योंकि दिस इज न्यू ट्रेंड जहां यूपीएससी घुस गई है। क्या आरपीए एक्ट के, हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन का उन्होंने ग्राउंड पूछा था, जो अगला वाला पार्ट है कि डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड पे हम कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? नहीं लिखा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो। वो आएगा ना, अगले में आएगा, अगले पार्ट में आएगा ना। प्रोसीजर में कैसे आएगा? वो तो ये है ना कि व्हाट इज द ग्राउंड, दैट इज द ग्राउंड ना, कि आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सा ग्राउंड है? हाँ देखो, एक तरीका है कि हमने जो आरपीए एक्ट में चीजें मेंशन की हुई है, क्योंकि क्वेश्चन आरपीए एक्ट से है, तो एक तरीका है कि हम वो आंसर करें। मोस्ट लाइकली लोगों ने वो नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, तो फिर हमने जो पढ़ रखा है वो आंसर करेंगे। तो जो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो तो हम मेंशन करेंगे ही। पहली चीज वो बताओ कौन कौन सी है? एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, हाँ क्या ये आरपीए में। ठीक है, एक देखो, तो बेसिक कुछ चीजें हम लोग जानते हैं। एक तो हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जानते हैं, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ये हम जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वालिफिकेशन है कि वो क्वालिफिकेशन अगर नहीं होगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे कि सिटीजन होना चाहिए, एज क्राइटेरिया है, वो अलग अलग के लिए अलग अलग है। ठीक है, अब ये तो चीजें हम लिख ही सकते हैं ना। उसके अलावा सेक्शन 8 हम जानते हैं कि अगर उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं तो, ठीक है, क्रिमिनल केसेस है, नॉर्मल केसेस हैं तो 2 साल से ऊपर की सजा।
और वो जो तुम अभी डॉरी एक्ट और दूसरे केसेस बोल रहे थे कि SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें एक भी दिन की अगर सजा है तो डिस्क्वालिफाइड है। सो नाउ दीज आर थिंग्स जो आप डेफिनेटली जानते हो, ये आपको लिखना चाहिए। आरपीए थोड़ा ज्यादा चीजें बोलता है। आरपीए इन सारी चीजों को ना सिर्फ एक लाइन में बोल देता है कि अगर ऑन द डेट ऑफ इलेक्शन रिटर्न कैंडिडेट वाज नॉट क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड, ठीक है, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और आरपीए, मतलब अगर वो आरपीए के किसी प्रोविजन के अंदर डिस्क्वालिफाइड है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा उसके इलेक्शन को, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अंदर डिस्क्वालीफाइड है तो भी वो कैंडिडेट का इलेक्शन वाइड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और ग्राउंड्स भी हैं जिसके बेसिस पे कैंडिडेट का इलेक्शन वाइड हो सकता है। अगर कैंडिडेट ने इलेक्शन के दौरान कोई करप्ट प्रैक्टिसेस किए हैं, जैसे कि वोटर को ब्राइबरी दी है, ठीक है, लिकर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, उसने बूथ कैप्चरिंग करी है, ठीक है, या फिर उसने एनिमिटी फैलाया है, दीज आर सर्टेन करप्ट प्रैक्टिसेस जो कि मेंशन है आरपीए एक्ट में, अगर वो किया है तो भी वो नल एंड वाइड हो जाएगा। अगर उसका नॉमिनेशन किसी कैंडिडेट का, जैसे 10 लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, एक बंदे ने नॉमिनेशन फाइल किया था, वो रिजेक्ट हो गया और वो गलत ग्राउंड पे रिजेक्ट हो गया है, तो भी इलेक्शन वाइड हो जाएगा। जो बंदा जीत गया है उसका नॉमिनेशन अगर गलत था, ठीक है, तो भी उसका इलेक्शन वाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहा था और बीजेपी के जो भी सिग्नेटरी थे उसके सिग्नेचर मिसिंग थे उसके नॉमिनेशन में, देन ऑल्सो हिज इलेक्शन वुड बी वाइड। बहुत जोर से बजा, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, और अगर कुछ वोट्स ऐसे हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से रिजेक्ट कर दिया है या एक्सेप्ट कर लिया, इसमें एक चीज कंडीशन लगाई गई है कि इन वोट से चुनाव के रिजल्ट पे फर्क पड़ना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने पोस्टल बैलेट से वोटिंग करी, उस वोट को इलेक्शन कमीशन ने काउंट नहीं किया, बट ऐसे वोट 10 थे और जो मार्जिन है वो 10 लाख का है या 1 लाख का है, फिर इलेक्शन को वाइड नहीं किया जाएगा। तो इस वोट से फर्क पड़ना चाहिए रिजल्ट पे। मान लो डिफरेंस 2 ही वोट का है, तो और ये 10 वोट काउंट नहीं हुए, आपने पिटीशन फाइल किया कि 10 वोट काउंट होने चाहिए, और काउंट होने के बाद कोई और जीत गया, तो हाई कोर्ट किसी और को विजेता डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन या आरपीए के किसी प्रोविजन से कंप्लायंस नहीं कर रहा है कैंडिडेट और उसकी वजह से इलेक्शन पे फर्क पड़ रहा है, दैट कैन आल्सो बी अ ग्राउंड फॉर डिक्लेयरिंग इट वाइड। तो इसको याद कर लो, ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन आए हैं। हम इस वाले पार्ट में क्वालिफाइड और डिस्क्वालिफाइड में और 4-5 पॉइंट जो आप लोगों ने अभी बताए वो हम लिखेंगे, और इसके अलावा ये भी पॉइंट है जो कि पहले भी आ चुका है, दोबारा आ सकता है ये चीज, ये एकदम से टिप पे होने चाहिए। ठीक है, तो एक पेज पूरा आपको यही लिखना है। दूसरा जो पेज होगा आंसर का, पहले पेज में इंट्रोडक्शन और जो भी वो चीजें थी, ठीक है, प्रोसीजर वाली, दूसरे पेज में हम लिखेंगे ग्राउंड्स फॉर वाइडिंग, और तीसरे पेज में अपन इस पे आ जाएंगे कि अगर किसी को वाइड कर दिया गया तो उसके पास क्या रेमेडी है। क्या रेमेडी होगा, गेस करो? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके अलावा एक रेमेडी और है। एक तो रेमेडी सिंपल सा है, ठीक है, कि आप अपील करो सुप्रीम कोर्ट में। एक रेमेडी आपको एक टेम्पररी मेजर भी दिया गया है कि आपका वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये एमपी इसका इलेक्शन वाइड, ठीक है, और इसकी वजह मिस्टर ए के बजाय मिस्टर बी जो है वो एमपी यहाँ से डिक्लेयर होंगे। अब ना क्या चांसेस है कि मिस्टर बी जा करके ओथ ले सकते हैं और मिस्टर बी जा करके तुरंत अगले डे से मिनिस्टर बन सकते हैं, मिस्टर बी वोटिंग कर सकते हैं पार्लियामेंट में, बट मिस्टर ए को लगता है कि हाई कोर्ट का ये जजमेंट गलत है, तो ही कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड एक्वायर ए टेम्पोररी स्टे। ठीक है, और ये प्रोविजन भी लिखा हुआ है आरपीए एक्ट में ही कि हाई कोर्ट का ऑर्डर ऑपरेशनलाइज ना किया जाए, और ये स्टे आप हाई कोर्ट से ही ले सकते हो। ठीक है, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट एंड रिक्वेस्ट कि देयर इज सम मेरिट, हम अपील करेंगे बाद में, लेकिन तब तक आप स्टे कर दो। बट और ये सुप्रीम कोर्ट से भी लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो जब आप अपील करोगे तो लोगे, ठीक है, और हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की अपील करने से
पहले ले सकते हो। एक बार वो हाँ, इसमें एक और भी चीज है कि अपील 30 दिन के अंदर की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। एक बार वो 30 दिन निकल गया फिर आप स्टे नहीं ले सकते, क्योंकि अब आपके अपील करना ही नहीं है, जजमेंट इज फाइनल, देन देयर इज नो नीड ऑफ स्टे। वाइड करने का फेमस एग्जांपल तो इंदिरा गांधी का ही है, और रिसेंट टाइम में तो कोई एग्जांपल भी आया नहीं है न्यूज में। बाकी देखेंगे कि और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। सज्जन कुमार, हाँ, जो 1984 राइट्स में जो एक्यूज थे, हाँ, अच्छा, उनको वाइड किया था। यस, दैट कुड बी द एग्जांपल। जैसे कि इस क्वेश्चन के डिमांड में है नहीं कि आप एग्जांपल लिखो, बट हाँ, पता होने चाहिए एग्जांपल। क्या? हाँ, ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ है। केस लॉज का मतलब पता है? हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स हैं, बट हाँ, बट एज सच उनमें से कोई भी जजमेंट जो है ना, इससे डायरेक्टली डिमांड को एड्रेस नहीं करता है। हाँ, कि इंदिरा गांधी वाला है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट केस लॉज का एग्जैक्टली मतलब होता है ना कि जो जजमेंट एक लॉ बन गए हैं, जो हमने देखा था एनवायरमेंटल वाले केस में, ठीक है, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पार्लियामेंट ने नलिफाई कर दिया था अमेंडमेंट करके, तो एज सच कोई मेजर जजमेंट है नहीं उतने। एक लिली थॉमस वाला केस आप मेंशन कर सकते हो, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, जो सेक्शन 8A बनाया गया था उसको उन्होंने नल एंड वाइड किया था, ठीक है, बट एज सच वो भी इसको डायरेक्टली उतना एड्रेस नहीं कर सकता। फर्स्ट पार्ट में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जब आप यहाँ पे जब हम क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन दे रहे थे तो लिली थॉमस जजमेंट का मेंशन कर सकते हैं। तो इट इज नॉट वेरी मच क्लियर कि किस केस लॉ की बात की जा रही है। However, one thing is clear, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी केस लॉज रेफर करने के लिए बोला है और क्वेश्चन नंबर 1 में भी बोला है, तो देयर आर चांसेस कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछें। तो जहां कहीं भी कोई जजमेंट हो, आपकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि आप अब जजमेंट याद करो, ठीक है। और जब केस लॉज रेफर करने के लिए बोला जाता है तो आपको एग्जैक्ट जजमेंट कोट करना है, मतलब जजमेंट में क्या कही गई है के साथ साथ जजमेंट का नाम भी, कि MC मेहता केस हुआ या फिर लिली थॉमस केस हुआ, तो वो अब याद करने पे ध्यान देना है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंटरप्रिटेशन किया वो काफी नहीं है। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं? तो चलते हैं अपन कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या होना चाहिए? कंक्लूजन शुड बी सम रिकमेंडेटरी नेचर। देखो, एज सच इस क्वेश्चन में हमने ना कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करी है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम प्रॉब्लम का सजेशन दें। यहाँ पे हम कंक्लूजन में ना ही इन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि कमेंट करो और डिस्कस करो या ऐसा कुछ बोला है, तो काफी हद तक हमारे पास लिबर्टी है कि हम डिफरेंट टाइप के कंक्लूजन दें कि क्या होना चाहिए या क्या है सिचुएशन, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। बट वन ऑफ द वे फॉरवर्ड इज कि इलेक्शन पिटीशन जो है उसके सिग्निफिकेंस पे हम कुछ कमेंट करें कि इलेक्शन पिटीशन क्या है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में इलेक्शन पिटीशन पे किया था, फिर हमने डिस्कस किया कि पिटीशन का प्रोसीजर क्या है, वे फॉरवर्ड, सॉरी, वे क्या है, लोग ग्राउंड क्या है, वे क्या है, ठीक है। अब कुछ इम्पैक्ट पे हम दे सकते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। हाँ, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी मैंने ये रिकमेंड किया कि इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि इमरजेंसी प्रेसिपिटेट हुई थी बिकॉज ऑफ वन ऑफ द इलेक्शन पिटीशन, ठीक है। बट यू हैव कंप्लीट लिबर्टी, यहाँ पे कोई आइडियल रिकमेंडेशन क्वेश्चन से डिराइव नहीं हो रहा है कि इस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम सजेस्ट करेंगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं हुई है। जो भी होगा 2-3 लाइन से बड़ा कंक्लूजन नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस के थ्रू धीरे धीरे लेके आना है। तो मैंने लिखने की कोशिश, और कुछ न कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए।
ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिक लाने के लिए मैंने वो इमरजेंसी वाली चीज ऐड की है, तो कुछ स्पेसिफिक है ना कि कुछ तो हुआ है, हम ऐसे कुछ बात लिखेंगे। एक डाउट है कि क्या हम फर्स्ट टू पार्ट को कंबाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली नो, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले ने पहले पार्ट को अलग से क्वेश्चन बनाया है, अगले पार्ट को अलग से बनाया है, तो आपको दोनों के अलग अलग हेडिंग दे करके इसका आंसर करना चाहिए। अगर आप दो पार्ट को मर्ज कर रहे हो, इट कैन गिव एन इंप्रेशन कि आपने एक पार्ट को एड्रेस नहीं किया है, या डेफिनेटली ये इंप्रेशन तो है ही कि स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर नहीं है जैसा कि क्वेश्चन डिमांड कर रहा था। तो इसमें न तो दोनों को मर्ज करना चाहिए और न ही ऑर्डर चेंज की जानी चाहिए। जब अगर दो तीन क्वेश्चन पूछे हो ना, तो जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे हो उसी ऑर्डर में आप आंसर करो। हाँ बिल्कुल, एग्जामिनर को एकदम आसान लगेगा कि हाँ ये भी पार्ट आंसर किया है, और हेडिंग भी वही यूज करो जो कि क्वेश्चन में। पहले वाले में जैसे ये है कि प्रोसीजर, तो हम हेडिंग में प्रोसीजर वर्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरे वाले में है ग्राउंड, तो हेडिंग में ग्राउंड वर्ड होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें केस लॉज है नहीं, आई डोंट नो मतलब यूपीएससी ने क्यों लिखा है, ठीक है। जहां पे केस लॉज होंगे भी वहां पे केस लॉज अलग से नहीं आएगा, वो एग्जांपल्स में आएंगे, या आपका जैसे वो पूरे स्टोरी ही केस लॉज के थ्रू बनेगी, जैसे पिछले वाले जजमेंट में था वो स्टोरी केस लॉज की थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी केस लॉ अलग से नहीं आएगा कि हम केस लॉ की एक हेडिंग दे रहे हैं और वो दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन होता है ना कि सब्सटेंशिएट विद सुटेबल एग्जांपल, तो आप एक एग्जांपल की हेडिंग तो नहीं बनाते हो, आप पॉइंट को ही एग्जांपल के साथ लिखते हो। सेम चीज यहाँ पे केस लॉज का है, कि केस लॉज को बीच बीच में कहीं पे आप मेंशन करोगे। क्या? हाँ, रेफर टू केस लॉज, वो रेफर करना है जहां कहीं भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है डिस्कस द लीगलिटी ऑफ रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर, ठीक है। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। आइडियली पहले अपन दूसरे पार्ट को अगर देखें कि ये बोला गया है डिस्कस द लीगलिटी, तो हमें ये बोलना चाहिए कि कैसे ये लीगल है और कैसे लीगल नहीं है। बट इस क्वेश्चन में वो आइडियल चीज फॉलो नहीं होगी। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है कि ये इलीगल है। रिप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज ए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है इट्स वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन भी एक जजमेंट में बोल रखा है, ठीक, डीसी वादवा, ठीक है। तो दो जजमेंट हैं, कृष्ण कुमार केस है, एक डीसी वादवा केस है, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि ये इलीगल है। तो यहाँ पे अगर आप डिबेट करते हो कि नहीं लीगल भी है, वो सेंस नहीं बनाता है। बट नॉर्मल केस में दूसरे जगह पे आपको करना चाहिए डिबेट, ठीक है। फिर डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइजिंग। अब यहाँ पे भी डिस्कशन का मतलब डिबेट नहीं है कि दो साइड से करेंगे, सिंपली वो जानना चाह रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट एसेंशियल कंडीशन, ओके। अब ये बताओ इसमें क्या लिखा, क्या क्या लिखा जाएगा पहले पार्ट में, ठीक है। ये तो दो पार्ट हो गए और एक पार्ट अपना आ जाएगा क्या बोलते हैं इंट्रो और कंक्लूजन। तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? ठीक है, ये हो गया। प्रेसिडेंट रूल आएगा, बट हाउ इज दैट अ लेजिस्लेटिव पावर? लेजिस्लेटिव पावर की बात की जा रही है, वो गवर्नर के पास बहुत सारे पावर हैं, ये सिर्फ लेजिस्लेटिव पावर पे है ये क्वेश्चन। और बताओ, चलो एक तरीका ये है कि आप आर्टिकल 1, 2, 3 से शुरू करो, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें गलती ये है कि वो गवर्नर का आर्टिकल नहीं है ठीक है, तो आपको 2, 1, 3 शुरू करना चाहिए, ठीक है। और कोई तरीका? सेपरेशन ऑफ पावर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें यह है कि मैं 2, 1, 3 से नहीं शुरू करना रिकमेंड करूंगा, कि 2, 1, 3 हमारे बॉडी का पार्ट आएगा जो हम डिस्कस करेंगे ना, एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, तो उसमें अपन मेंशन करेंगे ही कि 2, 1, 3 ये है, ठीक है। तो आई हैव स्टार्टेड विद समथिंग मोर जनरल थिंग कि गवर्नर इज एन पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, apart from a state legislative assembly, governor is part, that's why governor has got some legislative function to do as well. Now another mistake that most of a student has done
कि पहले पार्ट में सिर्फ उन्होंने ऑर्डिनेंस को डिस्कस किया है। दैट्स नॉट करेक्ट। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि ऑर्डिनेंस का एसेंशियल कंडीशन आप बताओ। दे हैव सिंपली रिटन एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव पावर बहुत सारे हैं, उनमें से एक है ऑर्डिनेंस, लेकिन चूंकि दूसरा पार्ट में रिप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस आ गया, इसलिए ये इंप्रेशन आता है कि सिर्फ ये ऑर्डिनेंस पे पूछा जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिनारियो में कि हमें एक हेडिंग देना चाहिए कि ऑर्डिनेंस रिलेटेड एसेंशियल कंडीशन, उसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है बनाना वो ऑर्डिनेंस पे चाह रहे हो क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने लेजिस्लेटिव पावर लिख दिया। लेकिन अब तो जो क्वेश्चन लिख दिया है हमें उसी का आंसर करना है। तो हम पहले लिखेंगे थोड़ा सा अलग से डिटेल में कि ऑर्डिनेंस के क्या एसेंशियल कंडीशन है, फिर हम लिखेंगे कि अदर लेजिस्लेटिव पावर एंड देयर कंडीशन। ठीक है, लेकिन अदर लेजिस्लेटिव पावर भी आपको लिखने चाहिए। आप लोगों में से कितने लोगों ने लिखा था? सिर्फ ऑर्डिनेंस लिखा, तो इसलिए जल्दी में नहीं पढ़ना होता। ठीक है, आराम से पढ़ना है। सर दिस क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स, सो शुड वी गिव 3 केस लॉज फॉर 3 पार्ट? मतलब ऑब्वियसली हमारे पास अगर केस लॉज हो तो हमें देने चाहिए। पिछला वाला है 3 क्या 4 5 जितने एग्जाम्पल में आप दे सको। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब मुझे मिले नहीं, मैंने काफ़ी देर मेहनत करी सर्च करने की। ठीक है, तो वैसे कोई प्रोमिनेंट है नहीं केस लॉज पिछले वाले क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली उन्होंने आरपीए से बनाया है। आरपीए में एज इट इज सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछा गया सेम ऑर्डर में आरपीए एक्ट में मेंशन्ड है। ठीक है, कमिंग टू दिस पार्ट, सो एसेंशियल कंडीशन बताओ। ये तो सबको पता होगा, ऑर्डिनेंस कब होगा? Either of the house, if there are 2 houses, अगर एक ही हाउस है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली should not be in session, और हाँ some urgent issue in the opinion of governor would have arrived। ठीक है, और बाकी आप चाहो तो साथ में ये 2-3 चीजें और भी कर सकते हो कि ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेचर से पास कराना होता है विद इन 6 months, एंड देन ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन जो नॉर्मल लेजिस्लेचर पे लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी कि अगर कुछ ऑर्डिनेंस के लिए आपको प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हो। ठीक है, इफ सम केसेस प्रायर परमिशन या प्रायर असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हाँ नहीं बात ये है ना कि हमें और लेजिस्लेटिव प्रोविजन भी तो लिखने हैं। ठीक है, हाँ अगर सिर्फ यही लिखना है तब तो इसी को डिटेल में लिख दो। ठीक है, अगर सिर्फ ऑर्डिनेंस लिखना होता तो, लेकिन हमें अदर लेजिस्लेटिव पावर बहुत सारे हैं वो भी लिखना है। ठीक है, बट यहाँ पे एक एग्जांपल देकर के लास्ट वाला पॉइंट भी लिखा जाना चाहिए। ये 2 तो सबने लिख दिया होगा। ठीक है, लास्ट वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है। बीच वाला तीसरा अगर आप मिस भी करते हो तो प्री कंडीशन, देखो इसमें फील ये आ रही है कि एसेंशियल प्री कंडीशन की बात की जा रही है, हालांकि प्री कंडीशन वर्ड नहीं यूज किया है, बट फील यही है क्वेश्चन का। तो आप तीसरा पॉइंट स्किप करो तो बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन अगर चौथा स्किप हो रहा है तो थोड़ा बड़ा क्राइम है, और पहला दूसरा में से कोई स्किप हो रहा है तो फिर अक्षम्य है। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है आपको कंडीशंस तो डेफिनेटली जाकर के आज ऑर्डिनेंस रिवाइज करने चाहिए आपको गवर्नर वाले चैप्टर से। हम लोग प्रेसिडेंट वाले चैप्टर से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने एकदम गवर्नर वाला क्वेश्चन पूछा है। हाँ ये भी है कि जब वो लोकसभा के रूल्स के हिसाब से हैं, लोकसभा के रूल्स में है कि जब भी वो बिल पेश किया जाएगा, ठीक है, तो कंडीशन क्या थी जिसने नेसेसिटेट किया उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, डेफिनेटली सच रूल्स लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होंगे। मैं बोलता रहा हूँ कि 2 पार्ट करेंगे अपन। एक पार्ट में ऑर्डिनेंस को अलग से बताना चाहिए, ठीक है, प्रोमिनेंटली, क्योंकि अगला वाला पार्ट ऑर्डिनेंस पे तो एक फीलिंग आ रही है कि शायद वो ऑर्डिनेंस पे पूछ रहे थे, बट उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है लेजिस्लेटिव पावर। फिर अगला वाला मैंने 2 पार्ट में, पहले पार्ट को 2 पार्ट में ब्रेक किया है कि हम ऑर्डिनेंस के बारे में लिखेंगे प्री कंडीशन, फिर लिखेंगे कि अदर लेजिस्लेटिव पावर एंड देयर कंडीशन। ठीक है, अब इसमें जितना याद आ जाए आपको एक स्पेस अलोकेट कर देना चाहिए कि जो रिप्रमलगेशन वाले डिस्कशन है उसमें डिस्कशन तो होना नहीं है, उसमें तो सिंपली हमको जजमेंट लिखना है। तो जो तीसरा पेज है वो मेरा इस पे जाएगा, 3rd पेज।
पहले पेज में हम ऑर्डिनेंस वाली बात लिखेंगे, ऑर्डिनेंस की क्या प्रीकंडीशन, दूसरे पेज में जितने भी हमको लेजिस्लेटिव पावर गवर्नर के याद आते जाएं उतना लिखते जाओ जब तक कि स्पेस परमिट करे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप शुरुआत में माइंड में स्पेसियल एलोकेशन करके शुरू करो क्वेश्चन को, अदरवाइज इसमें बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर आप लिखते जाओगे, हो सकता है 3 पेज ऐसे ही खत्म हो जाए, वो नहीं करना है। ठीक है, हर चीज को वेटेज देनी है। ठीक है, तो जैसे कि समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और बताओ और क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर है? हाँ, असेंबली को मैसेज कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं असेंबली को। हाँ, वीटो पावर है उनके पास। वीटो पावर में भी कई तरीके के वीटो पावर हैं, अगर आपको टाइम परमिट करे तो नहीं याद आ रहा है और पॉइंट, ठीक है, तो वीटो पावर के डिटेल में आप जा सकते हो, नहीं तो आप सिंपली वीटो पावर डैश दे करके लिख दो, एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो और सस्पेंसिव वीटो, और गवर्नर के पास एक होता है कि वो रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट। ठीक है, ये लिख दो। और बट वो लेजिस्लेटिव पावर का है। ठीक है, नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर्स को। ठीक है, दैट इज आल्सो ए लेजिस्लेटिव पावर। डिस्क्वालिफिकेशन पे ही टेक्स द डिसीजन। ऑब्वियसली डिसीजन तो इलेक्शन कमीशन लेता है, बट अल्टीमेटली डिस्क्वालिफिकेशन गवर्नर के ही हाथों होता है। ठीक है, तो दीज आर सम अदर पावर। ऑब्वियसली सब आप नहीं लिख पाओगे, वो एक पेज में जितना याद आ जाए उतना लिखना है, लेकिन हाँ याद हमें सारे करने हैं। ठीक है, यू नेवर नो ना, कल के डेट में सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। जैसा यूपीएससी का मूड चल रहा है, एकदम छोटी सी पार्ट को दे दे रहे हैं कि 15 नंबर का लिखो अब तुम, तो हमें सारी चीज जो भी पढ़ना है डिटेल में पढ़ के और याद करना है। और वीटो पावर, ये कंडीशन की बात हो रही थी ना कि रिजर्व कर कब कब कर सकते हैं। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखना, इस क्वेश्चन में इतने डिटेल में नहीं जाना है, यहाँ पे सिर्फ वो 3-4 तरीके के जो वीटो हैं वो लिख देंगे, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? तो अब अगले पार्ट पे आते हैं। इसमें 2 केसेस हैं, एक है सिंपल डीसी वाधवा केस, उसमें सिंपली सुप्रीम कोर्ट ने वो फ्रॉड वाला टर्म यूज नहीं किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और फिर अगला केस आया कृष्ण कुमार केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। थोड़ा सा ज्यादा टफ हो गया सुप्रीम कोर्ट, बात वैसे दोनों में एक ही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों में बोला कि हम नलिफाई कर सकते हैं ऐसे ऑर्डिनेंस को अगर वो रिप्रोमलगेट किया जा रहा विद द सेम टेक्स्ट एंड विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऑर्डिनेंस पावर एक पैरेलल लेजिस्लेचर नहीं क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ इंप्लीकेशन वाले जो वर्ड्स हैं वो भी हमें याद रखना, लिखना चाहिए आपको, सिर्फ ये लिखना एक लाइन मतलब काफी नहीं है। दूसरा कि इट्स एन एक्सेप्शनल सिचुएशन का चौथा पावर है जो कि एक्सेप्शनल सिचुएशन में ही यूज होना चाहिए, यह है स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। ठीक है, अब यहां पे हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी है, रिप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस इज ए प्रॉब्लम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये नहीं होना चाहिए, इट्स एन इलीगल थिंग, देन वी शुड गिव सम सजेशंस। अगर आपको इतने डिटेल में आप नहीं लिखोगे, चांस आपको चाहिए कि आधे पेज में आप ये 2 केसेस जो है डीसी वाधवा केस और कृष्ण कुमार सिंह केस लिख दो, और बाकी आधे पेज में आप सजेशंस दो कि फिर करना क्या चाहिए। बताओ क्या करना चाहिए? जो यहाँ गड़बड़ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए ना, तो उसी में सजेशंस आएंगे। ऑर्डिनेंस के बारे में बताओ, सजेशन बिल्स पे नहीं जाएगा। ठीक है, सिंपली रिप्रोमलगेशन शुड नॉट बी अलाउड। द एसेंशियल कंडीशन है कि एक अर्जेंट सिचुएशन हैज अराइज्ड, उसको डिफाइन किया जाना चाहिए, कौन से सिचुएशन को अर्जेंट माना जाएगा। ठीक है, हालांकि डिफाइन करना अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन हमें बोल सकते हैं। ठीक है, हमें तो सिर्फ बोलना ही है ना, एक्चुअल में डिफाइन थोड़ा ना करना है।
हाँ, यू कैन डेफिनेटली मेंशन कि यहाँ पे रोल ऑफ गवर्नर भी, यहाँ पे गवर्नर लिखना चाहिए आपको रादर देन प्रेसिडेंट। रोल ऑफ गवर्नर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गवर्नर शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये आप एडवाइस दे सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट। हालांकि फिर वो दूसरा सेंट्रल स्टेट रिलेशन वाला इशू अपना शुरू हो जाता है कि मतलब गवर्नर अपनी अथॉरिटी क्यों दिखा रहा है, ठीक है। काम ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग आगे वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे सेंट्रलाइजेशन और उसमें अभी पंजाब गवर्नमेंट लाना चाह रही थी कि हम एक सेशन बुलाना चाहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली का, गवर्नर ने मना कर दिया। नाउ गवर्नर हैज नो बिजनेस टू डिसाइड, जस्ट बिकॉज यू हैव बीन गिवन अ पावर इट डजंट मीन यू हैव टू एक्सरसाइज दैट पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन envisages a council of minister which is responsible to the legislature and that council of ministers should be taking the decision, not the governor, ठीक है। बट डेफिनेटली यहां पे हम दे सकते हैं, इस कंटेक्स्ट में दिया जा सकता है, ठीक है। एक तो डिफाइन करो ये एक चीज, satisfaction of the governor should also be judicially reviewable. If such a situation was there or not, ये भी आपको जुडिशरी में प्रूव करना पड़ेगा। जैसे फॉर्म बिल में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रखी थी कि कोई इमरजेंसी नहीं था कि आपको ऑर्डिनेंस लाना है। आधार बिल जो ऑलरेडी मतलब आधार चला आ रहा है कितने सालों से, उसके बाद आप उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू ला रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। इन ग्लोबल सम डेमोक्रेसीज लाइक यूएस एंड यूके देयर इज नो सच प्रोविजन लाइक ऑर्डिनेंस। दे आर सिंपली सेइंग कि अगर इमरजेंसी है तो लेजिस्लेचर समझेगा। लेजिस्लेचर में भी तो गवर्नमेंट ही है ना, लेजिस्लेचर को हम क्यों मान रहे हैं कि लेजिस्लेचर इस चीज को नहीं समझेगा कि देयर इज एन इमरजेंसी, एंड लेजिस्लेचर का डेफिनेटली अमेंड इट। अगर कोई लॉ गलत बन गया है जल्दीबाजी में तो लेजिस्लेचर उसको अमेंड कर सकता है, जैसे आप ऑर्डिनेंस को बाद में पास कराते हो। तो देयर इज नो नीड कि हम एग्जीक्यूटिव को इस टाइप की पावर दें। यस, यू कैन से कि यूके और यूएस ने कर दिया है और हमें भी इससे डू अवे करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, लास्ट में आप सेपरेशन ऑफ पावर पे कंक्लूड कर सकते हो, ये उसको वायलेट करता है तो हमें इससे डू अवे कर देना चाहिए। यू कैन टेक दिस स्टैंड कि हमें इससे हटा देना चाहिए, ठीक है। हाउएवर, जैसे वो बिहार वाला तो सब लोगों को याद होगा कि बिहार गवर्नमेंट ने कितने 256 ऑर्डिनेंसेस पास किए थे, ठीक है। और वो एक पीरियड था, मतलब वो शायद 9 साल या 10 साल में है, तो ऑन एन एवरेज हर साल 25 के करीब पड़ा, हाँ, और 60-70 में। अभी भी 2020 में, ठीक है, केरला ने 81 ऑर्डिनेंसेस पास किए। सेम ईयर कर्नाटक ने 24 ऑर्डिनेंस पास किए। सो इवन टुडे ordinances are being promulgated with impunity, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो जो कर रही है हम लोग सब देख ही रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूज में ज्यादा आता है, स्टेट गवर्नमेंट का चुपचाप वो करते रहते हैं, न्यूज में नहीं आता है। बट इवन स्टेट गवर्नमेंट्स आर मिसयूजिंग दिस प्रोविजन वेरी मच ब्लैटेंटली। केरला का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, 81, समझ रहे हो। हाँ, सेंटर का भी कुछ उसी के रेंज में, 20 के रेंज में है, बट स्टेट गवर्नमेंट वो ज्यादा मिसयूज कर रही है, ठीक है। तो हमें एकदम इसके अगेंस्ट में स्टैंड लेना है, इसके फेवर में स्टैंड लेने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये इलीगल चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल बोल रखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिमाग बीच का लगाना नहीं है, ठीक है। कोई डाउट, आगे बढ़े। While the national political parties in India favor centralization, the regional parties are in favor of state autonomy. बड़ा ही मासूम सा स्टेटमेंट है और ये ऑब्वियस है, ठीक है। सवाल ये है कि अब इसमें लिखना क्या है, और भी 3 पेज लिखने हैं। चैलेंज सिर्फ ये नहीं है लिखना है, 3 पेज लिखना है, वही 15 नंबर का है इसलिए है। तो अब बताओ इसमें क्या लिखोगे, या क्या आप लोगों ने लिखा। ये तो थोड़ा एग्जाम्पल पे चले गए तुम, थोड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर बताओ कि स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे, या फिर सिर्फ एक पार्ट है तुमने लिख दिया, एग्जाम्पल 3 पेज भर दिए।
ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर नहीं बना ना। एक पहले हमें ये कोशिश करनी है, अच्छा नंबर तभी मिलता है जब आप स्ट्रक्चर में लिखते हो। तो इसमें तो आपने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया ना, आपने चेंज कर दिया कि क्वेश्चन ये है कि शुड देयर बी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, बट ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो फेवर कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन को, जबकि जो रीजनल पार्टीज हैं वो फेवर कर रहे हैं स्टेट ऑटोनॉमी को। तो सिंपली जो हेडिंग बनने चाहिए वो यही बनने चाहिए कि कैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज फेवर कर रही हैं सेंट्रलाइजेशन को। और यस, यू कैन गिव एनी एग्जांपल, आप एग्जांपल से शुरू कर सकते हो। हाँ, अब वहां पे हेल्प वर्ड के बजाय सिंपली ये वर्ड यूज करो, ठीक है, कि नेशनल पार्टीज आर फेवरिंग सेंट्रलाइजेशन। अब इसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है कि हम एग्जांपल्स देंगे कि भाई ये बात अपने आप में सत्य है कि नेशनल पार्टीज फेवर करती हैं सेंट्रलाइजेशन को, और दूसरा है कि क्यों फेवर करती है। सेम दूसरे पार्ट में भी है कि जो रीजनल पार्टीज है वो फेवर करती है स्टेट ऑटोनॉमी को, और फिर है कि क्यों करती है। बट दोनों अलग अलग एग्जाम्पल वगैरह लिखना हो सकता है मुश्किल हो, तो आप ये भी कर सकते हो कि एग्जाम्पल को हम साथ में ही जो क्यों वाला आर्गुमेंट देंगे, आर्गुमेंट के साथ में एग्जाम्पल देते जाएंगे। बट कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए, सिंपली बस पॉइंट 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 लिखते जाएंगे ना, उसमें मिस कर रहे हो। क्या होगा कि आप पहले कुछ सेंट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल लिखोगे, फिर कुछ डिसेंट्रलाइजेशन के लिखोगे, फिर तब तक याद आएगा कि एक सेंट्रलाइजेशन वाला छूट गया था, तो फिर सेंट्रलाइजेशन लिखोगे, फिर डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो रैंडमनेस जो होगा ना, वो नंबर जो है 20-30% से कम कर देगा उतने ही पॉइंट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम इससे भी कर सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज अबाउट एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। ठीक है, क्वेश्चन तो उसी पे है, उसी टॉपिक से है, तो हम वो भी बोल सकते हैं कि इंडिया में जो फेडरलिज्म इमेजिन की गई है वो की गई है एक क्वाजी फेडरल सेटअप है जहां पे सेंटर का बायस है। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन्विसाज किया था, जहां पे सेंटर और स्टेट एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। चूंकि इंटरडिपेंडेंट है इसलिए ये सेंट्रलाइजेशन होना है कि स्टेट ऑटोनॉमी होनी है, ये डिबेट उठता है। यूएसए में ये डिबेट ही नहीं है, क्योंकि वहां पे क्लियर कट है कि ये चीजें स्टेट करेगा, ये चीजें सेंटर करेगा। फेडरल के पास बहुत ज्यादा पावर ही नहीं है, सारी चीजें स्टेट के पास है। हमारे यहाँ चूंकि हमने कॉपरेशन इन्विसाज किया इसलिए ये डिबेट उठता रहता है। ठीक है, तो आप उस डिबेट से भी शुरू कर सकते हो, या फिर जैसा आप बोल रहे थे कि कोई जो रिसेंट में हैपनिंग हो रही है कि मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला है, उससे भी आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, हाँ, एक और मिस्टेक कुछ लोगों की कॉपीज में देख रहा था तो कुछ लोगों ने किया है कि उन्होंने इंडियन का जो फेडरल सेटअप है वो क्वाजी फेडरल कैसे है उसके सारे फीचर लिख दिए हैं, ये कैसे कैसे सेंट्रलाइजेशन है। डेफिनेटली वो इसके कोर को एड्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इसका नहीं है कि इंडिया का फेडरलिज्म कैसा है, क्वेश्चन इसका है कि एक टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक टाइप ऑफ फेडरलिज्म को फेवर कर रही है, एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तो क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज पे है। ठीक है, उनके ओपिनियन पे है, हमें उस पे जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन लगता है बड़ा आसान। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्यों फेवर कर रही हैं, अब यहां पे एक डिबेट और आता है कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज के नाम, लीडर्स के नाम लिखने चाहिए या नहीं। बताओ जनता का राय क्या है, ऑनलाइन वाले भी बताना, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। हाँ, एक तो यह है कि उन्होंने मेंशन किया है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, तो अगर आप जब तक कुछ एग्जाम्पल नहीं दोगे, एक तो कि क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और अगर आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तो आंसर अच्छा नहीं बनेगा। एग्जाम्पल तो पार्टीज के ही होंगे। ठीक है, तो लिखना तो चाहिए। हाउएवर जनरल जो रूल है कि थोड़ा लिखने से हमें बचना चाहिए। सो इसमें मैं एक बीच का रास्ता बताऊंगा कि जो पुराने एग्जाम्पल है वो तो लिखो। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना सिंगल पार्टी कांग्रेस रूल। ठीक है, इंदिरा गांधी का हम एग्जाम्पल देते हैं कि इमरजेंसी लगा था, दैट वाज ब्लैक डे, ये सारी चीजें वो आप लिखते जाओ। कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स मत दो, वहां पे सिंपली फिर लिखो कि पंजाब गवर्नमेंट डिड दिस, द गवर्नर पंजाब डिड दैट।
द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट डिड दिस, रादर देन सेइंग कि बीजेपी गवर्नमेंट डिड दिस, आप लिखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया, बात वही है, ठीक है। लेकिन हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे। कंटेम्पोररी टाइम से, पुराने टाइम में तो अपन लेंगे कि नरसिम्हा राव ने ये किया था, राजीव गांधी ने ये किया था, वो सब चलता है, ठीक है। कंटेम्पोररी में अपन गवर्नमेंट खेलेंगे। हाँ हाँ, केसीआर लेने के बजाय हम बोलेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट की ये डिमांड थी, ठीक है। कितने नेशनल पार्टीज हैं? कुछ लोग 7 कह रहे हैं, कुछ 8 कह रहे हैं, बताओ कौन कौन से हैं, बताओ। बीएसपी और नहीं, अब वो डिस्क्वालीफाई हो गई है। हाँ, एनसीपी है, बीएसपी है, बीएसपी बता दिया, तृणमूल कांग्रेस है और 2 सीपीआई हैं, एक सीपीआई और सीपीआईएम, ठीक है। सर स्टार्टिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस से कर सकते क्या कि विद राइज ऑफ रीजनल पार्टीज आफ्टर डोमिनेंस बाय वन पार्टी फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। हाँ, ये भी एक तरीका है कि आप कंटेक्स्ट बता सकते हो। मैंने इससे इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैंने इसको अपने बॉडी में इंक्लूड किया है कि कैसे नेशनल पार्टी ने सेंट्रलाइजेशन सिंस पोस्ट इंडिपेंडेंस ये फिनोमेना है, जो स्टेटमेंट दी गई है ये रिसेंट फिनोमेना नहीं है, तो ये मैंने बॉडी में इंक्लूड किया, इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। बट यू कैन स्टार्ट विद दिस एज वेल, क्रिएटिंग ए बैकग्राउंड कि सिंस इंडिपेंडेंस ये चीज हो रही है। आप उस कैबिनेट मिशन हाँ आप डाल सकते हो, मतलब आप कह रहे हो कि अब पोस्ट इंडिपेंडेंस शुरू करने के बजाय जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस से शुरू करो, ठीक है। ओवरऑल जो मैंने बात कही है या जो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा जो क्वाजी फेडरल सेटअप बना उसका भी रीजन यही था, क्योंकि उस समय एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस था, कांग्रेस ने एक पार्टी थी, इसीलिए उसने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया। अगर रीजनल पार्टी जैसे अमेरिका का में स्टेट ऑटोनॉमी क्यों आई, कि वहां पे सारे स्टेट पहले स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने आपस में डिस्कस करके बनाया एक यूएसए तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने उस टाइप से बना दिया कि स्टेट को पावर मिले। यहाँ पे एक सिंगल पार्टी थी जो मेजोरिटी में थी, तो उसने इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर बने। दिस इज वन ऑफ द आर्गुमेंट दैट इज मतलब वेरी प्रोमिनेंटली गिवन इन रिसर्च पेपर्स, ठीक है। तो एक तो हमारा क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब बना, क्योंकि डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी था। जब सिंगल पार्टी रूल रही कांग्रेस की तो हम लिंग्विस्टिक स्टेट नहीं बना रहे थे, ये भी सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी का एक उदाहरण है, ठीक है। नेशनलाइजेशन किया गया उस समय, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। और उसके बाद अभी जब सिंगल पार्टी रूल है तो वन नेशन टाइप की चीजें कई सारी की जा रही है, वन नेशन वन आधार, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन इज बीइंग प्रपोज्ड, ठीक है। वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम, जीएसटी हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो अगेन दिस ट्रेंड इज इन वोग, ठीक है। ऑब्वियसली इस पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, अपन को रीजनिंग पे जाना है कि क्यों ऐसा होता है। रीजनिंग मोस्टली आपको अपने कॉमन सेंस से लिखना है, उसमें कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाली चीज नहीं है। द ओनली चैलेंज हियर इज कि आपको एग्जाम टाइम में बैठ के सोचना है। हम आपको अगर 2-3 लोगों को बिठा दें तो डेफिनेटली सब लोग जो है बहुत सारे पॉइंट खोज लोगे, ठीक है। तो थोड़ा हमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचना है। तो पहला स्ट्रक्चर तरीका यही है कि सेंट्रल पार्टी जो नेशनल पार्टी है वो कभी ना कभी सेंटर पे आएगी पावर में, वो ये सोच रही है, इसलिए वो क्या चाहेगा कि सेंटर के पास ज्यादा पावर हो, जहां पे वो पावर में आएगा। जो रीजनल पार्टी है वो कहां पावर में आएंगे, स्टेट में, तो वो चाहेंगे कि स्टेट के पास ज्यादा ऑटोनॉमी हो। अब ये एक बेसिक मुद्दा यही है जो दोनों चाहते हैं कि उनके पास पावर हो। अब इसी के फर्दर इलोंगेशन है बाकी जो सारे पॉइंट हैं। जब आप वो सेंटर में पार्टी में आएगा पावर में, डेफिनेटली कुछ स्टेट में पावर में नहीं होंगे तो वो चाहेंगे कि वहां हम एक्सपेंड करें। उसके लिए अगर सेंटर की जो एजेंसीज हैं, सेंटर के जो स्कीम्स हैं, वो उसकी मदद कर सकती है। जैसा होता ही है ना, मतलब बंगाल के लिए या बिहार के लिए कितने स्कीम्स अनाउंस किए गए थे। बिहार में मोदी जी गए, बोले कि कितने का पैकेज चाहिए, 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, बिड लगाई जा रही थी, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूज कर रही थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होता तो कहां से अनाउंस करती हो पार्टी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंड करने में उसको यूज करेगी। जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वो
सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छे से काम करने दे, इसके लिए भी वो चाहेगी कि सेंटर स्ट्रांग हो। इसका रिवर्स ट्रू हो जाएगा रीजनल पार्टीज के लिए, तो रीजनल पार्टी रन कर सके, सेंटर उनको हैम्पर ना करे एडमिनिस्ट्रेशन को, वो अपने स्कीम चला सके, वो अपने लेजिस्लेशन ला सके। ठीक है, यही सारे आर्गुमेंट करने हैं। ठीक है, तो जितने आप आर्गुमेंट सोच पाए हो सोच लो, बाकी सारी चीजें कुछ यहाँ से लिख लो। एक और भी चीज है कि नेशनल पार्टी जो होती है उनको सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट पे भी ध्यान देते हैं, इनवेरिएबली उनके एजेंडे में ये होता है। रीजनल पार्टीज के एजेंडे में रीजनल इश्यूज होते हैं ज़्यादा प्रोमिनेंटली। हम ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ वही होता, हो सकता है आप प्रोमिनेंट वर्ड यूज कर लो यहाँ पे। ठीक है, और वो डेफिनेटली सेंट्रलाइजेशन से सिक्योरिटी और स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट ज़्यादा बेहतर डील किए जा सकते हैं, इसलिए वो सेंट्रलाइजेशन को फेवर करते हैं। या जम्मू कश्मीर का आप एग्जांपल दे सकते हो। ठीक, वो तो चाहेंगे ही ना कि रीस्ट्रक्चर करने की पावर स्टेट को सेंटर के पास रहे। डेफिनेटली स्टेट नहीं चाहेगा आज मैं फुल स्टेट का चीफ मिनिस्टर था, कल आधे स्टेट का रह जाऊंगा, तो आई वुड डेफिनेटली नॉट लाइक इट। या अर्नब इज सेइंग कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ ज्यादा नेगेटिव बोलना नहीं चाहिए। यस, आई वुड एग्री विद दैट। डेफिनेटली रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी इसलिए है क्योंकि ज्यादातर लोग उसको लाइक कर रहे हैं, तो ज्यादातर एग्जामिनर भी उसको लाइक कर रहे होंगे। ठीक है, बट आप एक फैक्चुअल रैशनल नेगेटिव चीजें लिख सकते हो। ठीक है, अब रिफॉर्मुलेशन ऑफ ऑर्डिनेंस के एग्जांपल में, या ऑर्डिनेंस का अगर एग्जांपल आएगा तो हम वही ऑर्डिनेंस देंगे ना जो रिसेंट टाइम में हुए हैं। हमें कांग्रेस का ऑर्डिनेंस तो उठा के नहीं लाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी उसके नेगेटिव नहीं बोलना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव तरीके से बोलना है। ठीक है, फिर नेशनल पार्टीज को एक चीज और भी होती है, क्योंकि वो कई सारे स्टेट में है। ठीक है, तो उसको अपने अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा सेंट्रलाइजेशन लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो पार्टी खुद बिखर जाएगी। तो जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी की कमी है, जो सेंट्रलाइजेशन है, वो डेफिनेटली पैन इंडिया जो है उसके स्ट्रक्चर में भी दिखता है, उनके विचारधारा में भी वो दिखता है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्मिटी फेवर करते हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल की पार्टी है जैसे कि यूसीसी है, तो सिमिलरली ये सेंट्रलाइजेशन में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, किसी पॉइंट को समझने में अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन टेल। हाँ, ये जरूरी है कि कुछ ना राइट साइड में आप कुछ एग्जांपल दो। अगर आपने सिर्फ लेफ्ट साइड वाले पॉइंट लिख दिए हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट, दैट्स नॉट अ गुड आंसर। कुछ ना कुछ आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे, कुछ स्कीम्स के, कुछ एजेंसीज के एग्जांपल होने ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपस स्कीम्स के जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, जो पैकेज दिए जाते हैं, वो सब मशीनरी का ही तो पार्ट है। सीबीआई को मत लिख लो अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने दो ऐड किए, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI तो लिख ही सकते ना, मतलब वो जो हाईवे बना रहे हैं, हाईवे वहीं से हम बनाएंगे जहाँ से हमको जो है अगला चुनाव लड़ना है, वही अनाउंस किया ही जाता है। सारे रेलवे जो है मिनिस्ट्री ऐसे ही हमेशा से रेलवे यूज हुई है, जहाँ इलेक्शन हो रहा होता है वहाँ पे अनाउंस कर देते हैं यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी, ये लगेगी, एक्चुअली में कभी लगती भी नहीं है कई सारी। ठीक है, रेलवे लिख दो यहाँ पे, रेलवे बहुत प्रोमिनेंटली मिसयूज हुआ है पॉलिटिकल रीजन से। ठीक है, SEZ पे अगर क्वेश्चन आया ना, SEZ एरियाज इनवेरिएबली पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ही डिसाइड किए गए हैं, और वो ही रीजन है SEZ का इंडिया में फेल होने का। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, जो एक क्या बोलते हैं ऑक्सफोर्ड के रिसर्च में आई थी, कि सबसे बड़ा रीजन ये है कि पॉलिटिकल कंसिडरेशन से लोकेशन चूज किए गए SEZ के इंडिया में। जो होता है अपने देश में यही चलते ही हैं। हाँ, सारे एम्स हम कहाँ बनाएंगे तो जहाँ जहाँ हमारी सरकार है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, रीजनल पार्टीज कैसे स्टेट ऑटोनॉमी को फेवर करती है। रीजन तो यही है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर चाहेंगे, और अगर सेंट्रल इंटरफेरेंस करेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। फिर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहेंगे ताकि वो अपनी स्कीम लॉन्च कर सकें। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे कि एक ना अच्छा एग्जांपल कल परसों ही पेपर में आया था, जो इंदिरा कैंटीन स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, वो बंद हो गई है बिकॉज फंड नहीं मिल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंदिरा कैंटीन जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे बंद पड़े हैं। ठीक है, फंड नहीं है इसलिए।
तो ये आप अच्छा एग्जांपल दे सकते हो कि उनके अपने स्कीम चला पाएंगे अगर उनके पास पैसा होगा, अदरवाइज वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ही चलाते रहेंगे सिर्फ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम होगा उसमें, तो उसमें हर जगह तो मतलब वैक्सीन भी लगती है तो उसमें आ जाता है प्राइम मिनिस्टर का फोटो, तो उनका एजेंडा तो नहीं फर्दर होगा ना जो रीजनल पार्टीज हैं। अब टैक्सेशन में जैसे सिंपली वन नेशन वन टैक्स कर दिया तो उनके जो ऑप्शंस थे कि कुछ इनोवेटिव टैक्सेशन लगा सकें वो उनके पास से चला गया। फिर सिविल रूल्स में जो वेस्ट बंगाल का डिबेट है, आप चीफ सेक्रेटरी का एग्जांपल भी दे सकते हो, या फिर सिंपली कि स्टेट डेपुटेशन में जो नया रूल्स है ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर के, उसका एग्जांपल दे सकते हो। पॉइंट ये है कि कुछ इलेबरेशन, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल साथ में होना चाहिए। लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी, वीटो लग जाता है, वो एक प्रॉब्लम है। और रीजनल आइडेंटिटी, हाँ एक और भी चीज़ है कि कई सारे रीजनल पार्टीज रीजनल इशूज पे बने हुए हैं, रीजनल आइडेंटिटी पे बने हुए हैं, तो वो अगर स्टेट ऑटोनॉमी रखेंगे तो उन इशूज को जिंदा रख सकते हैं, उससे उनका सर्वाइवल डिपेंडेंट है। जैसे कि महाराष्ट्र के जो मनसे है, शिवसेना है, ये अगर मराठी इशू उठाना बंद कर दें तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, तो अगर सेंट्रलाइज करके हम ऐसी चीज़ों को खत्म कर दें, सेंट्रलाइजेशन हो जाए सारी चीज़ों में, जिसकी आप ऐसे मुद्दे नहीं उठा सकते, ठीक है, उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और ये सारी चीज़ें हैं कि परसिक्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट से बचाने वाला, रीजनल इलेक्टोरेट डिमांड, नीट इशू इन तमिलनाडु, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी पॉइंट तो आप सोच ही लोगे, हर पॉइंट के साथ आप एग्जाम्पल दे रहे हो कि नहीं, यही है यहाँ पे चैलेंज। नहीं डिपेंड, ये कमीशन तो आप लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको उसका पॉइंट क्या। आप अगर सिर्फ ये लिख रहे हो कि तमिलनाडु ने राजमन्नार, हाँ तो आप ये इस पॉइंट में वो एग्जांपल दे दो, जैसे लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी या फिर पॉलिसी ऑटोनॉमी करके आप एक पॉइंट बना दो, ठीक है, कि उसके हिसाब से उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है, एक पॉइंट दे सकते हो, रीजनल पार्टीज फेवर करती है उसको, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि थोड़ा सा इसका हमें काउंटर आर्गुमेंट भी देना चाहिए, कमेंट करने के लिए बोला है ना, और जो फैक्ट भी है कि कभी कभी रीजनलिज्म को या फिर स्टेट ऑटोनॉमी को सेंट्रल पार्टी या नेशनल पार्टीज भी फेवर की है। तो एक रिसेंट एग्जांपल बताओ। क्या है, थोड़ा इलेबोरेट करो। हाँ मतलब ये जो जितने अकॉर्ड किए गए थे उस समय, ठीक है, वो सारे अकॉर्ड में more power has been ceded to the regional party and all these accord had been done by the directly by the central government, ठीक है। एक तो ये अकॉर्ड है, रिसेंटली 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें आपने स्टेट को पावर दी, सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट दे दिया था कि सेंटर के पास सिर्फ पावर है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर अमेंडमेंट करके स्टेट को पावर दिया, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन इंस्टांसेस व्हेन अपोजिट हैज आल्सो हैपेंड, and then some regional parties can also have national aspirations, कि वो थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो उनके जो मैनिफेस्टो होंगे उसमें नेशनल इश्यूज रहेंगे, ठीक है। एंड देन ऐसा नहीं है कि रीजनल पार्टी डिसेंट, यहाँ पे एक और चीज़ है अभी मुझे याद आया, जो पिछला वाला पार्ट होगा, एक बंदे की कॉपी में देख रहा था, उसमें उसने हम पहले वाले पार्ट में वर्ड यूज किया हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट अपने दिमाग में आता है डिसेंट्रलाइजेशन, तो उसने अगले वाले पार्ट में हेडिंग ये दे दिया कि रीजनल पार्टी फेवरिंग डिसेंट्रलाइजेशन। दैट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू, वहां पे सिर्फ स्टेट ऑटोनॉमी की बात की जा रही है, क्योंकि एज ए रीजनल पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर कोई नहीं, एवरीवन वांट्स डेलीगेशन ऑफ पावर अप टू हिज लेवल, ठीक है, वो डेलीगेशन ऑफ पावर कोई नहीं चाहता, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी में किसी को भरोसा नहीं है, सब चाहते हैं कि हमको पावर मिले। सो ओवरऑल डिसेंट्रलाइजेशन के फेवर में वो नहीं है, क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं किए गए हैं लोकल बॉडीज को, ठीक है। तो अब इन्हीं के बेसिस पे हमारा एक ओवरऑल कंक्लूजन टाइप का आएगा, कमेंट, अपना कमेंट आपको देना है, ठीक है। तो योर कमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन व्हाट एवर एनालिसिस यू हैव डन इन द क्वेश्चन, ठीक है। एनालिसिस में मोस्टली हमने फेवर किया है कि ये स्टेटमेंट सही है,
और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे अपने स्टांस डिसाइड करती है, ठीक है। अब हम इसमें साथ में एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि लेकिन उनको स्टांस पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बजाय प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी के बेसिस पे लेना चाहिए। तो इस टाइप से एक अपना लाइन आप डाल सकते हो, एक जो है ओवरऑल कंक्लूजन टाइप डाल सकते हो। मैं तो बोलूंगा कि हर क्वेश्चन में करना चाहिए आपको ब्लूप्रिंट में, लेकिन आपको ना पॉइंट नहीं सोचने हैं, आपको ना ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हेडिंग आप लिखने वाले हो ये ब्लूप्रिंट हर क्वेश्चन का तैयार करना चाहिए। पॉइंट आप लिखते लिखते सोच जाओगे, ठीक है। एक आध पॉइंट सोचो ज्यादा से ज्यादा, बाकी पॉइंट तो लिखते लिखते ही आपको सोचना होता है। एक लिख रहे हो तो तब तक दूसरा दिमाग में आता है और यूजुअली फ्लो करती हैं चीजें। मतलब एक बार में आप बैठोगे ना कि मैं तुरंत सोच लूँ 4-5 पॉइंट, तो सोच ही नहीं पाओगे, 1-2 ही याद आते हैं, फिर आप लिखते लिखते 2-3 पॉइंट बना लेते हो, ठीक है, कुछ याद आ जाते हैं। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर सोच के ही शुरू करना चाहिए, और स्ट्रक्चर और स्पेशियल एलोकेशन कि कौन से पार्ट को कितने पेज में मैं लिखूंगा। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट में देखा हूँ वो पहला पेज जब लिखना शुरू करेंगे ना तो ऐसे एकदम फैल फैल के लिखेंगे, ठीक है, कि उनका इंट्रोडक्शन में आधा पेज खत्म हो गया और कुछ और अगला हेडिंग देते रहते वो पहला पेज में कुछ शुरू ही नहीं हुआ। 3 पेज का क्वेश्चन है, उनको लग रहा है कि उनके पास कंटेंट नहीं है, पहले पेज में फैल रहे हैं, दूसरे पेज में जो है पहला पार्ट एड्रेस किया और फिर तीसरे पेज में उन्होंने दूसरा तीसरा कंक्लूजन सब कुछ लिख दिया। This simply shows that you cannot manage your resources. You are not fit to be an IAS. If I am using a harsh word, ठीक है, ये मैनेजमेंट आपको सीखना है ना, अल्टीमेटली तो मैनेज ही करना है आपको IAS बन के। हाँ, आप प्लान नहीं कर रहे हो, सिंपली प्लानिंग का इशू है। हमें प्लान करना चाहिए चलने से पहले। एक IAS को यही करना पड़ेगा, इसीलिए वो सब्जेक्टिव पेपर पे अड़े हुए हैं ना यूपीएससी वाले। अगर उनको सिर्फ नॉलेज चेक करना होता तो वो ऑब्जेक्टिव पेपर साथ ले लेते, या एक पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव पेपर डिटेल में टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो सब्जेक्टिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उससे और भी बहुत सारे ट्रेट आपके दिखते हैं, ठीक है, अदर देन योर नॉलेज। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Critically examine the procedure through which the President of India and France are elected. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबने लिखा होगा, नहीं लिखा? ये पहला चैलेंज इसमें आया कि फ्रांस का तो पढ़ा ही नहीं था, बट एक्चुअली वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर आपने नहीं, मैक्रोन लास्ट ईयर हुआ था, इस साल तो नहीं हुआ था ना। और ऐसे भी फ्रांस का मतलब फ्रांस का इलेक्शन होता है तो वो हमारे लिए बड़ी न्यूज नहीं होती, जिस दिन वो इलेक्ट हो जाता है उसी दिन सिर्फ न्यूज में आता है। हाँ, और अगर नहीं भी हुआ है, ठीक है, इतना तो गेस आप कर ही सकते हो ना कि फ्रांस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि फ्रांस का हमेशा प्रेसिडेंट ही आता है अपने पास, वही दोनों हमेशा मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते हैं, ठीक है। एक बार अगर हमें पता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो कुछ तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म वाली चीजें होगी ही, डायरेक्ट इलेक्शन तो होगा ही, ठीक है, वो अकाउंटेबल नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होंगी। अब आप उस पे बेसिस कुछ लिख सकते हो। तो अगर नहीं एग्जैक्टली पढ़ा था तो दिस इज हाउ यू शुड गो, ठीक है। हाँ, और मान लो इतना नहीं चला तब भी आपको इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन लिखना था और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। नाउ जो पेज फंसता है वो क्रिटिकली एग्जामिन में फंसता है, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन का क्या मतलब होगा बताओ, गेस करो। एक्सरसाइज ऑफ इलेक्शन तो होना ही चाहिए, मतलब ये कैसे इशू है? हाँ, जो प्रोसीजर है हमारे यहाँ अलग है, उनके यहाँ अलग है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो प्रोसीजर है वो क्यों है और उसमें क्या गड़बड़ है, उनके यहाँ जो प्रोसीजर है वो क्यों है और क्या गड़बड़ है, ये एनालिसिस आपको लिखनी है। सिर्फ अगर प्रोसीजर लिख दिया, कई लोगों ने प्रोसीजर में एकदम डिटेल में लिखा है, ठीक है, कि एक वोट की वैल्यू क्या होती है एमएलए की, एक वोट की वैल्यू क्या होती है एमपी की, ठीक है, लिख सकते हो आप, क्या स्पेस परमिट करता है लिख सकते हो, लेकिन इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ दैट एनालिसिस। दैट एनालिसिस के ज्यादा नंबर हैं, प्रोसीजर याद करना तो लेमैन का काम है,
ठीक है, इसीलिए उन्होंने वो क्रिटिकली एग्जामिन वर्ड यूज किया। नहीं, ठीक है, देखते हैं। इसमें ना आपको अपने मन से ही देना पड़ेगा। जैसे एक हेडिंग जो मैंने जो दिया है शायद एनालिसिस ही दिया है, ठीक है, या आप मेरिट एंड डिमेरिट भी दे सकते हो, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि रैशनल बिहाइंड दिस सिलेक्शन दिस प्रोसीजर। हाँ हाँ, मतलब करंट सिस्टम तो दोनों का करंट ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सिंपली रैशनल बिहाइंड द सिस्टम या जो भी प्रोसीजर है। यहाँ पे यूपीएससी ने प्रोसीजर वर्ड यूज किया तो हम भी प्रोसीजर कर लेंगे। वन एक तरीका तो है कि कुछ दिनों बाद हम लोग अपना एक डॉक्यूमेंट रिलीज कर देंगे, वैसे ही किसी और ने ऑलरेडी रिलीज कर रखा हो तो उससे पढ़ लो, ठीक है। हाँ, और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ ना कि आपको यही करना पड़ेगा, एक ना माइंड मैप बनाते जाओ, विच आर द इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसीज, ठीक है, और कहाँ पे कौन से सिस्टम है सबका। अब उन्होंने अभी तो चलो अभी यूके और यूएस और फ्रांस तक गए हैं, ठीक है, अब वो जो दूसरे और डेमोक्रेसी से पूछने लगे तो हम कहाँ तक तैयार करेंगे। उन्होंने एग्जैक्टली ये सिंपली अनएंडिंग है। अनफॉर्चुनेटली अभी यूपीएससी भी उतना नहीं अंदर गई है, ठीक है, और जहां भी जाएगी एक पार्ट तो इंडिया का पूछेंगे ना, वो तो अपन डिटेल से आंसर कर नहीं पाएंगे। और दूसरा ना माइंड मेकअप करते जाओ कि यूके में किस टाइप का सिस्टम है, ठीक है, यूएस में किस टाइप का सिस्टम है। यूके यूएस तो तैयार करना ही चाहिए आपको डिटेल में, वहां तो आप कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द फीचर अपन को पता भी होता है, ठीक है। और फिर जो है जैसे जैसे जहाँ का प्रेसिडेंट वगैरह जाएंगे थोड़ा सा आइडिया लो कि कहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। जैसे श्रीलंका है, वहाँ पे मतलब न प्रेसिडेंशियल है ना ही प्राइम मिनिस्टेरियल है, वो बीच का सिस्टम है एक, तो वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा जब वो इशू आया तो। और एक वो चीज़ जो है अपना कि हमने कहाँ से क्या क्या चीज़ बोरो किया है वो एकदम याद करके जाना है। वो यूजुअली हम लोग प्रीलिम से पहले याद करके जाते हैं, मेन से पहले भी उसको याद करके जाना है, वो हेल्प कर सकती है। अगर ओवरऑल एक मोटा मोटी क्वेश्चन आ गया तो वहाँ से भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है। बट एक चीज़ मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जा कर के सारे डेमोक्रेसीज रटने लग जाएं, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर एक आध क्वेश्चन उस टाइप का आ गया और जिसका आधा पार्ट आपको छोड़ना पड़ गया तो कोई बात नहीं, वो वर्थ टेकिंग द रिस्क है। क्या? हाँ एग्जैक्टली ना, मतलब जो गति तोरा सो गति मोरा, सब लोगों की हालत एक ही जगह पे है, तो फिर अपन उसमें टेंशन नहीं लेंगे। हाँ लेकिन अगर यूएस और यूके आ गया और वो आप नहीं कर पाए तो वहाँ पे बाकी लोगों के पास एडवांटेज आ जाएगा, आप लूज कर जाओगे। तो ये दो डेमोक्रेसी से अपना कंपैरिजन हर एस्पेक्ट में, लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट में, एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में हमें तैयार करना है। हाँ वही, वो इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म डिफरेंट, तो वो भी एक्चुअली वो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा सेकुलरिज्म कैसे अलग है। और ऊपर से वो फ्रांस में उस समय जो चीज़ें हुई थी, उनके अटैक वगैरह जो हुए थे, चार्ली हेब्डो पे जो अटैक हुआ था वो उस कंटेक्स्ट में आया था, तो वो चीज़ न्यूज़ में थी और वो अच्छे से लोगों को प्रिपेयर्ड थे उस समय, ठीक है। हम बिल्कुल पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अलग टाइप का क्वेश्चन था, वो ऐसा नहीं था कि इंडिया फ्रांस पे पूछा जा रहा है, ये अलग टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो सब लोगों को पता होगा। एक ही स्पेशल एस्पेक्ट है जो हमें नहीं पता होगा, जो स्पेशली हम फ्रांस पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, दैट इज रन ऑफ वोटिंग। पता है किसी को रन ऑफ वोटिंग क्या होता है? चलो देखेंगे, फ्रांस वाले पे आएंगे तो पहले तो अपन इंडिया वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है, इसमें कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, ठीक है, वोट की वैल्यू भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और जितना डिटेल आपको याद है, कुछ लोगों ने ये भी लिख दिया है कि कितने कैंडिडेट, 50 कैंडिडेट चाहिए सेकंड करने के लिए, ठीक है। बाकी जितना भी उतना मुझे लगता है कि उतना नहीं लिखना चाहिए, आपको एनालिसिस पे जाना चाहिए रादर देन गोइंग इनटू दोज डिटेल।
हमें इस पे जाना चाहिए। फैक्चुअल चीज़ों के उतने नंबर मिलेंगे नहीं। इसको तो नोट करने की ज़रूरत है नहीं, एनीवे लक्ष्मीकांत में है, तो अपन तेजी से आगे बढ़ते हैं। रैशनैलिटी, ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड व्हाट एवर सिस्टम वी हैव अडॉप्टेड, ये अब आप लोग बताओ। इनडायरेक्ट इलेक्शन हमने किया, क्या लॉजिक है इसका? यस, अब आप एक नॉमिनल हेड बना रहे हो किसी को और उसके लिए आप पूरे देश में से इलेक्ट कराओ, और वो देश से चुनाव लड़के आएगा तो डेफिनेटली फील करेगा आई एम पावरफुल, और उसको पावर कुछ नहीं दोगे तो ये तो एनोमली हो जाएगी, ठीक है। और फिर ऊपर से यही है, दो लोग जो है पूरे देश भर में चुनाव लड़के आएंगे, एक प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, प्रेसिडेंट भी आएगा, तो दोनों लड़ेंगे आपस में, हम भी पावरफुल, ठीक है। वो सिंपली ऐड एंड एडवाइस से काम ही नहीं करेगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि उस समय तक ये क्लियर नहीं था ना, तब तक ये लिखा हुआ नहीं था कि प्रेसिडेंट हैज टू ऐड एज पर ऐड एंड एडवाइस, ठीक है। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद यही इंटरप्रेट करते थे कि मुझे अपना दिमाग लगाना है, जहां कहीं भी लगेगा मेरा दिमाग, ठीक है। तो वो डिबेट होता था, इसलिए सिस्टम ये रखा गया है कि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का क्या फायदा है? इसका फायदा यह है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द वोट लाना होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो सबसे ज्यादा वोट ले आता है, 30% भी ले आया तो जीत जाएगा, यहां ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर वोटिंग दोनों एमपी और एमएलए से क्यों कराई जाती है? क्योंकि हमारा फेडरल सिस्टम है, तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब हर लोगों को लगना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेरा भी रोल था, और स्टेट को भी लगना चाहिए, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि अगर आपने सिर्फ सेंटर से इलेक्शन करा लिया होता पार्लियामेंट से, तो डेफिनेट सी बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता उसका कोई बंदा बन जाता, ठीक है। तो वो जो एक प्रेसिडेंट का रोल था कि प्रेसिडेंट चेक करे सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो रोल फिर कभी एक्सरसाइज में ही नहीं हो पाएगी। कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे जो अपना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, ये इट्स ए मिसनोमर, इट्स एक्चुअली नॉट ए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि एक ही आदमी को चुनना है, ठीक है। और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वाले सिस्टम पे फॉलो नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो आप वोट करते हो उसमें आप मल्टीपल को वोट करते हो, सिंगल को वोट ही नहीं करते। देन इट्स ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। और दूसरी चीज यही है कि आम आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये पूरा अफेयर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज मैनेज करती है। इसके लिए हालांकि व्हिप इज नॉट एप्लीकेबल, बट स्टिल व्हिप इज इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो एज सच ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है इलेक्शन का, ठीक है, लिख लिया। सीक्रेट बैलेट होता है या फिर ओपन बैलेट होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन? सीक्रेट बैलेट, ठीक है। तो इसीलिए अभी आपने ध्यान दिया होगा, तो जो अपोजिशन के कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, उन्होंने बोला था कि पार्टी लाइन से लोगों को हट करके वोट करना चाहिए। ओपन बैलेट में तो संभावना ही नहीं है ना, हाँ, और पता चल जाएगा तो आप कैसे हट के करोगे, ठीक है, आपको निकाल दिया जाएगा आपको नहीं, 10th शेड्यूल में तो नहीं आएगा, बट स्टिल आप नहीं कर सकते ना, ठीक है। दूसरा, फ्रांस में क्या होता है, एक तो ये है डायरेक्ट होता है, यूनिवर्सल सफरेज के थ्रू होता है। एक और मजेदार चीज है फ्रांस में कि आपको 50% से ज्यादा वोट लाने पड़ेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं, वहां पे है 2 राउंड सिस्टम। मान लो 10 लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव अपने खड़े होंगे। मान लो किसी को भी 50% नहीं आया, तो जो टॉप 2 कैंडिडेट होंगे उनके बीच में दोबारा इलेक्शन होगा। तो अब तो किसी न किसी को मेजोरिटी आ ही जाएगी, जब 2 ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो, ठीक है। इसको अपन रन ऑफ सिस्टम भी बोलते हैं,
लिख लो, ये की टर्म है, प्रीलिम्स में आ सकता है। जब कोई भी सिक्योर नहीं करता है रन ऑफ वोटिंग, ठीक है, तो सेकंड राउंड कराया जाता है। सेकंड राउंड में जो मेजोरिटी आ जाता है वो बंदा प्रेसिडेंट बन जाता है। नाउ दिस 2 राउंड वोटिंग या फिर रन ऑफ सिस्टम, ये आइडिया आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में भी दे सकते हो, ठीक है। इफेक्टिवली क्या होगा, मान लो अगर जो टॉप 2 में बंदा आ रहा है उनमें से एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, तो डेफिनेटली मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब उन दोनों के बीच में सिर्फ इलेक्शन होगा तो दूसरे वाले को चूज करेंगे, क्योंकि देयर वर 5 कैंडिडेट, तो मैंने हो सकता है 5वें को, चौथे को, तीसरे को वोट दिया था, अब मुझे पहले 2 में ही चूज करना है, तो मैं डेफिनेटली एक के अगेंस्ट जाऊंगा ना, जो बंदा क्रिमिनल एंटीसीडेंट का होगा। तो क्रिमिनल पीपल फाइंड इट इजी टू विन इन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो क्रिमिनलाइजेशन का एक रीजन इंडिया में ये भी है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, तो ये एक अल्टरनेटिव सजेशन दिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप वहां पे भी यूज कर सकते हो। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हर दूसरे साल आता है, इस साल नहीं आया तो अगले साल हाई प्रोबेबल है ये क्वेश्चन भी आएगा। रैशनैलिटी फ्रांस वाले में क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन है, उससे फायदा, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्मॉल पॉपुलेशन है, तो आप डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करा सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल सफरेज का फायदा क्या है कि होल कंट्री रिप्रेजेंट होगा, राइट टू इक्वलिटी है हर सिटीजन के पास। डबल वोटिंग का फायदा क्या हुआ कि मेजॉरिटी सपोर्ट मिलेगा, एंड इट्स आल्सो ए काइंड ऑफ राइट टू रिजेक्ट, ठीक है। माइल्ड फॉर्म ऑफ राइट टू रिजेक्ट है, एब्सोल्यूट फॉर्म में तो होता कि ये दोनों मतलब नोटा टाइप की कोई सिस्टम होता, बट दिस इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ राइट टू रिजेक्ट वेयर पीपल कैन रिजेक्ट वन कैंडिडेट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शंस। इसका डिमेरिट क्या है, जो अपने वाले का मेरिट है उसके वाले का डिमेरिट है। अपने वाले का एक बड़ा मेरिट ये था कि बहुत ही टाइम सेव होता है, कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक, कोई कंपेयरिंग नहीं होती है। वहाँ पे वही चीज़ डिमेरिट है कि बहुत ही टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग है। वहाँ पे वो प्रेसिडेंट का एक नेशनल लेवल पे इलेक्शन अलग से कराते हैं, फिर लेजिस्लेचर का अलग से इलेक्शन कराते हैं। हाँ, हमारे यहाँ एक ही होता है, उसी से प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं और उसी से लेजिस्लेचर भी बन जाता है। हाँ, नहीं तो फिर डिबेट होते रहेगा, ठीक है। तो एक ये भी है कि कई बार नहीं भी हो पाता है ये। तो जैसे यूएसए में हम लोग देखते हैं अक्सर, यूएसए में कांग्रेस ने जो है बिल नहीं पास किया, ओबामा केयर का जो फंड नहीं हो रहा था, मेक्सिको का इनका जो है दीवार बनाने का जो था वो फंड नहीं कर रही थी कांग्रेस। तो इस टाइप का लॉकडाउन हमारे यहाँ नहीं होता, ठीक है। फिर हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रियल टाइम में अकाउंटेबल होते हैं पार्लियामेंट को, ये नहीं होता। एक बार वो चुन लिए गए तो अपने पूरे टेन्योर में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर उनको सॉर्ट ऑफ होता है, सिर्फ वो इम्पीच किए जा सकते हैं। ठीक है, देन कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में बेसिकली इसी एनालिसिस पे अपन को कुछ बातें लिख देनी है। अब हमने 2 डेमोक्रेसीज में कंक्लूड किया है, तो कुछ इस टाइप की बात लिखनी है कि दोनों ने अपने अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अपना अपना सिस्टम बनाया है, ठीक है। हमने जो डिमेरिट लिखा है वैसे हमने प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करी है कि हमें उसका सॉल्यूशन देना है, और सॉल्यूशन हो देना भी नहीं ना, मतलब वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया क्या ही सॉल्यूशन देना है, ठीक है। It also reflects the constitutional position of office of president in 2 countries, ठीक है। तो इस टाइप का थोड़ा सा स्पेसिफिक कुछ एनालिसिस जो कि डिफरेंट हो आपके बॉडी से, बॉडी की चीज़ रिपीट नहीं करनी है। इन सारे में एक प्रॉब्लम यही होती है कि हमने बॉडी में लिखा होता है वही चीज़ हम फिर से लिख देते हैं, वो अवॉइड करना है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन आ गया है क्या? शायद आ गया ना, यूके के जुडिशरी पे क्वेश्चन आ गया है ना। अभी यूएस के जुडिशरी पे आना बचा हुआ है, ठीक है। तो यूएस के जुडिशरी, यूएस का लेजिस्लेचर वो भी नहीं आया अभी। यूएस का लेजिस्लेचर के ज़्यादा चांस है, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, इंडिया से डिफरेंट ज़्यादा है वो, तो वो तैयार करो। यूएस कुड बी द नेक्स्ट हॉट फेवरेट।
नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो 15th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ये इस बार ना रोल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है यूपीएससी का। डिस्कस द रोल ऑफ, कल के क्वेश्चन में भी था, दो क्वेश्चन थे रोल पे। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जैसे ही डिफरेंट बॉडीज़ के क्या क्या रोल हैं उसको हमें तैयार करना है। तो पहले रोल आपको याद करने पड़ेंगे, फिर वो रोल में कहाँ फेल हो रहे हैं और कहाँ सक्सीड कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। अब देखो इसमें यही है कि इन द लाइट ऑफ द इवोल्यूशन पूछा गया है। एक्चुअल क्वेश्चन यही है कि डिस्कस द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एमसीसी। तो हमें एमसीसी के कंटेक्स्ट में उनका रोल बताना है। अब इसमें उन्होंने वर्ड ऐड कर दिया है कि इवोल्यूशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें इवोल्यूशन डिस्कस करना है पर से। ठीक है, व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप शुरू में जो इंट्रोडक्शन दे रहे हो वहां पे थोड़ा सा इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्योंकि डिस्कस द इवोल्यूशन नहीं बोला गया है। ठीक है, उस कंटेक्स्ट में हमें डिस्कस करना है रोल इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, तो थोड़ा सा व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आपको शुरू में ब्रीफली बताना चाहिए कि इवोल्यूशन एमसीसी का हुआ कैसे है, इन केस यू नो इट। इफ यू डोंट नो इट देन यू विल हैव टू लीव इट। ठीक है, तो मैं आज आपको बता दूंगा, आज लिख लो, क्योंकि बट चांसेस यही कम है ना कि एज इट इज फिर से दोबारा वो इवोल्यूशन पूछें। ठीक है, तो ये ज़्यादा यूटिलिटी आएगा नहीं आपको। ठीक है, और थोड़ा सा आपको बताना चाहिए कि ये इवोल्यूशन कैसे हुआ है। कुछ चीजें लेकिन डेफिनेटली आपको पता होगी। हाँ, शुरू केरला से हुआ था, हो सकता है ये पता हो। नहीं पता हो तो ये तो पता ही था कि टीएन सेशन ने इसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया था। ठीक है, उससे पहले भी था बट वो इफेक्टिव नहीं होता था। ठीक है, फिर ये एक चीज बताऊंगा आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास प्लेनरी पावर है। ठीक है, जिसके थ्रू वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करा सकता है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू उनको पावर आया। फिर रिसेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इलेक्शन कमीशन को कि आप फ्रीवीज पे डूज एंड डोंट्स बनाइए। ठीक है, तो दिस कुड ऑल्सो, आप इवोल्यूशन में लिख रहे हो कि आप फ्रीवीज भी जो है नेक्स्ट टाइम इंक्लूड हो जाएंगे। इससे पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो से रिलेटेड चीजें इंक्लूड की गई थी 2010-11 में शायद। ठीक है, तो दीज आर समथिंग, इनमें से कुछ तो बिट्स एंड पीसेस में आपको पता ही होंगे, वो कुछ चीजें आपको इवोल्यूशन के नाम पे लिखनी चाहिए थी। ठीक है, ओवरऑल द शुरुआत आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से आप कर सकते हो। इट्स अ सेट ऑफ गाइडलाइंस ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। कुछ भी जो भी आपको डेफिनेशन समझ में आए वो ऑन द स्पॉट ही बनाना है। वन ऑफ द डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, कोई जरूरी नहीं कि आप यही डेफिनेशन लिखो। और इन सब बेसिक चीज़ों का डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ऑन द स्पॉट ही कुछ कीवर्ड बस आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बनाया है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, इट्स ए कंपाइलेशन ऑफ गाइडलाइन, डूज एंड डोंट्स, इसको बना देना है ऑन द स्पॉट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, कि पर्सनल लाइफ पे आप कमेंट नहीं करोगे, रिलीजियस भावनाओं को नहीं भड़काओगे, आप जो है गवर्नमेंट मशीनरी का यूज नहीं करोगे, कोई भी 2-3 जो भी आपको समझ में एग्जाम्पल होना चाहिए। एक और थंब रूल है, अगर हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो डेफिनेटली एग्जाम्पल साथ में आना चाहिए। हाँ, चाहे इंट्रोडक्शन में दो या कहीं भी दो, अगर आप डेफिनेशन दे रहे हो तो सब्सटेंशिएट करोगे। मान लो आपको किसी को समझाना है ये चीज क्या है, हमेशा ही आप एग्जाम्पल देते हो ना। ठीक है, इससे ये प्रूव होती है कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझते हो। हमें यही तो दिखाना है ना एग्जामिनर को कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझता हूँ। तो दिस इज ऑल्सो ए थंब रूल, अपन ये फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इवोल्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। शुरुआत हुआ था 1960 में, और केरला से जो शुरू हुआ था उसमें वो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने नहीं जारी किया था। दैट वाज द इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द केरला कि हम कुछ गाइडलाइन फॉलो करते हैं। तब तक बस इलेक्शन चल रहा था, सब लोग अपने तरीके से कंपेनिंग करते थे, अपने तरीके से। बस जो भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा हुआ है वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, क्योंकि उसके बेसिस पे तो इलेक्शन पिटीशन फाइल हो जाएगा। उसके अलावा कुछ भी कर रहे थे लोग। ठीक है, फिर उसके बाद 1968-69 के मिड टर्म इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने पहली बार एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया।
ठीक है, ये उन्होंने रिलीज किया था एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सेड कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैज इवॉल्व्ड थ्रू द कंसेंसस ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन, रादर इट इज अ आउटकम ऑफ deliberation and consensus between political parties, and now political parties themselves are not abiding by it. उन्होंने खुद ही मिलकर के इसको बनाया है और फिर वो खुद ही इससे एग्री नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, ये भी इसी इवोल्यूशन में हमें पता चलेगा। नाउ शुरू में जनरल सी बातें थी कि सब लोग कैसे नहीं करेंगे, और एक बड़ा जो प्रॉब्लम आना शुरू हुआ वो ये था कि जो लोग पार्टी ऑफ पावर में होती थी वो उन गाड़ीज का, डिफरेंट जो मशीनरी था उसका वो इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल गाड़ी मिली हुई है, गाड़ी सबसे बड़ा मुद्दा होता था उसमें, ठीक है। ऑफिशियल रेसिडेंस आपको मिला हुआ है, ऑफिशियल ऑफिस के बेरर आपको मिले हुए हैं जिसको आप जो है कंपनी में बता देते थे, ठीक है। तो ये मिसयूज होता था, तो इसीलिए एक डेडिकेटेड चैप्टर ऐड किया इलेक्शन कमीशन ने, चैप्टर 7 करके, कि पार्टीज इन पावर क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ से टसल शुरू हो गई, लेकिन तब भी टसल ज़्यादा नहीं था क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता था। इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया, इम्प्लीमेंट नहीं होता। 1991 में टीएन सेशन ने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, ठीक है। इसके बाद पहली बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में आफ्टर 1991। तो ये चीज आ गई थी 1960 में, लेकिन फॉर द 30 इयर्स इट वाज नेवर चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। बट यहाँ जब इलेक्शन कमीशन ने अपने पावर यूज करने शुरू किए तो फिर डिफरेंट गवर्नमेंट उसमें गई, वहां पे सुप्रीम कोर्ट फेवर्ड इलेक्शन कमीशन इन ऑल द जजमेंट्स, जितने भी आए हैं सब में। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्शन कमीशन हैज गॉट प्लेनरी पावर अंडर आर्टिकल 324। ठीक है, फिर थोड़ा और इवॉल्व हुआ है। 2001 में पहली बार इस डिबेट में, मतलब ये कोर्ट में कैसे किया था, तमिलनाडु गवर्नमेंट गई थी बेसिकली सबसे पहले। उसके बाद जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट बन के 2001 में सारी पॉलिटिकल पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिल करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एक फाइनल रूप दिया 2001 में। और फिर 2014 में इलेक्शन मैनिफेस्टो, 11 नहीं था 14 था, ठीक है। 2014 में इलेक्शन मैनिफेस्टो का चैप्टर ऐड किया गया। तो अभी देयर आर 8 चैप्टर्स इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। 7 इज अबाउट, 7 किसके बारे में था, अभी हमने देखा था ना, पॉलिटिकल पार्टी इन पावर क्या करते हैं, वो सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड है, ठीक है। 7 के बारे में इलेक्शन कमीशन ने पहले रिकमेंड किया था कि चैप्टर 7 को आरपीए एक्ट में शामिल कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने कभी भी पूरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के फेवर में नहीं थी, लेकिन वो 7 को स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के फेवर में थे, ठीक है। ये मिसयूज रोका जाना चाहिए। अभी वो अपने उस स्टैंड से भी पीछे हो गए हैं। अभी उनका स्टैंड है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं दी जानी चाहिए। हमारा भी स्टैंड यही होना चाहिए, ठीक है। दिस सिस्टम ऑल्दो नॉट परफेक्ट, बट अगर हम जुडिशरी में इसको लेके चले जाएंगे तो और ज़्यादा इम्परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ठीक नहीं है, लेकिन इसको हम ठीक करने का सोच सकते हैं, इसको और खराब करने का नहीं सोच सकते। ऑलरेडी जुडिशरी में कितने केसेस पेंडिंग हैं? 3.5 करोड़ कम है, एक्चुअली 4.85 करोड़ हो गया है। कोविड में जो है ना बहुत तेजी से केसेस पेंडेंसी बढ़ी, 3.5 प्री कोविड डेटा है, ठीक है। 4.6 4.8 करोड़ केसेस पेंडिंग है, एक और आके लग जाएगा, ठीक है। दैट्स नॉट नेसेसरली प्रोसीजर नहीं कंप्लीट हो, ठीक है। ऐसा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ये भी तो है ना कि इलेक्शन में इंटरफेरेंस कोर्ट का नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि कोर्ट स्टे ऑर्डर ना दे, मतलब यूजुअली क्या होता है कि कोर्ट स्टे दे देता है, उसकी वजह से आपका इलेक्शन रुक जाएगा। लेकिन ये है ना कि आपको उसने कुछ हेट स्पीच दिया या कुछ उसने ऐसा स्पीच दिया, अब आपको एक्शन आपको आज लेना है। आप कोर्ट में गए, उसके खिलाफ एक्शन, कोर्ट नोटिस देगा, ठीक है। नोटिस देते देते तो उसने इलेक्शन में 10 जगह और स्पीच दे दिया, ठीक है। वो इलेक्शन तो जीत गया ना, फिर आप उसको जो करता रहना करो, तो इलेक्शन तो फेयर नहीं हो पाया ना।
तो इसलिए प्रॉम्प्टनेस और स्विफ्टनेस रिक्वायर्ड है। जिस टाइप की चीजें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कवर करता है उसमें स्विफ्ट एक्शन रिक्वायर्ड है, जो कि इसके स्टैट्यूटरी हो जाने की वजह से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अपन दूसरे पार्ट पे आएंगे कि इलेक्शन कमीशन का रोल कैसे इफेक्टिव है। कैसे कैसे इफेक्टिव है बताओ, कुछ एग्जांपल तो आपको पता ही होंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा जो है वो लीकर जब्त करते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा करेंसी जब्त करते रहते हैं। लास्ट ईयर तो उन्होंने तमिलनाडु में 2 जगह के इलेक्शन, लास्ट ईयर नहीं मतलब 2019 में उन्होंने तमिलनाडु में इलेक्शन भी कैंसिल किए थे 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैश जब्त हुए थे। ठीक है, तो इफेक्टिव है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में भी किया था। हाँ, कैंपेनिंग पीरियड को उन्होंने पहले कर्टेल किया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस हो रहे थे। ठीक है, हाँ ठीक है, तो सिमिलर एग्जांपल हो, थोड़ा डिफरेंट टाइप के एग्जांपल बताओ। वो तो करते ही रहते हैं, ऑफिसर्स का ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा और चीज़ें जैसे उन्होंने कई बार टाइम एंड अगेन लीडर्स को उन्होंने 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कैंपेनिंग पे बैन लगाया है, क्योंकि उन्होंने इम्प्रॉपर स्पीच दी है, जिसको हेट स्पीच भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको जो है इन कैटेगरीज में बांट सकते हो। पहले तो कि वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, तो उन्होंने तो सेट किया। अब जो है वो नया स्टैंडर्ड हर साल इलेक्शन कमीशन लेके आते रहती है। ठीक है, जैसे कि नया प्रोविजन अभी हमने देखा 2014 में आया था मैनिफेस्टो से रिलेटेड, और या फिर आप बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज से रिलेटेड डालने के लिए बोला है, कुछ करके आएंगे। ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड करता है। अभी एक एग्जांपल है, जैसे उन्होंने पीएम्स की बायोपिक 2019 में रिलीज होने से रोक दी थी। ठीक है, तो दिस वाज लाइक टू मेंटेन द लेवल प्लेइंग फील्ड। एक बार आप ये भी बोल सकते हो कि यूपी में एक बार इलेक्शन में एलिफेंट को कवर कराया था उन्होंने, हालांकि ये थोड़ा सा लाफेबल चीज़ है। ठीक है, बट दे हैव डन इट टू मेंटेन द लेवल प्लेइंग फील्ड, कि जो पार्टी इन पावर है उसको एडवांटेज ना मिले, अनफेयर। ठीक है, उस समय ना एक कार्टून आया था कि एक गरीब आदमी है, वो बोल रहा है कि मुझे ठंड लग रही है, मतलब विंटर के टाइम पे वो इलेक्शन हो रहा था, कि मुझे ठंड लग रही है, थोड़ा जो मुझे भी ओढ़ने के लिए कुछ दे दो। ठीक है, तो उसको इलेक्शन कमीशन वालों ने बोला कि तुम किस चीज़ के सिंबल हो, यू आर नॉट a symbol of any political party, you shall not be covered. क्या? वो जोक इस बात में था कि जो पुअर पीपल है वो किसी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उसका कोई नहीं है। सटायर वाज ऑन दैट। लवकुश कह रहे हैं, लवकुश की डिमांड है कि बोर्ड के सामने पढ़ाया जाए। लवकुश डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर में बोर्ड के सामने पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ी सी ठीक है, आई हैव प्रॉब्लम इन नी, तो अभी बैठ के पढ़ा सकते हैं। और अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप पहले के वीडियो जरूर देखो। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो गया था, हमने द डे बिफोर यस्टरडे पार्ट 1 कवर किया था। ठीक है, तो उसके आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। ओके, देयर आर सम कंकरेंट रेगुलेशन। जितने भी इलेक्शन में एडवर्टीजमेंट जाते हैं वो पहले इलेक्शन कमीशन अप्रूव करता है। इवन सोशल मीडिया ऐड, गूगल ऐड, कहीं भी डालना होता है तो पहले आपको अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, फिर सी विजिल ऐप कि किसी को कंप्लेन करना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन का तो वो करते हैं। ये एग्जांपल मैंने देखा है, सारे लोगों ने लिखा है। ठीक है, दिस इज समथिंग जो सबको पता है। और ये तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए। एमपी के चीफ मिनिस्टर का एक बार उन्होंने ऑफिशियल जो हेलीकॉप्टर मिलता है उसको उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए यूज कर लिया था, तो इलेक्शन कमीशन मेड हिम पे द एक्सपेंसेस फॉर दैट एयर ट्रेवल। ठीक है, तो इफ यू हैव डन इट समथिंग, ऑल्दो यू शुड नॉट डू इट, पहले ही बैन हो जाना चाहिए, वो किया तो उसकी रिकवरी भी करी गई, तो करेक्टिव ऑर्डर्स। तो इस टाइप से आप डिफरेंट कैटेगरी में बना के ले, मतलब एक तरीका तो है कि सिर्फ एग्जाम्पल लिख दें, एक तरीका ये है कि डिफरेंट कैटेगरी बना के लिखो, ये डेफिनेटली बेहतर लगेगा अगर आप इस टाइप के कुछ कैटेगरी लो बनाओगे, कुछ करेक्टिव एक्शन, कुछ कंटेम्पररी एक्शन। ठीक है, वो तो विद टाइम आएगा ना। जैसे अब आपने एक बार देख लिया, अब अगर दोबारा आएगा तो ये वाले पार्ट में आएगा,
तो ऐसे धीरे धीरे अगर आप साल भर प्रैक्टिस करते रहोगे 200-300 क्वेश्चन पे आपके स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। फिर उन्हीं में से तो कुछ क्वेश्चन आना है, और आएगा कहाँ से? नहीं, आपको डेली बेसिस पर स्ट्रक्चर में ही लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। स्टैंडर्ड में ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेडीमेड स्ट्रक्चर बना के जाओ, क्योंकि वो स्ट्रक्चर रेडीमेड बनाने का मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो कॉमन है ना, हम पढ़ते, जैसे हम हर चीज में कॉज पढ़ते हैं, इफेक्ट पढ़ते हैं। अब उन कॉज को आप अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ज्योग्राफिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन तरीके से ही आप प्रिपेयर करो तो बेहतर रहेगा, वो अच्छा दिखता है, ठीक है। सोशल में लिखो 3 पॉइंट आप सोशल के रीजन, वो गवर्नेंस में ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। नाउ इनइफेक्टिवनेस, फेलोर बताओ फटाफट। मैं नहीं बताऊंगा, पहले तुम बताओगे। सब लिखने के लिए तैयार हैं कि जल्दी से बताओ। लॉकुस ऑनलाइन वाले बताओ। बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में वर्ड कहीं भी मोदी जी का नाम नहीं आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर लिखना है, ठीक है। हम प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हैं, जैसे हमने बोला ना सेंट्रल गवर्नमेंट हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर लिख सकते हो, मिस्टर मोदी इस टाइप से मत लिखना, ठीक है। सिंपली जैसे मिशन शक्ति को उन्होंने टेस्ट किया था, उसके बाद मोदी जी ने नेशन को एड्रेस किया बिटवीन द इलेक्शन चल रहा था, उसके बीच में उन्होंने एक तो टेस्ट किया, फिर उन्होंने नेशन को एड्रेस किया। टेस्ट किया तब तक ठीक था, ठीक है। नेशन को एड्रेस वाज डेफिनेटली अ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वायलेशन ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। और एक तो सिंपल सा ये है कि पॉलिटिकल पार्टी ब्रेजनली वायलेट करती है, ठीक है। डेली बेसिस पे वायलेशन के एक्यूजेशन होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। दूसरी चीज़ कि इंडिविजुअल कैंडिडेट भी वायलेट करते हैं, और उसको भी डिस्क्वालीफाई करने का पावर नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि चूंकि पावर नहीं है इसलिए कोई डिटरेंस नहीं है, तो ये फर्दर कंटिन्यू होते रहता है, ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इसलिए फिर बोलते हैं कि टूथलेस बॉडी हो गया है। देन अपन एक लिमिटेशन में तो बोल ही सकते हैं स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं होने का बड़ा जो नुकसान है वो ये है ना कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ माइनर पनिशमेंट दे सकता है, कोई डिस्क्वालिफिकेशन या ऐसे जैसे मेजर पनिशमेंट नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन। बट वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड नहीं है ना, थोड़ा एमसीसी से रिलेटेड अपन दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इलेक्शन कमीशन के चैलेंजेस आ गए, उससे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उसके पास सिक्योरिटी, इलेक्शन कमिश्नर के पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तो है। अपॉइंटमेंट में भी कमेटी सिस्टम नहीं होता है, गवर्नमेंट अपने फेवरेट को अपॉइंट करती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, वो सब यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड चैलेंजेस लिखने हैं। हाँ बिल्कुल, कि फ्रीवेज इज नॉट कवर्ड, मैंने लिखा है अगले में। तो एक तो सोशल मीडिया कैंपेन्स, सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट इलेक्शन कमीशन करती है रेगुलेट, लेकिन कैंपेन नहीं, कोई भी कुछ भी ऐड कर देता है आजकल। और फेक न्यूज़ तो बहुत सारा फैल रहे हैं, फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज है जो कि कवर्ड नहीं हो पा रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या नहीं, पेड न्यूज़ तो आरपीए में, क्योंकि वो इलेक्शन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है ना, कि एक्सपेंडिचर में उसको आपको नहीं दिखाना था, आपने नहीं दिखाया, तो इट्स अ काइंड ऑफ करप्ट प्रैक्टिस, ठीक है। फेक न्यूज़ नहीं है उसमें कवर्ड। हाँ, वो दिक्कत ये होता है ना कि आप क्या करते हो कि एक पेड करते हो उसको, कुछ आर्टिकल लिखो, लेकिन वो आर्टिकल लिखा जाता है ऐसे जैसे कि वो न्यूज़ लिखा जा रहा है, तो जनता को ये लगता है कि ये एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर का व्यू है, ठीक है। तो इसलिए जनता उसको ज्यादा बिलीव करती है। जैसे तुम आके बोलो कि मैं सबसे ईमानदार हूं, तो मुझे पता है ना कि तुम बोल रहे हो तो अपने बारे में अच्छा ही बोलोगे, लेकिन ये बंदा मेरे को आके बोले कि सर पता है वो बंदा बहुत ईमानदार है, तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी होगी, इसलिए लोग पेड न्यूज का सहारा लेते हैं। तो रूल ये है कि आपको डिक्लेयर करना है कि दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट, और उसके बाद जो भी चीजें लिखनी है सो लिखनी है, और आपको वो एक्सपेंसेस शो करने हैं अपने एक्सपेंडिचर में। और सिंस इट्स एन एडवर्टाइजमेंट, आपको इसकी प्रायर परमिशन लेनी है इलेक्शन कमीशन से। नाउ दिस प्रायर परमिशन इज मिसिंग, दिस एक्सपेंडिचर इज मिसिंग, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिक्लेरेशन भी नहीं होता है कि दिस इज ए पेड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो 3 लेवल पे दिक्कत है उसमें।
यस रचित, उस शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज हुआ था। एक्चुअली आज गवर्नेंस का होना था, बट पीयूष सर अभी अवेलेबल नहीं थे और हमारे पिछले क्लास में वो पॉलिटी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेगी। गवर्नेंस किसी दिन हम अनाउंस करेंगे, गवर्नेंस कब ले पाएंगे पीयूष सर, बाकी शेड्यूल एज इट इज चलेगा, ठीक है। नहीं, पॉलिटी के 10 हुए ना, उसके अलावा गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस भी तो होता है GS2 में। हाँ, इसी पेपर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपने एक्विजिशन के एग्जांपल हमने डिस्कस कर ही लिए, ठीक है। एक बार तो इलेक्शन डेट भी डिले हो गए थे क्योंकि कुछ स्कीम्स के अनाउंसमेंट करने थे, ठीक है। तो मतलब ये ओवरऑल उस एंगल से है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से गवर्नेंस पैरालिसिस आती है टाइम एंड अगेन, ठीक है। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रॉब्लम है, ऐसे जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है। हाँ, ठीक है। अब क्या है, जैसे उन्होंने यूपी में इलेक्शन कराया था तो शायद 6 चरण में थे, उसके बाद उन्होंने वेस्ट बंगाल में किया तो 7 चरण में कराए, ठीक है। तो 1.5 महीने तक इलेक्शन चल रहा है और उसके डिक्लेरेशन के से ही MCC लागू हो जाता है, तो डेफिनेटली गवर्नेंस हैम्पर हो रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे एंगल से है, इलेक्शन कमीशन कहाँ जिम्मेदार है उस एंगल से है। डेफिनेटली, मतलब आप पूरे देश का भी इलेक्शन 6 स्टेप में करा रहे हो और एक बंगाल का भी इलेक्शन 6 में करा रहे हो, ये तो सेंस नहीं बनता है ना। जब आप देश के इलेक्शन के समय बंगाल का इलेक्शन कम फेजेस में करा पाए थे, तो अभी भी करा सकते हो आप कम फेजेस में, ठीक है। नाउ वे फॉरवर्ड करना क्या चाहिए, तो एक स्टैंडिंग कमेटी बनी थी पार्लियामेंट की, उसने बोला कि इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दो। ओवरऑल हमारा स्टैंड नहीं होना चाहिए इन माय ओपिनियन, बट कमेटी ने 2 चीज़ें बोली, ठीक है। इसका काउंटर आर्गुमेंट यही आता है कि प्रॉम्प्टनेस चली जाएगी। कमेटी ने बोला कि हम एक कुछ फ्लेक्सिबल जुडिशियल मैकेनिज्म बनाते हैं, हम इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देते हैं, एंड वन ऑफ द वेज कि हम इसके लिए एक डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल टाइप की चीज़ बना दें, ठीक है। जो ट्रिब्यूनल जो है प्रॉम्प्टली एक्शन लेगा, और वो ट्रिब्यूनल एज एंड व्हेन इलेक्शन हैपेंस दैट ट्रिब्यूनल वुड बी वर्किंग ऑन डे टू डे बेसिस। तो इलेक्शन कमीशन का बर्डन भी कम होगा, न्यूट्रलिटी वाली भी चीज आएगी और इसको स्टैट्यूटरी बैकिंग भी मिलेगी, ठीक है। सो ये भी एक सजेशन दिया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ रिफॉर्म आप सजेस्ट कर सकते हो कि इलेक्शन कमीशन को और पावर देनी चाहिए और मशीनरी देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के पास अपना डेडिकेटेड क्या बोलते हैं उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करे। वो भी तो डेपुटेशन पे सारे लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, तो वो इफेक्टिव होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली उनको अपने पेरेंट मिनिस्ट्री को रेगुलेट करना है, रिपोर्ट करना है, ठीक है। देन सोशल मीडिया कंडक्ट, फ्री बीच, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करना चाहिए। और इन्होंने बोला है कि सेकेंड ARC ने रिकमेंड किया था कि डेडिकेटेड यूनिट सेटअप करना चाहिए सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए इलेक्शन कमीशन को। और इलेक्शन कमीशन अभी कोई एनुअल रिपोर्ट, मतलब मोस्ट ऑफ दी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, जितने भी नेशनल कमीशन हमने पिछले क्लास में भी देखा था। इलेक्शन कमीशन कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करता, तो सेकेंड ARC ने रिकमेंड किया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे एक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट करनी चाहिए, जो कि पार्लियामेंट में टेबल होना चाहिए, ठीक है। बाकी अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन मेजर्स, तो अवेयरनेस तो सब लोगों ने लिख ही दिया होगा, ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, इसको एग्जामिनर बिल्कुल वेटेज नहीं देता, ठीक है। अवेयरनेस, हाँ ठीक है, और बताओ और क्या लिखे हो। अवेयरनेस देखने के बाद यही फील आती है, ठीक है। तो एक जमाने में नंबर आते थे इससे, अब नहीं आते, अब सबको पता चल गया ना, ठीक है। सो दैट्स ऑल, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आप लोग भी घर जाओ तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर अभी तक नहीं किया है तो शेयर करो, बाकी लोगों को भी बताओ, ठीक है। जुड़ेंगे इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ओके। और अगर और कोई सजेशंस हो आपके, ठीक है। नहीं, एक चीज रह गई, सॉरी, कंक्लूजन तो रह गया इसका। कंक्लूजन में क्या देंगे बताओ? तो हमने सजेशन दे दिया, अब कंक्लूजन ये होना चाहिए कि सजेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आउटकम क्या आएगा,
बदलेगा क्या, ठीक है। तो वन ऑफ द थिंग्स जो हम लिख सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए कंडीशन तो है, ठीक है, कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक अभी बहुत खराब है। अभी इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बोलते हैं वो लोग, ठीक है। वहां से हम फुल डेमोक्रेसी में बदल सकते हैं अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट हो तो। ठीक है, इसमें रैंक है 46। वैसे 46 देखने में खराब नहीं लग रहा है क्योंकि इंडिया का अदरवाइज रैंक 130s में होता है, ठीक है। बट कंसिडरिंग कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री जो है अभी दुनिया में वो डेमोक्रेसी ही नहीं है, ठीक है। और आप अपने आप को बिगेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हो। एंशिएंट इंडिया से, लिच्छवी के टाइम से डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, और उसके बाद भी अगर आप फ्लॉड डेमोक्रेसी के कैटेगरी में हैं, ठीक है, दिस इज डेफिनेटली अ मैटर ऑफ सेम। तो हमें इस कैटेगरी से बाहर आना चाहिए, फ्लॉड से। फुल डेमोक्रेसी में हमें जो है पहुंचना है, ओके। ऐसे आप कुछ जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, कुछ और भी स्पेसिफिक लिख सकते हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लिखो कंक्लूजन में, और कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि वे फॉरवर्ड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। बाकी ये है कि कल हम लोग क्लास के बाद थोड़ी देर और रुकेंगे, कुछ और लोगों की आप लोग जो है कॉपीज हम लोग इवेलुएट करेंगे कल इकोनॉमी वाले। पॉलिटी तो हमने कर ही लिया था, आज क्लास से पहले भी हमने कुछ लोगों की कॉपी चेक करी, ठीक है। कल क्लास के बाद हम लोग, क्लास से पहले कल नहीं हो पाएगा क्योंकि कल इकोनॉमी है ना, तो क्लास के बाद हम लोग थोड़ी देर और कॉपी इवेलुएट करेंगे जो जो लोग यहाँ पे क्लास में रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।